Uh, yeah, so let me just start with the ones. So just to give you the introduction, myself, I'm Sharad Bhatt. Just open. I hope that I'm visible to everyone. Yes, yes, you are. Yes, you're visible. Yeah, and again, okay, thanks. Yeah, so I can convert in Hindi and English if, uh, uh, in case if somebody is not comfortable in any workout and arrangement which works. So हिंदी और इंग्लिश में उछल जाएगा मतलब मैं mix भी कर सकता हूँ. I can go purely in English. I can go purely in Hindi. So whatever is suitable to you. If somebody has some comments, please drop that in the chat box and we'll work it out. But usually we conduct these sessions in Hindi and English only. मतलब इंग्लिश इसलिए कि इट इज अंडरस्टैंडेबल बाय मोस्ट ऑफ द पीपल. हिंदी इसलिए कि भाई थोड़ा दैट इज माय मदर टंग, सो ऑफ कोर्स आई कैन कन्वर्स इन दैट. तो इसलिए तो ललित जी लिख रहे हैं कि हिंदी. तो ललित जी मतलब हिंदी में भी कर ले. अच्छा, तो कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल ही हिंदी वो नहीं समझ सकते और वो इंग्लिश ही चाहिए, वो कोई ऐसे भी हैं? No, no, everyone are good with Hindi, I guess. So we'll go with Hindi. अच्छा ठीक है. अच्छा ठीक है, ठीक है. मतलब मैंने तो इसलिए किया था कि कोई अगर पर्टिकुलरली बहुत कंफर्टेबल नहीं है हिंदी से, आई कैन सी एंड आई कैन डू दैट. तो कोई ऐसा है मतलब अगर कोई एक भी ऐसा हो तो प्लीज बताइए कि हिंदी बिल्कुल ही नहीं समझ सकते हैं तो विल फैक्टर दैट इन. बट अगर मेजॉरिटी हिंदी को लेके वो कंफर्टेबल है एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, बाकी यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश, दैट शुड नॉट बी एन इशू. ठीक है, तो हिंदी में ही स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर. So we can start with a little bit of intro. In intro में please state your name, which particular location आप कहाँ से हैं, और आप लोग जैसे are you an active farmer or you just want to learn about the farming, कौन सी क्रॉप कर रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं, बस एक एक मिनट का क्विक इंट्रो. बाकी हमारे पास बाकी का टाइम होएगा टू गेट टू नो. बट देन और इस कार्यक्रम से या इस सेशन से आपकी क्या उम्मीदें और व्हाट आर योर होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिस program would be the starting point, right? So we can start. I will call the name, then you can please speak. 1 minute should be okay. I'll start with myself and so as to give you an idea about what our backgrounds are and then what our company is all about. So मेरा नाम शरद भट्ट है. मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ, लेकिन अभी मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ. तो हम लोग चंडीगढ़ में सेटल्ड हैं. मेरी जो शिक्षा हुई है, माय एजुकेशन हैज बीन फ्रॉम दिल्ली. So Delhi College of Engineering is where I did my computer sciences and engineering from. Then I worked with corporate like TCS and Infosys across the country and outside the country also, right? So I worked in India, in Bangalore, Trivandrum, Chennai, Chandigarh, Delhi, Jaipur, Pune, Mumbai, so around 10, 12 cities across the country. And then outside India, I worked multiple years in US, across again 8 to 10 cities there, and UK, Vietnam, Kathmandu. Those are the places I've worked again for work, mostly on the tech side. I worked in fintech. Fintech में मैंने काम किया है. I worked in the e-commerce space for long. I worked with Taxi for Sure, which was acquired by Ola. So I worked for a couple of years there. और हमने 2021 में सोल की स्थापना किया था. तो 2021 से मैं एग्रीकल्चर हूँ. तो जस्ट टू लेट यू नो कि मेरी एग्रीकल्चर की 2020 से पहले कोई बैकग्राउंड नहीं थी.
2020 से हमने इसके बारे में पढ़ना और समझना स्टार्ट किया और अक्टूबर 2021 में सोल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो तब से हम लोग वो किसानों के साथ काम कर रहे हैं ऑन दी ऑर्गेनिक साइड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, दीज आर जस्ट डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम थिंग। और अब तक हमने अराउंड 12,000 किसानों के साथ काम किया है पिछले 3 साल में। और अराउंड हमने 32-33 हजार ऑर्डर अब तक सर्व किए हैं अक्रॉस द कंट्री। सो आवर फार्मर्स आर देयर इन ऑल 26 स्टेट्स एंड 6 UTs across the country. So if I go to any place, I know that I can always find some farmers there. So that has been my background. I'm one of the co-founders. Along with me, I've got my team. Rama, you can see on screen. She's from Utrichi, Tamil Nadu. She has been working with us for many, many years now, and she heads all the operations and training aspect. Along with her, I've got Shweta and Rachna from my team who will be helping you out in terms of coordination and your expectations. All of them have been working with us for quite some time, and any of these say questions or any of the things which you would like to know, we'll be happy to help. Right. So thanks a lot to everyone for joining in. Just 1 minute intro. Are you a farmer? Are you now? What are your expectations? So that towards the end of the session, we circle back and see that if you're able to meet your expectation. And then in case if something is pending, then we are always available. Every single day we do a Kisan Samvad 6 to 7 where we answer all kind of questions from all kind of farmers from all kind of places. Right. So thanks a lot. So we'll start with Shravanti. So where exactly are you from and are you an active farmer and what are your expectations, please? Sorry, it's not Shravanti, it's Dilip. I joined from a different mobile. Okay. So I'm from basically Dilip. Hyderabad, and Oh, I'm an okay, ex-IT okay. guy. Oh, So I used to work for Deloitte, oh, and I worked for Capgemini oh, and PwC, all these companies, 20 years. I also crossed across like 11 countries, and I came to India. I'm into multiple ventures. Currently, I'm doing a drone business, drone as a service, and doing oh, drone surveys and many other things. So one of my line which I was interested is doing this sheep farming. That's where when I entered, and then उसके जो कुछ भी फॉडर है वो फॉडर के लिए ट्राई कर रहा था फॉडर आई वांटेड टू गो इट इन ऑर्गेनिक वे and I achieved like a partially but not full-fledgedly how it was there in books or theory and everything. So that's where I just thought like why don't I go for further down the line and then see in details what exactly I was missing and to make it achieve successfully. oh, great. So I So just I'm not a missed out. full-time farmer. I'm not a full-time farmer. I just leased out like 3 acres of land, and I'm just trying to put a fodder. Fodder is my main area where I'm just looking now. So without Okay. any chemicals. So that is the idea. Oh, great. Yeah. So thanks. Thanks for being there. Hyderabad is one of our most active places. We just this week we started supplying to Blinkit there. Yes, Right. So last week I just attended Rakesh class actually in Hyderabad, ah. offline class. Yeah, Oh, I okay, was okay, there actually. okay, cool. Yeah. So as you, yeah, yeah. So this Okay, is just a okay. Yeah. so So to thanks nurture even the for letting. some of the points. Yes. Yeah, please. Oh, Next one can cool. continue. Yeah, I think I should be able to address that. Okay, thanks. Okay, Thank you. Manjul Kishore, please. Thanks. Yeah, thanks, Dilip. Manjul Kishore. Okay, I'll just not really wait. I'll just move on. In case if you would like to say your intro, please join in. Mr. Pankaj Pradhan. हेलो नमस्ते. Namaste, sir. I am from Odisha, Bhubaneswar. I am from Okay, Odisha, sir. Bhubaneswar. बहुत ही
अरे लो I have just जगन्नाथ जी returned के from उससे। I have हाँ just जी। returned from government service 1 month ago. I ओके have my own farm of 5 acre in my village. I am ओके continuing cultivation there for the last 25 years. We have a farmers ओके group in our district, ओके cultivating mango, cashew nut, and other vegetables. I have interest in organic farming. I have also attending the WhatsApp group since the last 1 year. So that's why I have joined in this training. Thank you. ओके एंड सर व्हाट आर द क्रॉप्स यू डू देयर? Lemon, mango, and brinjal, bitter अच्छा gourd ओके in my farm. And other farmers are ओके doing other vegetables, potol, yes, others. ओके 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 Thank you. ऑलराइट सर, सो थैंक्स अ लॉट। अच्छा तो इससे इससे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं सर? मतलब व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन व्हिच यू हैव फ्रॉम दिस सेशन? First, I shall know myself the organic farming through TCBT, and I shall also let other farmers to do this organic farming in my area and district and in my Orissa. ओके ओके ठीक है, ठीक 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 Thank you. ठीक ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट मिस्टर धीरेंद्र अग्रवाल। Hi, I'm actually धीरेंद्र from Indore, Madhya Pradesh. ओके I used to be in corporate earlier. I was working in marketing firms in the retail space. I work with Target Corporation. And currently, I have left my job and I'm planning to start my own farmland here. So I've taken a lease for around 5 acres of land, planning to do starting the organic farm on a trial basis right now. My expectation of this course will be to understand organic farming and how to convert my currently leased land into organic land and see the difference, how we can make more and more impact on the organic farmland here. okay, yeah, so thanks. Yeah, so I think this is what we have. So just to let you know, we are head officed in Bhopal only. So though I'm speaking from Chandigarh, but we are much closer to your place. And we are also in talks with Blinkit to start our operations in Indore also. Again, all these market linkages are on the premise that most of the organic farmer may do the organic farming. Uh, but they do not have any assured way of getting the higher prices on account of the organic, and that's where we are trying to help them out. Okay, all right, cool. So then, post that we have Harish Patil ji. हरीश पाटिल जी, ठीक है। तुषार तुषार जी, तुषार जाधव। Hi, I'm Tushar. I'm from Ahmedabad, Gujarat. Okay. I'm a software engineer with a US-based firm, full time. Okay. And as per my expectation, actually, my maternal family is somewhat into farming. Uh-huh. I'm not an active farmer at all. I don't know anything about farming apart from watching YouTube videos on sustainable living, and I really love it. I'm just want to learn like how the farming works and how can I start with buying a land or at least taking on a lease. Just want to try it out before I can go into full-time farming. Okay, great. Thanks. Thanks. Yeah, yeah. ठीक है। Then ललित जी, ललित शर्मा जी। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर, बताएं। मैं ललित भिवानी हरियाणा से बोल रहा हूँ। अच्छा, हेलो। ओके जी। हाँ जी, हाँ आ रही जी, है क्या हाँ मेरी जी, आवाज? आपकी आवाज आ रही है साहब। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ साफ सर, आ रही है सर। मैं खेती बाड़ी करता हूँ सर, फुल टाइम। अच्छा, ओके। धान और गेहूं की। अच्छा। हाँ, तो अभी ऑर्गेनिक में मेरी इच्छा है कि 2-3 एकड़ में करूँ। ठीक है। हाँ, अभी जैसे आगे धान लगाना है तो उसके लिए थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ
पर टाइम तो आ ही गया उसका। ठीक 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 हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक जी, है, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, हरीश जी ने हाथ उठाया, मेरे ख्याल से वो वापसी आ गए हैं। हरीश जी बताएं प्लीज, हरीश पाटिल जी। Sir, I am audible. हाँ हाँ, Hello. या ऑडिबल सर। Okay, हाँ sir. सर प्लीज। Yeah. Sir, good morning. नमस्कार। Myself, I am from Karnataka. Harish Patil from ओके, Karnataka. विच पार्ट Hello. सर? या Sir, Karnataka, and it's a Davanagere, which is 250 kilometers from Bangalore. I mean, we are say visiting lots of places in Karnataka and Telangana close to Hyderabad. So we are well versed Okay. with the geography there. Yeah, yes, sir. Okay. Okay. Uh, Sir, anyway, I am a full-time farmer. Mm-hmm. I am interested in the horticulture crops, and I am practicing the horticulture crops like arecanut, coconut, mango. Apart from that, I have got a paddy fields. Okay. Uh, And then I what have, is the acreage which you have? pardon? What is the area? How many acres you have there 30 acres, sir. for agriculture? Yeah. Okay, ठीक है. And you do a mix of all the crops. Mix of all. Majorly, it is arecanut, sir. Arecanut. Okay, cool. Yeah. Yeah, I mean that's quite a lot in that part. And what would be your expectation from this session, sir? Yeah, I am just doing the agriculture from the past 20 years, but I am always in the on and off of the organic agriculture practice. So I am not able to practice it in a full-fledged. So I have got some doubts about this organic farming. I'm confused whether natural farming and organic farming are both are same or not. Yeah, just I wanted some clarification, so I have joined this Zoom meeting, sir. Okay, thanks. Yeah, very, good question. I really love answering this. That what is the difference between an organic and a natural farm, right? So Yeah. though they are used interchangeably, but then there is a technical difference between these two, and then we'll try to answer that as we go along. Okay. All right, sir. Thanks a lot. Okay, then post that Mr. Manjul Kishore, are you there? No. Okay. Then Mr. Harsh Upal, no, Prashanti, yeah. So I must express that. And then we have Mr. Harsh Upaliwal. Yeah, hello. Sorry for the delay. I'm Prashanti. Yeah, Prashanti ma'am, bataiye please. I'm based in Pune. I'm actually an electronics engineer. I quit my job recently, and I was planning to expand a bit of. We have some area of land like as an extension of the backyard, which was just like a normal flower garden. I've started doing some horticulture crops, mainly flowers and fruits, with a greenhouse. And I would like to try organic farming now. It's not that I had a Okay. great yield or something the last time, but I think at least whatever we make should be nutritious. No, sure, of course. Look, we do need enthusiasts and champions, who can really understand the technical aspect of it, and then can act as a champion or the trainer or the motivator for the people around. So yeah, I mean, most welcome. We'll try to address, whatever expectation which you might have, and we'll try our best. Okay, thanks. Thank you. Okay, Harsh Paliwal ji. Haji, can you hear me? Yeah. I can hear Okay. you. So I've also been a corporate employee for over 25 years. 2 साल पहले मैंने full time job छोड़ दिया था. तो 2 साल से I've been just enjoying being unemployed. Recently I've started researching about farming. This is something that I think I should do. So we have now moved from Bangalore to Dehradun about a month ago.
अभी देहरादून में स्टेशन हुआ. I'm not an active farmer. I'm just learning a lot of things. Okay. Soil preparation, different methods, horticulture, all of that. The idea is ultimately to zero in and say, अच्छा ये काम शुरू करते हैं. तो I'm in phase of just learning and thinking, where can I fit in and can start something in that area. Okay, great. Yeah, so this is what we have found, that apart from the active farmers, which are of course there, we are attracting more and more people from the corporate who understand the value of organic or the chemical free or the residue free food, and then actively pursuing this as a hobby or as a business opportunity as well, or some kind of an enthusiast. So yeah, I mean, those are the things which we found very, very interesting. And it's a lot easier for us to communicate and make them explain, because there is a particular science which goes behind the agriculture as well. And then that particular science is fundamentally different than the way we are practicing it till date. I'm sure that we'll be able to create that differentiation or understanding among all the audience which we have here. So yeah, so welcome. Hope to meet your expectations or exceed as we Thanks. go along. Okay, Sanjay Mahajan ji. Okay, Bapu Singh ji, Bapu Singh Mandloi ji. Nagraj ji, Mr. Nagraj. Jignesh Chaudhary. Acha, so Nagraj ji is unmute. Yeah, please, sir. Good morning. Myself Nagaraj from Udupi. Okay. Yeah. Hello, sir. Hello. Yeah. Actually, I am presently I am doing full-time farming. I have around 8 acres of land. As usual, this side, the coastal side, the main crop is areca nut and coconut, along with that black pepper. Oh, okay. You are doing spices also. Yeah. I worked for a corporate for up to last 2022. Then I took full-time farmer this thing after retiring from there. Okay. Before that, I purchased this land. So along with this, I am doing paddy also around 2 acres. Why I am here is I actually started around 3 years back this organic farming of various. I think you know that Palekar method and all. Right. But then again, it is like on and off type. Sometimes I do that because lot of things it is not possible for me to like. They say it is total mulching is required. Sometimes it is may not be possible. So then there is reduction in crop and all. Then we tempted to go for again for fertilizer like NPK and all that. Then again after some time we come back to organic again. So and in organic also many times people say many things like you use this and that. Why I am here is I want a definite way the stepwise. First you go like this, then go for. So in Soul also I have seen so many products are there. When to use what, or every product we cannot go on purchasing, and there is a time gap also. So I expect a definite way where we can say, where you can say you start with this, then you can go for different this thing. So in organic farming, I'm expecting from Saul is a definite way of going ahead with the full guidance. That's why I am here today. All right, sir. Thanks a lot. And you have been very precise. And we hear that from many of the farmers. We have own views, but then I'm sure that we'll able to, provide you with a clear direction at least, right? I mean, clear pathway. That's what I'm expecting. Yeah. Okay. Cool. Thank you, sir. Yeah, thank you. Mr. Bapu Singh Mandloi, sir, आप हैं? Jignesh ji, Virendra ji, anyone would like to introduce, will be happy. Or in case, you can actually write in the chat box as well. Our team will continuously monitor, and, any of the questions or expectation, whatever comes to your mind, we'll be happy to take that.
Okay. So let me just start by saying thanks a lot to everyone. Soul as a company, we have been working with farmers across the country, and typically, just to give you a brief background, I think I gave, but then just for the benefit of everyone, we were founded in October 2021, um, and the origin of Soul was on the premise that there have been technologies, so lots of people are interested in organic, and then lots of people are doing good work in organic, but there lacks a platform in terms of how to bring it all together to make a farmer successful. And when we say make a farmer successful, of course, the economic and the commercial success is the most important aspect of it. The side effects of environmentally good and all are all there. It will make you happy. That's all there. But a bare minimum commercial success has to be there. And that is what was lacking in the earlier model, be it like SPNF, be it like anything else. There are tons of other, say, technologies. What SPNF has does is to make people aware that organic can be pursued as a model. Now, whether that model is successful or not is something which we will know, and which we have learned from our own founding team experience. So, though Soul was founded in 2021, but the people associated with Soul have been working in the organic field for more than 10 to 15 years, right? So, be it the founding team, be it the farmers who are working with us. So that means that we aspire to become a single platform where all the good technologies in terms of the organic methods, in terms of the organic products, in terms of the packages of or practices, in terms of the latest technological tools like uh, Internet of Things, IoT, sensors, drones, blockchain, even technologies like blockchain and artificial intelligence. So Soul become a one-stop solution or one-stop, place where people can come get to know. And then these sessions, look, so lots of things are there, but more importantly is that which particular thing is suited to your crop and your needs, right? So that is something these sessions, and that is where the training and education part, which what we say is the starting point for all these things. So that's why we conduct all these sessions. Just to let you know, we conduct online sessions every week or every alternate week. We also conduct Kisan Samvad, which is again a digital Zoom session, which is being conducted every day, 1 hour, where any kind of questions from any kind of farmer is entertained. All these sessions of Kisan Samvad are free of cost. We do have WhatsApp groups, meaning thereby that you can pose your questions and our experts are there in that group who try and answer that. And your questions may or may not pertain just to the Soul or what the Soul do, but in terms of the broader canvas of organic farming. So those are the things which were in our mind. So the story of Soul started, though technically company was founded in 2021, but the journey started way back in 2005 when many of our founding team members identified that the existing practices leaves a lot of things desirable in terms of the effectiveness or the outcome which the farmer desire. और उसके चलते ही हमने सोचा कि भाई एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें हम ये सब चीजों को एक साथ लाएं। एक साथ ला लेके आने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज हर किसान के काम की है, हर चीज वो नहीं है। लेकिन कौन सी चीज किसान के काम की है और कौन सी चीज हमें उसकी पर्टिकुलर नीड्स, उसकी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, उसके पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस को सूट करना है। तो आप ये मान लीजिए कि हम लोग एक किसान का अस्पताल है, ठीक है? उसमें 10 विभाग हैं, चाहे ऑर्थो, चाहे हार्ट, चाहे मेडिसिन, चाहे सर्जरी, हर चीज़ हर किसान के काम की नहीं है। लेकिन जब पेशेंट आता है तो जो फिजिशियन होता है या जो फ्रंट डेस्क होता है वो ये देख के बताता है कि आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए।
कई किसानों को 2 या 3 वो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हार्ट वाला भी देखता है और ऑर्थो वाला भी देखता है। तो इस तरीके से 2 या 3 वो डिपार्टमेंट आपको चाहिए होते हैं, लेकिन आपको एज़ अ हॉस्पिटल you need to have all the departments so that majority of the diseases can be cured, right? And that's what we believe, has been our mandate. So please allow me to start with the formal PowerPoint. That is just to set the context, not really that this is something which we can wait. So let me just pull that out and then we'll start with that. Yeah, please let me know if my screen is clear and if my voice is audible to everyone. So I should Yes. start now? Okay. Yeah. Thanks. Yeah. So एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक नेचुरल। इसके अलावा भी कई टर्म्स यूज होती हैं, जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग, रीजनरेटिव फार्मिंग, पर्मा कल्चर। सो लॉट ऑफ दीज टर्म्स फ्लोट। आपको बहुत कंफ्यूज करने का मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, बट अभी के लिए हम जो परिस्थिति हमें माने कि भाई ये एक ही सिक्के के अलग अलग वो पहलू हैं। इनके बीच में टेक्निकल वो डिफरेंसेस हैं, बट अभी इस सेशन के हिसाब से हमें मान सकते हैं कि जो नेचुरल होता है वो बाय डिफॉल्ट रीजनरेटिव होता है, वो सस्टेनेबल भी होता है। ऑर्गेनिक हम जिसे बोलते हैं वो एक बहुत ही स्ट्रेट जैकेट वो टेक्निकल डेफिनेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ये रिकॉग्नाइज करती है। तो ऑर्गेनिक इज अ टेक्निकल टर्म, ऑर्गेनिक इज अ टर्म व्हिच वी हैव ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड। बट देन जो अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो इंडिया की जो नेचुरल पद्धति थी ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले, वो नेचुरल ही थी। और आपको मैं एक थोड़ा सा और ये कहानी बताता हूँ कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनक जो हैं ब्रिटिशर नेम्ड मिस्टर रिचर्ड हॉवर्ड, अपनी आजादी के पहले ही स्टेड इन इंडिया, ही स्टेड क्लोज टू इंदौर स्पेसिफिकली, एंड ही स्टडीड इंडियन फार्मिंग मेथड्स इन ग्रेट डिटेल, एंड ही पोस्टुलेटेड दैट इंडिया की जो नेटिव प्रैक्टिसेस हैं दे आर फॉर सुपीरियर टू द इंडस्ट्रियल फार्मिंग मेथड्स एज प्रोपागेंडेड बाय द वेस्टर्न कल्चर। तो जो ब्रिटेन में जो चल रहा था उसके मुकाबले उन्होंने इंडियन प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड किया और इंडियन प्रैक्टिसेस को उन्होंने ये वो किया, और उसी को लेके उन्होंने एक बुक लिखी द एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट विच इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये सबकी जानकारी के लिए कि उन्होंने जिसको ऑर्गेनिक कहा, हालांकि ये टर्म तो इंडिया के बाहर से आई है, लेकिन ऑर्गेनिक जो उन्होंने कहा है वो इंडिया की पद्धति को ही कहा है, बिकॉज वो इंदौर के पास ही 20 साल ये बिता के गए थे। और इसलिए चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे नेचुरल हो, वो सब हम बेसिकली जो ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले जो इंडिया में जिस तरीके से होती थी, एंड आई एम श्योर कि आप लोग अगर अपने दो जनरेशन पहले या इवन एक जनरेशन पहले वो चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीजें जो हम इस वो सेशन में बात करने वाले हैं वो वही पद्धति है जो पहले उचलती थी। ठीक है, तो हम कुछ नया इजाद नहीं कर रहे हैं, हम उन्हीं प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड करके उनको आज की परिस्थिति और आज के परिप्रेक्ष्य में अडॉप्ट करके how to make the farmer successful is what we are trying to achieve. So in short this is what it is. तो ऑर्गेनिक एक टेक्निकल टर्म है जो बाहर से आई है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनपीओपी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने ऑर्गेनिक को एक पर्टिकुलर टेक्निकल तरीके से वो ये डिफाइन किया है कि ऑर्गेनिक पद्धति हम इसको बोलते हैं जिसमें 1 2 3 4 4 चीजें आप करते हो, और 4 चीजें जो आपको नहीं करनी है उसको उन्होंने ऑर्गेनिक का नाम दिया है। बट अगर हम इसकी लूज ये डेफिनेशन लें
तो जिसे हम प्राकृतिक खेती बोलते हैं, तो हिंदी में हमने ऑर्गेनिक को जैविक कहा और नेचुरल को प्राकृतिक कहा। अब प्राकृतिक क्या है? अगेन प्राकृतिक इज नथिंग बट जैसे जंगल है, जंगल में ना कोई खाद देता है, ना कोई पानी देता है, ना कोई वीड उखाड़ता है, ना कोई वहां पेस्टिसाइड चलते हैं, बट वहां द बेस्ट प्रोड्यूस विच यू गेट फ्रॉम द नेचर इज फ्रॉम द जंगल ओनली। सो अब आप उस प्राकृतिक प्रक्रिया को 100% तो इमिटेट नहीं कर सकते, लेकिन जिस एक्सटेंट तक आप कर सकते हैं उसको हम नेचुरल का नाम देते हैं, राइट? तो सस्टेनेबल और रीजनरेटिव भी इसी सिक्के के अलग-अलग वो पहलू हैं। अगर आपने खाद पत्तों से बनाई तो वो रीजनरेटिव हो गया। अगर आपने खाद फैक्ट्री में बनाई तो केमिकल फार्मिंग हो गया। आप फैक्ट्री में बनी खाद को यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी ये अच्छा नहीं होगा। उस कंपनी के जो प्रोसेसेस हैं, उसका जो पानी निकलता है वो अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो डिजायरेबल नहीं है, इसलिए हम उसे सस्टेनेबल और रीजनरेटिव नहीं बोलते। लेकिन अगर हम वही खाद अपने पत्तों से बनाएं और गाय की गोबर से बनाएं और जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर, जो वहाँ के सूखे पत्ते और सूखी टहनियाँ और वो सब होती हैं, तो वो आपका रीजनरेटिव और वो सस्टेनेबल में आ जाता है। ठीक है? So broadly, as you might understand that we are going to use natural, organic and all these terms just कि भाई organic term को लोग broadly understand करते हैं, इसलिए we use that. But then we are using the loose definition of organic. हम कोई बहुत ज्यादा इसके वो technical definition में नहीं जाएंगे, वो हमारा एक और सेशन है, उसमें वो होता है कि भाई अगर मुझे अपना फार्म ऑर्गेनिक करना है या सर्टिफाइड करवाना है, ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का प्रोसेस अलग होता है, वो एक टेक्निकल मैटर है, उस पे हम बाद में आएंगे। आज के लिए हम बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि ऑर्गेनिक का क्या मतलब है, ऑर्गेनिक हम कैसे कर सकते हैं और ऑर्गेनिक के कौन से स्टेप 1 2 3 4। ठीक है? तो हमारा ऑब्जेक्टिव जैसे हमने यहाँ रखा है कि फुल स्पेक्ट्रम सॉल्यूशन टू इनेबल फार्मर शिफ्ट टू सस्टेनेबल मेथड्स। व्हेन वी से फुल स्पेक्ट्रम का मतलब है कि भी प्लांट की लाइफ को अलग-अलग एलिमेंट चाहिए होते हैं, जैसे हमें वो चाहिए होते हैं। हमें हवा भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें फूड भी चाहिए। फूड में विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए और इम्यूनिटी एनहांसमेंट के लिए कोई कुछ हो जाए तो उसके लिए और भी वो सब चाहिए। इसी तरीके से जो हमारी नीड्स होती हैं, उसी का एक सिंप्लीफाइड बायोलॉजिकल वर्जन होता है प्लांट्स को लेके, वो ही है सस्टेनेबल, राइट? और हाउ टू क्रिएट अ कमर्शियली सक्सेसफुल मॉडल इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर, राइट? तो उसमें हम चाहे किसान की पद्धति को इम्प्रूव करना है, दैट इज वन थिंग। किसान की यील्ड को इम्प्रूव करना है, दैट इज अनदर थिंग। फार्मर की कॉस्ट को कम करना है, एग्री इनपुट की कॉस्ट को कम करना है, दैट्स थ्री। और मार्केट लिंकेजेस क्रिएट करने हैं ताकि उन मार्केट लिंकेजेस के थ्रू आपकी फार्मिंग की आउटपुट की वैल्यू इंक्रीज हो, राइट? मैं चाहे 20 क्विंटल 50 के रेट पे बेचूं या मैं 10 क्विंटल 120 के रेट पे बेचूं, बोथ आर इकोनॉमिकली द सेम, राइट? So increase of the yield means nothing at all if there is no increase in the pricing of that yield, right? गेहूं जो पूसा वैरायटी का 22 रुपए का सरकार परचेज करती है, वो ही बंसी व्हीट मार्केट में 80 से 90 रुपए का बिकता है, विच इज 4 टाइम्स ऑफ द प्राइस। बंसी आपका 1 एकड़ में 10 क्विंटल आता है, नॉर्मल आपका 20 से 22 आता है। लेकिन बंसी में आपको 4 गुना वो रेट मिलता है, इसलिए डूइंग 8 क्विंटल और 10 क्विंटल ऑफ बंसी इज इकोनॉमिकली बेटर देन 20 और 25 क्विंटल्स ऑफ नॉन बंसी, राइट? जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। तो सरकार और जो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ आवर लिटरेचर इज सेंटर्ड अराउंड द इंक्रीजिंग द यील्ड। We are saying increasing the yield is not the same as increasing the income, right? So this is the main premise. Increase of the yield is desirable, but increase in the yield is not necessarily increase in the income, is what we are saying. तो हम जिस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में टोटल 15 करोड़ फार्मर्स हैं या फार्मिंग हाउस होल्ड्स हैं। अब एक हाउस होल्ड में आप 4 से 5 या 6 लोग मान सकते हैं,
तो 60 करोड़ जनता या 60 से 65 करोड़ जनता है इंडिया में अराउंड फार्मिंग पे वो डिपेंडेंट है। उसमें से 15 करोड़ में से 3 करोड़ मतलब 20% ऑर्गेनिक अवेयर है। मतलब वो ऑर्गेनिक करना चाहती है, वो ऑर्गेनिक के लिए इच्छुक है, ऑर्गेनिक में उसका इंटरेस्ट है और इनमें से एक अच्छी जनसंख्या ऑर्गेनिक प्रैक्टिस भी कर रही है। बट 90% ऑफ द लोग इकोनॉमिकली या कॉमर्शियली सक्सेसफुल नहीं है और इसी सेशन में हमने देखा कि कई लोग हैं जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस कर रहे हैं बट उनको कॉमर्शियल सक्सेस नहीं है, इसलिए उनका ऑन और ऑफ चलता रहता है कि भैया करें कि ना करें, करेंगे तो उसका एडवांटेज होगा कि नहीं होगा, वो माल अच्छे प्राइस पर बिकेगा कि नहीं, और ऑर्गेनिक की जो अपनी समस्याएं आती हैं वो सब एक अलग वो कहानी। ठीक है, तो 30 मिलियन मतलब 3 करोड़, 80 मिलियन मतलब 8 करोड़। तो एक किसान के पास इंडिया में अराउंड 2.5 एकड़ के आसपास होता है, 2.5 से 3 एकड़। तो हमें माना कि 80 मिलियन मतलब 8 करोड़ एकड़ इंडिया का सस्टेनेबल या ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट होने को तैयार है। लेकिन दिक्कत क्या है कि पेनलेस सॉल्यूशन नहीं है। अब पेनलेस का मतलब ये नहीं है कि देखिए पेन तो होएगा ही होएगा जब भी आप किसी भी चीज को चेंज करते हैं, लेकिन उस पेन का आउटकम अगर अच्छा हो तो इंसान उस पेन को बियर कर लेता है। तो जैसा सर ने कहा, वन ऑफ द पीपल सेड कि भाई व्हाट इज दैट 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस व्हिच वी नीड टू डू, व्हाट इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट and how that cost will change over years is something when you do the commercials of any new endeavor or activity you need to know कि भाई मेरी ये वन टाइम कॉस्ट कितनी है, मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है, मेरा रेवेन्यू कितना आएगा और उसके बेसिस पे मेरा प्रॉफिट अगर आज की डेट में 50,000 या 30,000 पर एकड़ बन रहा है, क्या 30 का 50 60 या 70 होएगा कि नहीं होगा। तो और ये कोई जानने की बात नहीं है कि अभी जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही हार्मफुल है। आई थिंक इसको लेके मेरे ख्याल से किसी को कोई वो आपत्ति नहीं होगी। हम अपनी लैंड को खराब कर रहे हैं 100%। इंडिया की 97% लैंड में ऑर्गेनिक मैटर 0.3 से 0.4 के आसपास है। और जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये ऑर्गेनिक मैटर जंगल में होता है 7%, 8%, 10%। मतलब जो आइडियली होना चाहिए उसका 1/30 और 1/40, उसका 2% 3% पे है। मतलब जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, बाकी सब पैरामीटर्स भी खराब है, पीएच वो खराब है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो खराब है, वो सब तो है ही है। बट जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ कितनी वो खराब है, वो इससे आपको पता चलता है। हवा, जो कार्बन आपका मिट्टी में दबना चाहिए था वो हवा में जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कुछ और नहीं, वो यही है। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जिनको नहीं पता हो कि जो कार्बन मैटर जो हमारा सॉइल में होता है, वही कार्बन मैटर जब सॉइल की बजाय हवा में पहुंच जाता है तो एक्सेस कार्बन और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को ही आप इसे, जो तापमान बढ़ रहा है, जो क्लाइमेट के चेंजेस हो रहे हैं, कहीं पे बहुत बारिश हो रही है, कहीं पे बहुत बर्फ आ रही है, कहीं पे बहुत गर्मी है, कहीं बहुत सर्दी है, ये सब उसके इफेक्ट्स हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग 1 एकड़ में एक साल में कम से कम 1000 किलो से लेके 2000 किलो मतलब 1 मीट्रिक टन टू 2 मीट्रिक टन कार्बन को सिक्वेस्टर करता है। ये तो इसके साइड इफेक्ट हैं, ये इसके मेन वो इफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब इसका क्लाइमेटिक इफेक्ट बहुत हाई है। और ह्यूमन हेल्थ इसलिए कि भाई अगेन मतलब आई थिंक ऑल ऑफ अस नो, बट जस्ट टू एम्फसाइज कि हम जितना जहर हम अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स में डालते हैं, अगर आपको उसकी वाकई में जानकारी लग जाए, आई एम श्योर इसी सेशन में 20 में से 10 लोग कल से कई फ्रूट्स को खाना ही बंद कर देंगे। जिसमें आपका वो टॉप पे हो गए, अनार हो गया, आपका अंगूर हो गया, ठीक है, आपके जो लाइट स्किन वाले जो होते हैं फ्रूट्स, वो सिट्रस हो गया। इसमें इतना पेस्टिसाइड डलता है, इतना पेस्टिसाइड डलता है कि यू कांट इवन इमेजिन। ऑन एन एवरेज 40 to 50 स्प्रेज पर क्रॉप इन अराउंड 2 to 3 months टाइम। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमारे जो सॉल्यूशन है उसके
उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। I am listening to my echo. So am I clearly audible to everyone? Just to ensure, because You're audible. okay, clear. ठीक है। तो हमारे जो सॉल्यूशन है उसके 3 एस्पेक्ट हैं। ये मेरी आवाज इको हो रही है, तो या तो किसी का स्पीकर या सेशन, No, तो अलग-अलग Dilip's, वो डिवाइसेस है। yeah, दे Dilip's speaker is switching on. I'm not sure if he's trying to say something. Is it? No, at times when you have the session open from 2 different devices, then the speaker from the one is picked by the microphone of the other and it creates an echo. I think it's okay now. Okay, great. Right. Thanks. Yeah, so our solution के ना हमारे वो 3 पार्ट्स हैं। एक हो गया आपका ट्रेनिंग और एजुकेशन, ये जो हम कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बिकॉज़ इसको समझे बगैर आप अपनी प्रैक्टिस को सक्सेसफुली रन कर नहीं पाएंगे, बिकॉज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग का सोचने का तरीका फंडामेंटली अलग होता है। दूसरा हो गया एग्री इनपुट्स, कि भई आपने बोल तो दिया यूरिया बंद कर दो, डीएपी बंद कर दो, पेस्टिसाइड बंद कर दो। लेकिन बंद तो हमने कर दिया, बट हमारी मिट्टी में जान नहीं है। अब मिट्टी में जान नहीं है तो प्लांट को न्यूट्रिशन तो चाहिए। वो न्यूट्रिशन फिर कहाँ से आएगा, जिसको हम बोलते हैं एग्री इनपुट्स, ठीक है? फिर तीसरा सपोर्ट का मतलब है कि भई मैंने माल भी परचेज़ कर लिया, मैंने समझ भी लिया, बट जब मैं एक्चुअल फील्ड में काम करता हूँ, उस वक़्त मेरे ज़हन में दसियों क्वेश्चन्स आते हैं। जब मुझे उस वक़्त हेल्प की ज़रूरत हो, तो क्या आपकी टीम से कोई मेरी हेल्प करेगा? क्या कोई फ़ोन पे अवेलेबल है? क्या कोई मुझे बताएगा कि ऊर्जा जल कितने परसेंटेज में डालना है? कोई मुझे बताएगा कि फफूंद भक्षक इस पर्टिकुलर फील्ड में जिसके ये पैरामीटर्स हैं, किस वो क्वांटिटी में डालना है, कितने स्प्रेज़ करने हैं? तो इन सब के लिए हमारी सपोर्ट्स ये सर्विसेज हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, किसान संवाद है, फ़ोन नंबर्स हैं, हेल्पलाइन्स हैं, और हमारी मोस्टली जो एजुकेशन का पीस है और सपोर्ट सर्विसेज का पीस इज़ ब्रॉडली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दैट मीन्स दैट मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सोचना पड़ रहा है। हम कॉस्ट भी बस इसलिए रखते हैं एट टाइम्स, अब जैसे इस कार्यक्रम की हम 100 या 200 रखते हैं, ताकि हमारे पास सिंसियर लोग ही आएँ। बिकॉज़ अगर आप फ्री रख देते हैं ना, तो फ्री की कोई वैल्यू होती नहीं है। इसलिए हम लोग इसमें 100, 200, 300 बस इतना ही रखते हैं, जिसमें हमें वो लोग आएँ जो वाक़ई में सिंसियर हैं, वरना फिर वो भीड़ करने का कोई एडवांटेज नहीं होता, राइट? तो इसमें 10 लोग आएँ, चाहे 5 लोग आएँ, चाहे 15 आएँ, लेकिन वो सिंसियर हो, who really want to understand, have the genuine curiosity and want to act on the understanding which they are going to get through these sessions. Again, just to give you an idea कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं। अब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो मार्केट में आपको मिलते नहीं, वो मिल जाएँगे, अलग-अलग नाम से होंगे, वो होंगे, इट्स ओके। बट प्रोडक्ट फॉर द लैक ऑफ एजुकेशन और फॉर द lack of services doesn't really mean much, because आप अगर आयुर्वेदिक की दवाइयों को एलोपैथिक के फॉर्मूले में फिट करेंगे, तो ना एलोपैथी काम करेगी और ना आयुर्वेदिक आपको काम करेगी। तो वन टर्म विच ऑल ऑफ अस शुड अंडरस्टैंड, कि भारत की एक बहुत अच्छी परंपरा है आयुर्वेद की। उसी आयुर्वेद का एक शूट होता है जिसे हम कहते हैं वृक्ष आयुर्वेद। तो यहाँ जैसे हैं अपने लोग, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल मोर इंटरेक्टिव, वृक्ष आयुर्वेद को लेके सबकी जानकारी है, मतलब सब लोग जानते हैं कि वृक्ष आयुर्वेद क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, है सबको जानकारी वृक्ष आयुर्वेद को लेके? नहीं, not me. अच्छा, not. Okay. Yeah, I think even those who know only know some part of it, or they might have heard. But again, to not really go into the technical details of it, but वृक्ष आयुर्वेद के प्रिंसिपल वही हैं जो अपने नॉर्मल आयुर्वेद के हैं। इंसान को मजबूत बनाओ, इंसान की इम्यूनिटी को मजबूत बनाओ, ताकि इंसान अगर मजबूत है अंदर से, तो चाहे उसे वायरस आए, चाहे फंगस आए, चाहे आपका कीट आए, चाहे इल्ली आए, चाहे माइट्स आए, आप हर चीज को विथस्टैंड कर लेंगे। और हमने आज से सिर्फ 4 साल पहले या ये कोविड के टाइम पे देखा है कि जो दिखने में बहुत मजबूत लगते थे, उनको हुआ, और बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए, और कई लोग जो देखने में नॉर्मल लगते थे, वो आराम से इस फेज़ को निकाल गए।
तो वो एक फेज था जिसमें हमने इंसान की अंदर की मजबूती को मेजर करने का एक आपको वो जरिया मिल गया। ऐसे ही वृक्ष आयुर्वेद का प्रिंसिपल बिल्कुल उस पे है कि इंस्टेड ऑफ कारपेटिंग द होल अर्थ, लेट्स वियर द स्लीपर्स, लेट्स मेक प्लांट हेल्दी, एंड हाउ टू मेक द प्लांट हेल्दी इज थ्रू द राइट न्यूट्रिशन। अगर प्लांट को न्यूट्रिशन अच्छा है तो प्लांट खुद ही विथस्टैंड कर लेगा, चाहे वो क्लाइमेटिक चेंज हो, चाहे वाटर कंजम्पशन हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, ओलावृष्टि हो, ठंड हो। अगर इंसान मजबूत है तो उससे कहीं दिक्कत नहीं होगी, ऐसे ही अगर प्लांट मजबूत है तो उसे कहीं दिक्कत नहीं होगी। बस यही मेन प्रिंसिपल है जो एलोपैथी और आयुर्वेद में जो फंडामेंटल डिफरेंस है। आयुर्वेद ने आपको अंदर से मजबूत करना है और एलोपैथी ने आपको सिम्टम्स को एड्रेस करना है, या कुछ हो जाए तो उसको ठीक करना है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, राइट? क्योंकि आपका अगर एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, उसमें आपको हॉस्पिटल ही जाना है, दैट्स ओके। बट उसके अलावा अगर हमें अपनी बॉडी को मजबूत करना है तो हमें चाहे हमारे स्पाइसेस हो, चाहे अदरक हो, चाहे शहद हो, चाहे मुलेठी हो, हमारे पूरे आयुर्वेद में 85 ऐसे सोर्सेज हैं जो प्राकृतिक सोर्सेज हैं, जिनको खा के हम अपने शरीर को, बॉडी को मजबूत कर सकते हैं। हम करना चाहते हैं कि नहीं, वो फिर एक अलग बात है। तो योग, आयुर्वेद, ये सब हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें प्लांट और इस केस में भी हेल्प करते हैं, वही हमारा प्रिंसिपल है। तो आप ये देखेंगे जैसे साइड में नेटिव फॉर्मुलेशंस जो हैं, ये फॉर्मुलेशन हमारे नहीं है, ये हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं। जैसे आप हमारी साइट पे जाए ना, तो वहां पे आपको कई इस तरीके के पुराने अपना लिटरेचर दिखेगा, जिसमें गुल्म वृक्ष आयुर्वेद करके बुक है विच इज रिटन बाय सुरपाल। कश्यपी ऋषि सूक्ति है जिसमें कश्यप ऋषि ने वो कृषि को लेकर लिखा है। वृष्टि विज्ञान है, व्हाट इज द साइंस ऑफ रेन्स, राइट? तो रेन फेड है, इवन नाउ अराउंड 60% ऑफ द लैंड इन इंडिया इज रेन फेड। तो वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, वाटर को कैसे स्टोर किया जाए, प्लांट और मिट्टी की वाटर होल्डिंग वो कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए। ऐसे ही सबसे एक है ग्रंथ जो है कृषि गीता करके, ठीक है? और इनके ऑथर अब अपने को पता नहीं है, बट ये माना जाता है कि कृषि गीता वो ऋषि परशुराम ने लिखी थी। ऐसे ही जो आपकी गुल्म वृक्ष आयुर्वेद है वो सुरपाल में 8th सेंचुरी में थी। इवन वृक्ष आयुर्वेद का फर्स्ट जो लिटरेरी मेंशन आता है वो आपका वो चाणक्य अर्थशास्त्र में आता है, और 3rd BC में। तो यू कैन अंडरस्टैंड, और इवन वृष्टि विज्ञान इज अगेन ऑथर्ड बाय मुनि नारद। सो इस तरीके के बहुत सारे, अब क्या है कि ये उस वक्त में लिखे गए, बहुत सारी चीजें हम नहीं समझ पाएंगे, बट उसके कई अच्छे एस्पेक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ द लोकल फॉर्मुलेशंस, जो हमने अलग अलग नाम से, जो नाम अपने इंडिया में लोग समझ सकते हैं, वो हमने यहाँ रख दिए हैं। ये हमारे बेचने का आइटम नहीं है, ये भस्म रसायन, जैव रसायन, अन्न द्रव्य रसायन, षड्रस। षड्रस आपकी लस्सी और आंवला का मिक्सचर होता है। भस्म रसायन आपकी अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी का मिक्सचर होता है, जिससे आपका ये रेडिकल्स और वो सब मिक्स होते हैं, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिशन भी होता है। जैव रसायन इज नथिंग बट अ फर्मेंटेड सॉल्यूशंस यूजिंग डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बनती है, that is one, nothing was to create that. Anna Dravya Rasayan is something which you do under the ground. It helps greatly in the root growth and all. So apart from what we sell, there is a whole rich literature which we refer to and which we get inspired from and which we have converted or eased out just for ease of explanation कि भाई अगर आप करने को तैयार हैं तो हमारे ही प्राचीन परंपराओं में बहुत सारे इस तरीके के आपको ज्ञान मिल जाएगा जो आपके काम का है, ठीक है? तो बाकी सब हमारे, अब जैसे मिट्टियां हैं, अगेन मिट्टियां हमने कौन सी बनाई हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारी मिट्टी में मैक्रो न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कम है। और हमें ये भी पता है कि मध्य प्रदेश में जो आपकी लाल मिट्टी मिलती है उसमें आपका आयरन और ये सब सल्फर हाई होता है। ऐसे ही आपकी
येलो मिट्टी जो होती है उसमें सल्फर और बाकी के न्यूट्रिशन अच्छे होते हैं। जो राजस्थान में आपकी जिप्सम मिलती है उसमें आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छा होता है। जो आपकी वोल्केनिक सॉइल होती है, जो ग्रीन सैंड बोलते हैं, उसकी आपकी कैटायन एक्सचेंज वो कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने इन सबको एक पैकेज में लाके, बिकॉज़ अगर आप इंडिविजुअली ये सब परचेज़ करेंगे, तो आपको दुगना-तिगना या चौगुना भी कॉस्ट आती है, बिकॉज़ एक तो ये है कि आपको ट्रकलोड परचेज़ करने पड़ते हैं, ट्रकलोड की किसी एक सिंगल फार्मर को रिक्वायरमेंट ही नहीं। या होती भी है तो आप नेगोशिएट करने जाओगे तो यू कांट रियली डू दैट। सो व्हाट वी हैव डन इज टू negotiate good rates, bundle in the logistics cost and offer these to accelerate the process of nutrition supplement. जैसे हम लोग न्यूट्रिशन सप्लीमेंट करते हैं तो these soils are the nutrition supplements of the soil, right? So we'll come back to all these things. Likewise, I'll just spend a minute in terms of the technological tools, right? तो सॉइल टेस्टिंग किट्स हैं, जैसे आजकल बहुत अच्छी अच्छी किट्स आई हैं, उसके अलावा लैब्स भी हैं। तो वी हैव अ टाई अप विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च, जहाँ से हम लोग सॉइल की कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग करवाते हैं, द फिजिकल, द केमिकल, द न्यूट्रिशन, द बायोलॉजिकल टेस्टिंग। All these things are equivalent to your X-ray and MRI and blood test which you do for yourself in hospital, and they help us in terms of uh, recommending it to the farmer on what is lacking in the soil and how to address that. Okay. IoT, satellite imagery, blockchain AI, I'm just letting it go for now, but we are using all these tech to ensure that all aspects of the solutions are being addressed. Just one thing which I would like to highlight is the anaerobic bags. Again, a great tool which significantly brings down the agri input cost, और आपको खेत की ही जो वेस्ट होता है वो ही आपको कार्बनिक मैटर बन के आप अपने खेत में वापसी डाल सकते हैं। ग्रेट इनोवेशन डजंट कॉस्ट मच। 10-20 हजार से स्टार्ट होके 50 हजार का बैग आता है, बट ये आपका 10 साल चलता है, ठीक है, और आपकी एग्री इनपुट की कॉस्ट को वक्त के साथ साथ बहुत कम कर देता है। Soil microbial kits and all. So these are the things. Again, all these microbial kits are pertaining to the biodiversity or the microbes which you need to have in the soil, right? So just to let you know, and I'll spend some time here. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नॉन ऑर्गेनिक में एक सबसे बड़ा अंतर जो होता है वो होता है सॉइल की बायोडाइवर्सिटी। और आप उसको ऐसे समझिए कि हमने जो खाना खाया, हमारा अगर पाचन अच्छा नहीं है तो उस खाने की कोई वैल्यू नहीं। और जब हम कहते हैं कि पाचन अच्छा नहीं है तो उसका क्या मतलब है? हमारे पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो बैक्टीरियल ठीक से काम नहीं कर रहे, तो आप चाहे कुछ भी खाइए, इट विल बी गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। हम इस बात को मानते हैं, राइट? कि भाई हमारा बैक्टीरिया जो है पेट में, वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है। वो जो ब्रेक डाउन करता है वो ही ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में जाता है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ये एक सिंपल सा साइंस है। यही सिंपल सा साइंस आपका प्लांट के केस में होता है। हम न्यूट्रिशन मिट्टी में डालते हैं, बट मिट्टी से एब्जॉर्बेबल फॉर्मेट में नहीं होता। इसका मतलब somebody has to work on that। ये जो आपके माइक्रोब्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया और दिस फिक्सेशन बैक्टीरिया और सल्फर फिक्सेशन बैक्टीरिया, और इसमें और तरीके के आपके फंगस भी होते हैं, द गुड फंगस। सो देयर आर गुड माइक्रोब्स एंड देन देयर आर बैड माइक्रोब्स। Bad microbes get you the diseases, good microbes help you in absorbing the nutrition। ये दोनों टाइप के आपके चाहिए होते हैं। तो आप न्यूट्रिशन डालते हैं वो एक चीज रही, न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करते हैं वो आपके बैक्टीरिया करते हैं। वो बैक्टीरिया को हम माइक्रोब्स बोलते हैं या फंगस होता है उसमें, द गुड टाइप, एंड दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी अपार्ट फ्रॉम द न्यूट्रिशन। और ये सब आईसीएआर ने ये सब टेक अराउंड 25-30 साल से डेवलप कर रखी है, बट लोगों को इसकी समझ और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि इसके साथ वो कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी होते हैं। Your soil pH should be good for the microbes to act। अगर आपकी सॉइल का pH 6.5 से कम है तब भी दिक्कत है, अगर आपका pH 7.5 से ऊपर है वो तब भी दिक्कत है। जो साइंस के बैकग्राउंड के वो इस बात को समझते होंगे। सॉइल कैन नॉट बी एसिडिक एंड सॉइल कैन नॉट बी बेसिक।
If these conditions are not met, then any kind of microbe and nutrition आप कितना ही उसमें डाल दीजिए, it will not work, right? उसी के साथ आपकी दो और वो पैरामीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, which need to be in sync. All these things put together is what we call as a soil balancing. So soil balancing means जो soil के technical parameters हैं, अगर वो आपके बैलेंस नहीं है, तो आप कितना ही नाइट्रोजन डाल लो, फास्फोरस डाल लीजिए और पोटेशियम डाल लीजिए और सल्फर और मैंगनीज और कैल्शियम और मैग्नीशियम और बोरोन, none of it will work if your soil is not balanced. इसलिए जो 80-90% किसानों को जो दिक्कत होती है कि भी हमने बहुत सारी चीजें डाल दी बट कुछ काम नहीं कर रही, बिकॉज द सॉइल इज नॉट बैलेंस्ड. बस उसका सिंपल सा ये वैसे ही है कि मैंने बहुत सारा खाना खाया, मैंने न्यूट्रिशन खाया, फ्रूट्स खाए, सब्जी खाए, लेकिन अगर आपके बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया ठीक नहीं है, देन नथिंग इज गोइंग टू वर्क. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक. अब नॉन ऑर्गेनिक और केमिकल में क्या रहता है, यूरिया और डीएपी जो आप डालते हैं, इट इज काइंड ऑफ अ स्टीरॉइड फॉर प्लांट्स. वो सीधा वाटर सॉल्युबल फॉर्मेट में होता है, पानी है, पानी के ऊपर आपने डाल दिया, वो वाटर सॉल्युबल फॉर्मेट में हो गया, पानी ने, प्लांट ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया. बट प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट अ बाईपास मैकेनिज्म, दिस इज नॉट हाउ द नेचर वर्क्स. नेचर वर्क थ्रू माइक्रोब्स. एक हमारा बहुत अच्छा है श्लोक नहीं, एक सूक्ति है, जिसे हम कहते हैं जीवो जीवस्य जीवनम. इसका मतलब है कि जीव से ही जीवन को, जीव से ही जीवन है. इसका मतलब हमें जो पुष्टि मिलती है या खाना मिलता है वो माइक्रोब से मिलता है. तो सूक्ष्म जीव जो हैं वो ही हमारा फूड को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. Same applies to our bacterial gut, same applies to the biodiversity or microbes in the soil. इसके अलावा आप जो ये आपके सप्लीमेंट्स होते हैं वो आप खा तो सकते हैं, बट आप जिंदगी तो नहीं निकाल सकते, राइट? कि भाई मैंने 4 टैबलेट मॉर्निंग की ली, 4 टैबलेट रात की ली और काम चल गया, है ना? आपको प्राकृतिक तरीके से फूड और वेजिटेबल ही खाने हैं. इसका मतलब है कि योर नेचुरल प्रोसेस हैज टू बी अलाइव एंड वर्किंग, एंड द सेम नेचुरल प्रोसेस इज मिरर्ड इन द सॉइल एज वेल. So soil balancing with the soil biodiversity is what fundamentally differentiates from the organic farming from the non-organic, right? Again, I'm just simplifying stuff. I'm not saying that this is what all it is. We can go into the technical factors of it, but main factor, soil के पैरामीटर सारे बैलेंस होने चाहिए. और उन पैरामीटर्स का मतलब है कि भाई उन पैरामीटर्स का मतलब है कि भाई वही जो मैंने आपको बताया कि सॉइल टेस्टिंग में आता है आपका ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर, cation exchange capacity, the pH of the soil, the NPK of the soil, the micronutrition of the soil. This is where we need to work from if we really want to be successful. It is painful, it is new, but जैसा आयुर्वेद का प्रिंसिपल होता है कि भाई पहले पहले आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन वो आपकी आगे की जिंदगी बहुत आसान कर देती है ना? तो आज सुबह मुझे ये लेक्चर करना था, मेरा गला खराब था, तो मैंने मुलेठी ढूंढी, है ना? तो मुलेठी को चबाने में दिक्कत होती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शाम तक मैं आराम से बात कर पाऊंगा और आज का दिन अच्छा हो, ये निकल जाएगा. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. वी नीड टू गेट बैक टू द रूट्स to really understand how the science of soil works. Once you understand it and practice it, तो 1 साल की मेहनत है, 1 साल के बाद आपका एग्री इनपुट कॉस्ट भी कम आएगा, आपकी फार्मिंग भी आसान हो जाएगी और आपका जो न्यूट्रिशन और हेल्थ जो एड्रेस होगा, इट इज अनपैरेलल्ड. यू कैन नेवर एवर हैव दैट इन द केमिकल बेस्ड फार्मिंग, बिकॉज वहां हम सारे नेचुरल प्रोसेस को बाईपास करके सीधा स्टेरॉइड पे डालते हैं. तो आपकी फसलें तो हरी भरी दिखेंगी, लेकिन हरी भरी फसलों पे कुछ एक्शन होएगा नहीं. मतलब वो बस देखने को हरी है, बट अंदर तो जिसको हम बोलते हैं कि वो ये केमिकल फ्री और रेसिड्यू फ्री, वो बेसिकली न्यूट्रिशन फ्री
भी होता है, ठीक है। सो लेट जस्ट मूव टू द नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अक्रॉस द कंट्री काम करते हैं, हर स्टेट में काम करते हैं, कहीं पे हमारे ज़्यादा हैं फार्मर्स। अब तक हम 13,500 फार्मर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, और टोटल रजिस्टर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे साथ एंगेज होने में ऐसा नहीं है कि आपको खर्चा करना ही करना है। अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास टाइम है, अगर आप नहीं खर्च करने में इंटरेस्टेड हैं, इन दैट केस जो हमारे नेटिव फॉर्मुलेशंस हैं, जो ओपन सोर्स हैं, वो वाला रास्ता भी है। बस ये रहता है उस रास्ते में 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, और हमने एक और वो रास्ता बनाया है जहां आप ऑर्गेनिक कन्वर्शन 6 टू 12 मंथ्स टाइम फ्रेम में अचीव कर सकते हैं। हमारा काम जो है वो अक्रॉस द कंट्री अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूशंस ने ये रिकॉग्नाइज किया है। तो वीसा फाउंडेशन, आइकिया फाउंडेशन, वाधवानी फाउंडेशन, वी आर वर्किंग विद लॉट सच फाउंडेशंस। हम लोग इंक्यूबेटेड है आईएम लखनऊ और आईआईटी मंडी में। वी आर आल्सो वर्किंग विद संकल्प फोरम एंड रेन मैटर। ऑल ये इंडिया में अच्छे-अच्छे फाउंडेशन और प्लेटफॉर्म है, में हमारे जैसी ग्रीन और सस्टेनेबल कंपनीज को हेल्प और सपोर्ट। हम लोग इसके अलावा अलग-अलग सिटीज में कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स भी रखते हैं, बिकॉज़ जैसे कर्नाटका में हमारे काफ़ी फार्मर्स हैं, हमारे तेलंगाना और आंध्रा में हैं, बट दे वांट अ फिजिकल कनेक्ट एज़ वेल, तो हम 2 दिन का या 3 दिन का कार्यक्रम रखते हैं वहाँ, और उसमें हमारी टीम वहाँ रहती है, और हम वहाँ फार्म विज़िट भी करते हैं, ऑन द स्पॉट वो असेसमेंट। तो ये सब चीज़ों से वो किसान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और हमारा भी ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मतलब हमारे पास 5-7 फार्म बैंगलोर के आसपास हैं। जब से हमने ये कॉन्टैक्ट प्रोग्राम अराउंड 6 मंथ से स्टार्ट किया है। तो बैंगलोर और हैदराबाद ऑलमोस्ट एवरी मंथ होता है, अहमदाबाद ऑलमोस्ट एवरी मंथ होता है, और बाकी सिटीज़ में भी पुणे, इंदौर, चंडीगढ़, जहाँ-जहाँ हमें मिल जाता है। आईआईटी रायपुर और आईआईटी भिलाई में हमने 2 ये कार्यक्रम किए। उस तरीके से अक्रॉस द कंट्री वी डू द कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स इन व्हिच आवर टीम कम्स। अगेन हमारी जो फाउंडिंग टीम है उसमें बिजनेस बैकग्राउंड के लोग भी हैं, उसमें टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के लोग भी हैं, और उसमें एक्चुअल हैंड्स ऑन फार्मर भी हैं। तो उसका मतलब ये है कि ये राकेश जी या पंकज जी जो आपसे बात करेंगे, या ओमकार जी, या इस तरह के अपने पास ये लोग हैंड्स ऑन ऑर्गेनिक सक्सेसफुल फार्मर हैं। तो हम कोई वो किताबी बात और सुनी सुनाई बात नहीं है, जो एक्चुअली में उन्होंने स्ट्रगल किया है 5 साल 7 साल, उसके बाद उनको सक्सेस मिली है। तो दे रियलाइज दैट दिस प्रोसेस इन विच दे स्पेंड अराउंड 8 years कैन बी डन बाय इन अ ईयर यूजिंग आवर मेथड्स, एंड वी आर कंटिन्यूअसली लर्निंग। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक पर्टिकुलर पद्धति से मैरिज कर ली है। अच्छी पद्धति है, बट उन अच्छी पद्धति में भी आपको कौन-सी रेलेवेंट है, सूटेबल है, और इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट है, वो वाला आपको करना पड़ता है, राइट? तो अगर आपको मोच हुई है कि हड्डी टूटी है, या सीवियर फ्रैक्चर है, ये डायग्नोसिस करके ही आपको सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना इज़ आवर गोल। जो हमें लगता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, जो हमारे फार्मर को काम आ सकती हैं, तो वी आर नॉट बाउंड बाय वन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। हम एसपीएनएफ की अच्छी प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं, हम टीसीवीटी की अच्छी प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं, हम एनारोबिक बैग को यूज़ करते हैं, हम मल्टी लेयर फार्मिंग भी ये रेकमेंड करते हैं। जो डिकम्पोज़र वाले जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सब हम करते हैं। जहाँ हमें लगता है कि किसान के काम की चीज़ है, और उससे पर्टिकुलर सेट ऑफ किसान को फ़ायदा हो सकता है, वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे सबका स्वागत है। Because the minute you get tied to a one particular tech, meaning thereby that you are shutting off from the good practices of other methods, and that is not the objective. I must say with this all confidence and modesty that no one particular tech is sufficient at this point of time in the organic farming space. That's why we need to keep our options and our minds open to whatever technology is there, and see that what is the best or most appropriate for my specific needs. तो ये बस, तो अब मुद्दे पे आते हैं कि भाई एक्चुअली में ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्टेप बाय स्टेप हैं क्या।
राइट? कि हम हाउ फॉर एग्जांपल जैसे इसमें मिक्स है क्राउड कि भाई कुछ लोग बिल्कुल जानना चाहते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है और कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि हमने स्टार्ट किया है, सक्सेस नहीं है, बट आपके साथ कैसे स्टार्ट करना है। उसका पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ठीक है? तो ये सेशन प्लीज अंडरस्टैंड दैट हम 1 या 2 या 3-4 घंटे के सेशन में वी कैन नॉट रियली गिव ऑल द ज्ञान. You yourself also will not be able to absorb all the ज्ञान. But this is just a start of an engagement. So you will 2 or 3 things which you are going to remember. Then you will do your own understanding or whatever is the say research, you will check with the people you know. Then you will have more questions and then we'll talk again and then we'll interact again. And I'm sure that in this, if we continue this process for 1 month, then you are going to get good confidence in terms of ability or confidence to start, right? तो हमारा YouTube है, हमारा एजुकेशन ऐप है और सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव हैं, जिससे ये सब आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका इनिशिएशन हो गया। फिर दूसरा हो गया फार्मर एंगेजमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम एजुकेशन कॉन्टेक्ट प्रोग्राम्स रखते हैं जिसमें अगेन वी कंडक्ट one day will be the classroom programs, another day would be the farm visit. तो फार्म विजिट का फायदा ये रहता है कि भाई आप एक्चुअली में देखते हैं कि हम किसी भी फार्म में जाएं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारे फार्मर का फार्म ही हो, बिकॉज वो लॉजिस्टिकली वर्कआउट नहीं हो पाता कि भाई हमने मान लीजिए अहमदाबाद में किया और हमारा फार्म 150 किलोमीटर पे या 100 पे है, तो आना जाना मिला के बोले किसी भी फार्म पे जाके हमारे जो एक्चुअल फार्मिंग एक्सपर्ट हैं वो मिट्टी देख के आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वहीं पे बता देंगे कि मिट्टी टाइट है कि मिट्टी लूज है, मिट्टी का पीएच कैसा है, मिट्टी के नीचे बायोडाइवर्सिटी है कि नहीं है, आपके यहाँ अर्थवर्म्स आते हैं कि नहीं, मिट्टी का कलर लाल है कि येलो है, उसके बेसिस पे व्हाट आर द थिंग्स। और इस तरीके के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आप कैसे देख सकते हैं अगेन फ्रॉम द फिजिकल पार्ट। Then step 2 is the soil testing, right, which we strongly recommend. जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाएं तो डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन भी करता है, बट वो ये कहता है भाई ये 4 टेस्ट हो जाएं तो आई कैन बी श्योर दैट व्हाटएवर डायग्नोसिस व्हिच आई हैव इज बीइंग वैलिडेटेड। तो उसमें सॉइल रिपोर्ट में आपके मल्टीपल एस्पेक्ट्स आते हैं कि भाई एक तो ये आता है कि भाई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज अगर आप किसी सरकारी लैब से करवाते हैं तो वो बेसिक रिपोर्ट वहां से आपको फ्री भी हो जाएगी या 50-100 में हो जाएगी। बट उससे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है, भाई आपके प्लांट को अगर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना है तो एनपीके की क्या पोजीशन है या माइक्रो न्यूट्रिशन की क्या पोजीशन है, वो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, क्या केमिकल यूज करते करते आपके सारे बायोलॉजिकल, और प्लीज अंडरस्टैंड 95% plus of the land or cultivable land in India is completely deprived of the biodiversity, means the acting microbes in the soil. Why? Because जो chemical based fertilizers हैं और pesticide हैं, इस जहर से सब वो मर जाते हैं। इसका मतलब 99% आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नील ही आई। हालांकि कई सबसे अच्छी सॉइल पता है कौन सी होती है? सबसे अच्छी सॉइल होती है जहां पिछले 10, 15, 20 साल से कल्टीवेशन हुई नहीं है। तो वी गॉट वन सॉइल क्लोज टू बैंगलोर जहां का सॉइल कार्बन आया था 2.1, which is the highest which we have seen among all the soil carbon. वरना आपका आता है 0.3, 0.4, 0.5, बहुत अगर कोई 5 साल से काम कर रहा है तो 0.6 और 0.7 बस। 1 होना is like a great achievement, 2 होना is like unheard of। और ऑफ कोर्स एज आई सेड कि जो आपका जंगल का होता है वो आपका 7-8 के आसपास होता है, ये 6 के आसपास होता है। तो बट आप ये मोटा मोटी मान लीजिए अगर आपका सॉइल कार्बन 1 है या 1.2 है या 1.5 है, इसका मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो फिर तीसरा हमारा स्टेप होता है गेट ट्रांजिशन। I'm sorry to interrupt, Raj. हाँ So it's actually 11:20 now. We have other sessions as well lined up. So can ठीक है, you?
faster. So what is the time which I have till 11:30? Till 11:30. ठीक है, and then after me it will be Omkar ji. Ritesh ji's. अच्छा, Ritesh ji. Okay, fine. Then अच्छा, तो Ritesh ji is there, meaning thereby that all the technical aspects can be taken care by him. So I'll say wrap this up in 10 minutes or so. Okay, ठीक है. ठीक है, तो थर्ड स्टेज हो गया हमारा एग्री इनपुट्स, बिकॉज बेसिस द सॉइल रिपोर्ट we identify that what is it which your soil is lacking, and then what is the prescription which we would like to give. Now if you buy agri inputs, now it is entirely in your hands कि भाई आपको वो ट्रांजिशन 6 months में करना है या 18 months में करना है या 36 months में करना है. अगर आपकी मान लीजिए टोटल कॉस्ट आपकी 1 लाख या 1.5 lakhs पर एकड़ आती है, नाउ इट इज एंटायरली अप टू यू हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट. डिपेंडिंग अपॉन द बजट एंड अफोर्डेबिलिटी व्हिच यू माइट हैव, वी कैन मेक सम ट्विक्स, एंड जो आपका एक्सेलरेटेड प्रोग्राम जो है वो आपका 2 या 3 साल में अकम्प्लिश हो सकता है बाय रिड्यूसिंग द, बट इट इंक्रीजेस द टाइमलाइन. ठीक है. एंड देन द पोस्ट सेल्स सपोर्ट, वेयर as I said, the WhatsApp group, the Telegram groups, the Kisan Samvad, all these are real-time responses platform where if you post a question, you are going to get a response in hours or at best a day, and not really in weeks or months. At least you have a way, and you might have some say numbers. So we have around 8 to 10 people who are working with us on a full-time basis, and we are going to connect you them, and you can say directly write to them or just check. I think in terms of what I need to cover, I think I am broadly done. So what I'll do is just to take the questions which the team might have, and and then so the way it is structured is that I just gave you a broad overview and say 25,000 feet view on how our Paddhati is different. Now Ritesh ji would give you exact differences कि भाई ऑर्गेनिक में हमारी पद्धति में क्या होता है या बाकी जो पद्धति है उनके क्या वो डेफिशिएंसीज हैं, उनको हमने कैसे एड्रेस किया है. अगेन दिस ज्ञान इज जस्ट फॉर यू टू मेक अ इन्फॉर्म्ड कॉल, एंड दैट इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर. देन द लास्ट सेशन बाय पंकज जी, ही इज लाइक आउट एंड आउट टेक्निकल गाय. आई एम श्योर दैट दोज हु आर not active into the farming may find it a little heavy on tech, but then please trust, you may not understand it completely, but you will at least have the confidence that you have reached the right set of people who will have answers to all your questions, be it the technical, be it the procedural, or be it in terms of the continuous input. So yeah, please, I'm open for questions if someone have, and happy to take. And then I just quickly talk about the market linkages. As I said that we are tying up with the e-commerce companies like Blinkit, Zepto, and we are working with other companies, one a Pune-based startup, and few more in the pipeline, जहां हम लोग किसान की आउटपुट को डिस्पोज ऑफ और हायर रेट्स पे सेल करवाने के लिए और उसकी इनकम इंक्रीज करने के लिए उस साइड भी काम करते हैं. तो that's it from my end. Thanks for being patient. Any question? We have got 5 minutes. I'm happy to take. You can write in the message box, or you can raise your hand and ask here. Please feel free. Sharad, let me ask a question. Yeah. Do you offer a model where, so say I'm a non-farmer, right? I have no background, no education, nothing. Right. So say you help me maybe acquire a land and maybe consult through maybe one crop, basically handhold, and say, okay, एक crop हो गया, अभी देखो तुम्हारा ये सब कुछ system है, and then you are in the on the phone, or if required on demand support. But can there be something like this model where you help me get the land and also sort of handhold me till the first crop, and then be on demand support? Step one, help you get the land? Not really, honestly, because it is a very, very highly,
a localized field. What we can do, for example, and we recently did that. Somebody in Hyderabad was looking for land. She came from Australia and she was looking for some 20-30 acre land. We just posted in the groups. Some people showed interest and we connected them and shared the numbers. So just a loose help could be offered, but not really in terms of vetting the land, the suitability of the land. But we can help you with that. If you identify 2 or 3 parcels, we can send someone who can actually help you in identifying if this is the right parcel. Because lots of geographical aspect which we can see, you cannot see, right? For example, Yes. somebody did that in Pune. It was a land close to the some seasonal river. And he was very excited. It looked very scenic, but we found out that it gets flooded in 3 to 4 months across the whole year. And then, you know, a land which is flooded for three months will not be cultivable for 6 to 8 months, right? So it doesn't. So yeah, so we can again provide you with help and support in a loose fashion, not necessarily in terms of identifying the land and offering that. In terms of helping you with a one crop, yes, we can do. In terms of providing the on-demand help, we always do. So step 2 and 3, 100%. Step 1, 25 to 30%. Yeah, on the first one also just need the scouting and all of that I can do. But just say, okay, this parcel is better as that compared to we the can other do. 2 parcels, so that the starting could be a little better. That's the help that I was thinking I may ask for. No, sure. As I said, that because of the fact that our farm expert visit like farms across the country, and they themselves are farmers themselves, lot of things are very, very visible and obvious to them, which may not be to any other person who is not really deep into it. So yeah, consider that on. We can help you with that. Sure, thanks. So anything else, or I'll pass on the baton to Ritesh ji. Ritesh ji, namaskar. Namaskar ji, namaskar. Thank you very much, Sharad ji, So for we the good insight to everybody on organic farming. yeah. So again, just to let you know, Ritesh ji is the original say visionary, right? Because I got into this. He's the one who got me into soul, right? So on that part, he should take the credit of getting me here. He has been into the organic, all types, organic output, organic input, organic vision, why organic is necessary. So he's the force of conviction. I'm sure that you will listen to his journey and then feel confident to really, delve into it. I'll pass it on to Ritesh ji. Ritesh ji, it's all yours now. Thank you, Sharad. नमस्कार जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार. मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा the background how the organic farming has evolved over a period of time. What were the challenges? सोल ने उन challenges को कैसे plug करा? And what are the solution we have come out with to enhance the productivity, enhance the fertility of the soil, and बाकी न्यूट्रिशन डेंस आउटपुट ये सब कैसे हमने अचीव करा, and what was the driving force behind all this. See, so I just brief you in 2-3 minutes about my journey on this. ये मैंने 2008 से this I conceived how to go about. I was thinking how to why there was food has a chemical. It came to my mind 2008 में आया कि भाई why these vegetables are so much laden with pesticides. I stopped eating certain vegetables which are highly laden with pesticides, like lady finger, जिनको भिंडी बोलते हैं आप, गोभी है, मिर्च है, तो ये these are highly, मतलब इसमें तो बिना केमिकल के होता ही नहीं उत्पादन. Even my daughter used to love them, but for 5 years till the time I am able to search it out, I never allowed them to eat it. So it came to my mind that 30-40 years or 50 years back, so human used to consume some way or the other chemical free food. ये तो पिछले 40-50 साल में हुआ, तो पहले कैसे होता था? So I started searching about it.
बट कोई क्लूलेस था मैं, तो मैंने कुछ ट्राइबल एरिया से वेजिटेबल सोर्स करा, विच इज सम 200 किलोमीटर्स फ्रॉम भोपाल। आई बिकॉज वहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स। तो आई यूज टू गेट इट इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, वहाँ से शिप आउट करके हम लोग यहाँ पे 6-7 बजे लाके वॉश करके यूज टू सेल इन द सोसाइटीज, माई सेल विद वन ऑफ माई कलीग ऑल्सो। तो इट वेंट फॉर सम 3-4 months, 5 months। आई यूज उसमें मेरे को कुछ आई यूज टू लूज लॉट ऑफ मनी इनटू दैट, बिकॉज वो वहाँ से बुलाना and selling it in the society, there was not much volume, but I was trying to develop the supply chain, how the supply could be generated. तो ये बहुत महंगा था। I was losing some 50K per month in this operation. उसके बाद I came, my daughter used to go in a school. One of the director of the school told me that, okay, you can run a farmers market here and we'll support you. So I was from a small city called Itarsi. We shifted to Bhopal for my children's studies and my brother's children's studies. So then, yes, he gave me the place. We were new to Bhopal. I could figure out some farmers in my native district. I went to MP Soka also at that time in 2008 to know about how are there any farmers there. So yet their authorities told me that there is no farmer, no single farmer. You develop a farmer and we will certify them, then you can sell the produce. This was the situation in 2008. There was not a single farmer there registered with MP Soka in 2008. There was, but somebody must be doing. ऐसा मुझे लगता था, तो I was able to figure out some 2-3 farmers in my district. We used to get them every week from Hoshangabad to Bhopal and started a farmers market every Sunday in the school. तो यहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ, फॉर्मल जर्नी। बेसिकली वी स्टार्टेड फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, कि हम इसको कैसे हमारे लिए हम अपने घर के लिए, हमारे फैमिली फ्रेंड्स के लिए केमिकल फ्री फूड ले सकते हैं। यही मुझे हर समय प्रॉब्लम था कि सप्लाई चेन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जितने भी ये फार्मर्स करते थे इनका प्रोडक्शन 40% हो जाता था। तो पजल वॉस कि उनका प्रोडक्शन 40% हो जा रहा है, फार्म पे प्राइसेस 2.5 times हो जा रही है, अल्टीमेट इन द मार्केट इट गोज बाय 5x, बिकॉज सप्लाई चेन की इनएफिशिएंसीज है, लॉजिस्टिक्स इनएफिशिएंसी, स्टोरेज की इनएफिशिएंसी है, एंड देन एवरीबडी नीड्स टू मेक सम मनी सो दैट सप्लाई चेन वर्क्स, so it become 5x to the customer. So there is output का फॉल है नीचे फार्मर के लेवल पे, और कस्टमर के लेवल पे प्राइस इतनी ज्यादा है कि nobody can adopt it. So this was a problem, challenge. It came to my mind how we can solve it. I don't know. At that time I was not aware of anything. So I start interacting with the farmers. I started some 40-50 farmers who were doing this SPNF practices. Subhash Palekar. He started in 1998, but he came with a narrative that it's a zero budget natural farming. Everything has been done at the farm level, and farmers does not has to spend a single penny from outside. And so, but the result is that the output goes down. And और अगर आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोग ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक की जो आउटपुट होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, सुंदर नहीं दिखती है, अच्छी नहीं होती है, दो इट इज एन ऑर्गेनिक। उसका रीजन है कि वो न्यूट्रिशनली डेंस नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी रहती है। अब फार्म में अगर आपने न्यूट्रिशन है ही नहीं, तो वो जो अल्टीमेट प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर भी न्यूट्रिशन नहीं है, इसलिए वो सुंदर नहीं दिखती है। तो मगर हमारे जो सूल का आउटपुट है वो न्यूट्रिशनली डेंस है, और वो केमिकल से भी अच्छी दिखेगी। अगर आप देखेंगे आगे तो उसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, ऑल बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन एंड सॉइल रिजुविनेशन टेक्निक्स विच सोल हैज कम आउट विथ। सो ये जो प्रॉब्लम है, फिर प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, बीमारियों को कोई सोल्यूशन नहीं है, बट जो प्रोडक्शन यूज टू कम आउट, तो फार्मर का लेवल पे फार्मर ऑलवेज यूज टू से कि हमारे लिए मार्केट नहीं है, मार्केट लाएं। अब 5x पे मार्केट कहाँ से लाएं? आप तुअर दाल 100 रुपए की है तो आप 500 रुपए में बेचना पड़ रहा है, तो मार्केट कहाँ से आएगा? आएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कोई भी नहीं खा सकता, आप लोग भी नहीं खाएंगे शायद, मेरे ख्याल से। मेरे घर में भी मैं नहीं खाता था, या मैं खाना चाहता था तो मेरे घर वाले
मुझे डिमोटिवेट कर देते थे, इतना महंगा कहाँ से लेके आओगे आप, कैसे खाओगे आप। तो ये जर्नी चली, और 2011-12 में मैंने स्टार्टेड द फार्मर्स मार्केट। आई स्टार्टेड 3 फार्मर्स मार्केट टू लर्न मोर अबाउट द सप्लाई चेन, टू गेट मोर कनेक्टिविटी द फार्मर्स, टू क्रिएट वॉल्यूम फॉर द फार्मर्स। और ये मॉडल भी इसलिए हमने करा कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाए, फार्मर्स के लेवल से डायरेक्टली आके दे पार्टिसिपेट इन द कंज्यूमर मार्केट, create a mandi, and yes, they can sell at their own prices. So I was more of a facilitator to them. The journey चलती गई, then I came to ये SPNF को तो मैं जानता ही था, फिर then there is a game called TCBT। हमको लगा कि TCBT ठीक ठाक टेक्निक हो सकती है, it works on the soil rejuvenation part, और उसमें भी कुछ कमियां थी। Then we learned about this bag, anaerobic bag from Dr. Maheshwari from Ahmedabad। So all these things were researched, and over a period of time we worked with microbiologists, biotechnologists, scientists जो इस फील्ड में सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। तो सोल इज पिक्ड अप, हैंड्स पिक्ड अप कि किस पद्धति में क्या अच्छा है। सब पद्धति में जो है SPNF है या TCBT है, व्हाटएवर द पद्धति, दे आर कुछ ना कुछ में अच्छा है, मगर बहुत सारे चैलेंजेस है। एडॉप्शन का प्रॉब्लम है, इतने सारे नेटिव फार्मूले बनाने रहते हैं तो फार्मर काम नहीं करता है। एक तो मैं जिन विलेजेस पे जिन फार्मर के साथ शुरू में 2008-9 में जुड़ा, आज उस फार्मर में वो फार्मूले से बनाते हैं, मगर वो आज भी सिंगल ही फार्मर है। 200 फार्मर या 500 फार्मर की कम्युनिटी में एक सिंगल फार्मर है, दो ही इज वेल टू डू, ही इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, उसको प्राइज में मिलता है हर साल लगभग, उसको विदेश जाने का मौका भी दिया है, but there is no change in the society. Others are not willing to do it because it's a very cumbersome process, very labor oriented है, और nobody has the motivation to do it. Everybody is going to, आज की जनरेशन में सब स्विगी जोमेटो से खाना बना के बुला रहे हैं, और घर में कोई बनाने नहीं चाहता, तो किसान भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। किसान has become lazy out, they don't want to work। तो हमारा चैलेंज ये था कि हम ऐसी पद्धति बनाएं जो इजीली अडॉप्टेबल हो, जो ये 5, 6, 7, 8 साल में कन्वर्जन का पीरियड है वो 3 महीने, 6 महीने, साल भर में हो जाए। क्या ये हो सकता है? ये हो चुका है सर। I must say that we have done it. We can convert into organic farm 3 to 6 months in a less than a year, depending upon the soil, maximum 2 years. सॉइल कैसी है आपकी, कितना ज्यादा प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। 3 से 6 महीना इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो 5, 6, 7 साल का काम है, वो कार्बन बैग जो है हमारा, जो नेटिव फार्मूला है उसका पूरा रिप्लेसमेंट है। आप उसको यूज करेंगे, आपकी सॉइल जिस दिन से उसका बैग का कल्चर आपके फील्ड में जाना चालू होगा, उस दिन से आपकी सॉइल ठीक होना चालू हो जाएगी। और जो हमारे सॉइल न्यूट्रिशन के साथ में डालना जरूरी है, और वो जितना हम अच्छा डालेंगे उतना तेजी से आपकी सॉइल के साथ वो काम करके बहुत अच्छा काम करेंगे। सो जितनी भी पद्धति है उसमें कुछ ना कुछ कमी है, एडॉप्शन की प्रॉब्लम है, और वो किसान को हाई लेवल पे, मास लेवल पे अडॉप्ट करने के लिए, ऑर्गेनिक के लिए मोटिवेट नहीं करती हैं। तो सोल हैज कम आउट विद ए कॉम्प्रिहेंसिव फुल स्टैक सोल्यूशन वेयर वी कैन नाउ से दैट हम आपके बजट में ही खेती करा सकते हैं। केमिकल, अगर आप 100 रुपए केमिकल में खर्च करते हैं, तो हो सकता है कुछ फसलों में हमको 120 करना पड़े, और कुछ फसलों में हो सकता है कि हम 80 रुपए में भी करा सकते हैं। डिपेंड अपॉन द सॉइल, डिपेंड अपॉन द क्रॉप। से फॉर एग्जाम्पल पोमोग्रेनेट के अंदर किसान, और मिर्ची के अंदर किसान जो खर्च करते हैं 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख खर्चा करते हैं। मिर्ची के अंदर तो 5 लाख रुपए एकड़ तक भी खर्चा करते हैं। दिस कॉस्ट कैन बी lower in our process. It could be 90,000 to 1 lakh, 1.25 lakhs. So against 1.5 to 2 lakhs, we are lower here. Again, in Chile, again, 1.5 lakhs to 5 lakhs, we will be lower here, maybe around 90,000, 1.25 lakhs. But in sugarcane, we can match the prices at 30,000 rupees per acre. Little bit here and there, थोड़ा सा हमको soil rejuvenation के लिए थोड़ा सा बजट लगेगा। But yes, what we can assure, we can be economical at the input side. We can work on the input side. We can rejuvenate the soil. And हम आपका कोई भी जो भी है किसान भाई हमारे साथ जुड़ता है, तो हम उसकी soil
3 से 6 महीने या मैक्सिमम 2 साल में ठीक कर सकते हैं। उसका सॉइल कार्बन 0.75 से 2% तक बढ़ा सकते हैं। हम उसका पीएच ईसी पूरा ठीक कर देंगे इस प्रोसेस से। हम आपके बजट में खेती करा सकते हैं। बजट में मतलब एट पार इन द केमिकल और लेस। जो आप केमिकल में खर्चा करते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा फ्री में खेती हो जाएगी। आप अगर हमारी भूमि खराब हुई है तो भूमि को ठीक करना पड़ेगा। वी वर्क ऑन ए सॉइल रिजुविनेशन। वी आर ए सॉइल रिजुविनेशन कंपनी एंड हम लोग न्यूट्रिशन खेती कराते हैं। तो हमारे 2 एस्पेक्ट हैं, सारे तरह का न्यूट्रिशन देते हैं और सॉइल को रिजुविनेट करते हैं और आपके सॉइल का माइक्रोबायोम ठीक करते हैं, जो कि शरद जी ने भी बताया है। तो दीज आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ अवर खेती वेयर वी वर्क अपॉन माइक्रोबायोम ठीक करना, न्यूट्रिशन डेंस, और अल्टीमेट आउटपुट इस चीज का, इस पूरी जो प्रोसेस का है वो न्यूट्रिशन डेंस आउटपुट है। जैसे आप चाहते थे कि भाई पहले 30-40 साल पहले कोई अच्छा खाना आपको मिलता था, वैसा हमारा जो आउटपुट है वैसा या उससे अच्छा क्वालिटी का फूड है सोसाइटी को मिलेगा हमारे थ्रू, अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एंड आपके बजट में हम लोग करा सकते हैं। जो भी फार्मर इसमें करना चाहेगा, हमारी टीम आपको उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए गाइड करेगी। यू कैन स्टार्ट विथ ए स्मॉल पैच 2-2.5 एकर्स। विल ऑलवेज सजेस्ट कि 2-2.5 एकर्स से चालू करें। लर्न इट, हाउ डज इट गो, क्योंकि नया चीज है, नए तरीके से पूरी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। हमारी टीम आपको हैंड होल्ड करती है, ट्रेन करती है, सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देती है। उसके बाद आप उसको लर्न करके यू कैन एक्सटेंड इट टू द अदर पार्ट ऑफ योर लैंड। तो ये हमारी एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें आप यू कैन जॉइन अस। धान, व्हीट, मक्का, ज्वार, शुगर केन, हल्दी, ginger, any kind of vegetables, all kind of fruits, spices. We can support tea, coffee. We can support in each and every crop because we don't work on crop. We work on soil. हम अगर आपका सॉइल ठीक कर देंगे तो आपका सब कुछ ठीक होने वाला है। सॉइल को ठीक करने के लिए हमारे पूरी प्रोसेस है। और हमारे जो न्यूट्रिशन है वो ये नहीं है कि हमको 2 बोरी डीएपी डालना है, 1 बोरी या 8 बोरी डीएपी डालना है। अब भाई डीएपी डालना है तो डीएपी की अवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। आपने डाल दिया 8 बोरी डीएपी में, पंजाब में डाल रहे हैं, मगर प्लांट को कितना मिला? 1 बोरी, 2 बोरी, बाकी मिट्टी में चला गया, वेस्ट है। भाई पहले तो 1 बोरी डालता था, 2 बोरी किसान डालता था, अब 8 बोरी तक पंजाब में डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं हो गया कि वो डीएपी ज्यादा डालने से प्रोडक्शन आ गया, वो अवेलेबल ही नहीं हो रहा है। उसकी अवेलेबिलिटी परसेंटेज बहुत कम है न्यूट्रिशन की, तो उसको ज्यादा डालना पड़ रहा है। वो जितना 1 बोरी डालता था उसमें से जितना परसेंटेज अवेलेबल होता था, अब वो 8 बोरी से अवेलेबल हो रहा है उसको, या आगे हो सकता है 10 बोरी से हो। तो मगर हमारे पास न्यूट्रिशन के जो सोर्स है वो अवेलेबल फॉर्म के हैं, बायो अवेलेबल फॉर्म के हैं, जो शरद जी ने शायद आपको बताया, नैनो पार्टिकल्स हैं। नैनो पार्टिकल्स आर 100% बायो अवेलेबल, जो प्लांट को 3 से 6 घंटे के अंदर न्यूट्रिशन सप्लाई कर देते हैं। तो वी वर्क ऑन न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, सॉइल रेजुविनेशन, माइक्रोबायोम मैनेजमेंट इन द सॉइल एंड द क्रॉप। यही हमारा इसका खेती का सार है। इससे हम लोग आपका तेजी से लैंड ठीक कर देते हैं। और खेती की कॉस्ट, अगर आज हमने केमिकल से चालू करी और हमारी भी मान लीजिए केमिकल में 100 रुपए और आपकी 100 रुपए है, तो नेक्स्ट ईयर इट विल बी 80 रुपीज, थर्ड ईयर इट विल बी 60 रुपीज, एंड इट कैन बी ए कांस्टेंट 60 रुपीज और 50 रुपीज, बिकॉज आपको न्यूट्रिशन देना ही पड़ेगा। न्यूट्रिशन देने के बिना ईल्ड नहीं आएगी, तो हमको न्यूट्रिशन देते रहना पड़ेगा, और न्यूट्रिशन हम देंगे तो ईल्ड अच्छी आएगी। तो ये दिस इज द समरी ऑफ अवर प्रोसेस एंड माय जर्नी टुवर्ड्स दिस ऑर्गेनिक। और इसी कारण से हम लोगों ने इसको प्रोफेशनल तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए वी फाउंडेड सोल इन 2021 एंड आई मेट शरद जी। ही इज एट टेक्नोलॉजी के बंदे हैं, फाइनेंस के बंदे हैं, तो वी वांटेड कि इसको हम लोगों तक पहुंचाए। तो ही जॉइंड हैंड्स विथ मी एंड वी हैव क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म टुगेदर। और बाकी सब लोग हैं, मिस रमा देवी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। Mr. Keval Desai is there, and our team, there full lot of guys are there, professional coming from the great institutes, learned people, and there are guys coming from farmers background, Mr. Omkar Rai, Mr. Pankaj Manda,
Rakesh, Vikram Singh from Haryana. They are all farmers who have created they have accomplished the model which we are proposing to do, or we are getting that to the society. They have already done it successfully. ये लोग आपको आगे जाके पूरी एक एक चीज बता सकते हैं. This process is continuously improving. We are trying to improve on the financial side. We're trying to improve upon the adoption side, trying to make it more easier for the farmers to adopt, making more economical as far as possible, and connecting also connecting the last dot, which is the market linkages, like making available the market to the farmers. That's the most important part. वैसे तो आपका कॉस्ट कम हो जाता है जनरली, जितने भी फार्मर्स हैं उनका हमारी खेती से कॉस्ट कम हो जाएगा. अगर आपका 100 रुपये केमिकल में खर्चा है तो आने 3 साल में वो 60 रुपये ही रहेगा, और आपका आउटपुट भी ज़्यादा आएगा. तो अल्टीमेटली कॉस्ट, यील्ड कॉस्ट जो है वो आप पर केजी कॉस्ट है आपकी कम है. बट अगर चूंकि ये एक आपने मेहनत करी, यू हैव थॉट अबाउट ए न्यू थिंग इज देयर एंड इट्स ए great quality food, everybody expects to get more, should get more price what the any other farmers are doing with the traditional agriculture. So let's come up with this platform. एक किसान कॉर्नर है हमारे उसमें, जहाँ पे आप directly you can list your product and we promote it. It's 2-3 months back, but it's still under development. उसके बाद then we have a e-commerce, क्विक कॉमर्स की कंपनी से टाइप है, शरद जी ने बताया होगा. ब्लिंकिट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारा नेशन वाइड टाइप हुआ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सप्लाई का. देन देयर इज वन मोर गाय who runs organic cloud kitchen, who wishes to run organic cloud kitchen. He is willing to buy dry items from us. So many more will follow over a period of time. It's a great and exciting journey. So Soul will be a platform where it will help farmers grow the food. It will help farmers to grow the nutrient dense food, reduce their cost, minimize the disease impact, rejuvenate the soil, and bring the nutrition dense food to the society through different channels, through e-commerce, quick commerce, cloud kitchen companies, bigger restaurants tie-up, or maybe to the international market. So this is what is the summary, what we do and we intend to do. So I sum up my thoughts and my ideas here, whatever I need to say. अगर आप लोग को लगता है कि अभी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो you can ask me on any of this. आपके माइंड में जो भी है, खेती के सवाल में, मार्केट लिंकेजेस के सवाल हैं, अगर आपको जो भी आपको जानना चाहते हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं. हेलो हेलो. You're audible, ji. हाँ जी, हाँ. कोई भी टेक्निकल अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा होता है, आई एम विलिंग टू आंसर. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, कुछ आपको शरद जी ने बताया भी है, बट आई कैन ब्रीफ यू अबाउट इट ऑल्सो. If you have any question, why there be increase in output, why it takes time to convert into organic, the process of organic, anything you wish to know, the budget, the financial part, if you wish to know, yes, I am willing to tell you about everything.
Seems to be no questions today. हाँ जी, Seems to be no questions today. हाँ, no questions today. So everybody is going to start with Soul. In that case, there is no question. Virendra ji, Harish ji, Dilip ji. Yeah, Harish ji. Hello, sir. Yeah. So, what will be the initial process to start with this organic farming, sir? The first process ये है कि आपका काय का खेती है? Pardon, sir? What crop do you grow? How much acres of land do you have? Mostly with the horticulture crops, sir. Main crop is the arecanut, coconut, and the mango. Okay, arecanut, coconut. And which district and state you are based out at? Yeah, I am from Karnataka. It is a Davangere district. Okay, Karnataka. तो फर्स्ट कितना एकड़ में करते हैं सर? Actually, altogether it is 30 acres. In Okay. that, 15 acres is the arecanut, Okay. and 5 acres is the coconut, and in 3 acres I have done the alternative mango. Okay. अभी करंट And इश्यूज other क्या is the अभी पूरा paddy. केमिकल से करते हैं आप? नहीं, आई एम ऑन एंड ऑफ प्रोसेस में हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ थोड़ा। अभी 1 साल से नेचुरल फार्मिंग में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसमें क्या करते हैं नेचुरल फार्मिंग? इनपुट तो खाली जीवामृत डाल रहा हूँ। अच्छा, जीवामृत डाल रहे हैं। हाँ। और कोई गोबर खाद या कंपोस्ट डाला है आपने? नहीं, अवेलेबिलिटी बहुत महंगा भी हुआ है और नहीं भी मिल रहा है। अच्छा, इसीलिए नहीं डाला है, अभी 2 साल से नहीं डाला। कंपोस्ट नहीं डाला है? नहीं डाला है। कितने एकड़ में नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं? अभी फिलहाल 5 एकड़ में ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, वो क्या उसका आपका रिजल्ट रहा उसमें? रिजल्ट इज नॉर्मल एज इट वाज बिफोर 2 years। और ये यील्डिंग भी घट रहा है। एक्चुअली यील्डिंग घट रहा है, इट्स गेटिंग कम हो डाउन। रहा है, घट रहा है मतलब यील्ड कम हो रहा है बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ नेचुरल फार्मिंग। ये पूरा एरिया में जो अरेकानट का पहले था, एक प्लांट से वी यूज्ड टू गेट अराउंड 30-40 kgs ऑफ बीटल नेट, रॉ बीटल नेट। नाउ इट हैज reduced to 20 kgs. Why? It is mainly this is an irrigated area. We don't practice the technical way of farming. We used to do the flood irrigation and all. Maybe I think that is maybe the one of the reason because of the leaching of the nutrients or something it may happen. Yes. तो अभी जीवामृत यूज करने के बाद आपका यील्ड घट रहा है और डिजीजेस की क्या? नहीं, यील्ड तो नहीं घट रहा है, इट इज स्टैग्नेंट। What you used to get the inflorescence of 5 to 6 before, now we are getting average of 3 to 4. Okay. And जो डिजीज का इम्पैक्ट है वो? डिजीज का इम्पैक्ट अभी लीफ का जो माइट्स होता है, सकिंग पेस्ट, वो थोड़ा है और दूसरा कुछ डिसीजेस नहीं है। और इन्फ्लोरेसेंस डाइबैक भी रहता है थोड़ा। इन्फ्लोरेसेंस डाइबैक। ओके, डाइबैक है, फंगस है। फंगस और सकिंग, सी ये फंगस और सकिंग पेस्ट क्यों? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इसका माइक्रोबायोम ठीक नहीं है और इसमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, सॉइल के अंदर बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं है। इसके कारण ये प्रॉब्लम है। और यील्ड भी आपको उसी कारण है, ठीक है? अगर हम इसको करेक्ट कर देते हैं, I want to correct now. हाँ, इफ वी कैन करेक्ट दैट। अभी अरेकानट पे आप लोग केमिकल में कितना पर एकड़ खर्च करते हैं? नहीं, अभी 2 साल पहले करता था। पर प्लांट आई यूज्ड टू स्पेंड नियरली 25 rupees. And how many plants in per acre? Per acre it will be around 550 in 9x9 spacing. Okay. So some 15,000 rupees per acre per year. Is it like that? Yeah, approximately. Pesticide and fertilizer both? No, it will be used to be only for the fertilizers. And pesticides? We never used to spend much on insecticide or pesticide. So recently it has been started a trend because we are getting a good price for arecanut. So there are many companies who are trying to introduce their products by saying that different types of diseases are there in the plant. They used to come into the field and they used to sell their products. They used to provoke the farmers to spray.
one fungicide and one insecticide. So this year I have now given spray just for once. Now right now it is in the inflorescence stage. It has crossed the inflorescence stage, and it is in the July, August we will be having the harvesting season. That will get matured in another 2 or 3 months. Still there are the inflorescence which are about to come out. Okay. So this can be done. This all can be corrected as say 15 to 20K or 25K पर एकड़ में हम लोग ये कर सकते हैं. आपके इसी बजट में कर सकते हैं. Your yield will go up. Diseases will get reduced. Soil will get start improving. है ना? These things can be done. The first step would be to know the soil. Get your soil test done. Even if at your place, whatever the lab, so you will let us know what is the. Yeah, we have the KVK here. I will get it done. You get the soil test done. Then second step will be you take one carbon bag, which will start from 2.5 acres से लेके 5-6 एकड़ तक आता है वो. उसके अंदर ऊपर गोमूत्र और जो आपका weeds है, वही that's the input for that. ठीक है. And the process of putting the inputs, I want to know, because I have got the sprinkler systems. So that is the only input तो आपको by hand ही डालना पड़ेगा. जो output है वो you can connect with your drip or whatever what do you call Venturi drip irrigation or the sprinkler. Venturi. Yeah, Venturi. I have got the injective system of by the हाँ, वो तो उससे लिक्विड आउटपुट आता है तो उसको आप उसको कनेक्ट कर देंगे तो आप खेत में चले जाएगा. हाँ, वो तो हो जाएगा, मगर I don't. It's very hectic to give it in the drip irrigation, so I have practicing with that sprinkler system. So whatever you do, you just connect that outlet through that sprinkler system, whatever. Yeah. But the only thing I want to know is whether the input should be given to the roots of the plants or to the whole area, or to the whole area orchard. You can give it to both ways. Yeah. If you can what it will do is it will start uptaking out the nutrition from your soil. Whatever salts are deposited, whatever bond has been made, everything will be taken out of it. Okay, usually the Arecaneter feeding roots will be just 1.5 to 2 feet, which will be around the plant. So the spacing will be the 9 feet between the two plants. It won't be a problem. We give 800 liters to 1,000 liters of biofertilizer will be taken out from that bag per month. And 3 to 6 months, your soil will start. Yeah, my intention is to regenerate whole soil, like whole land. I want my soil to get after regenerated. this session, you can connect with me personally. I'll guide you. Yeah. Okay. So धीरे-धीरे आप इसको ठीक करना चालू करेंगे और हम हमारा soil nutrition लेंगे and whatever nutrition is required, whatever microbiome is required, we will give it to you in your budget. So you will be able to work better, or you can see the result in 6 months. Yeah. Okay, that's fine. Okay. Thank you. Anything else? Anybody wants to know anything? So put your number in the chat box in case anybody wants to connect with you directly after this meeting. Also, they can connect. आपका number chat box में डाल दिया. I'll put my numbers in chat box. Okay. I've done that actually. You've done that. Okay. Okay. So my number is there in the chat box. Anybody wishes to connect with me on their specific crop, they can work with. Let me know, and I'll guide you as per your requirement. We can customize things for your requirements.
ठीक है रमा, so Omkar ji is there. I'll wrap it up and Omkar ji can take the session ahead, Sure. right? Yes. Okay. Thank you everybody. Omkar ji, I'll just introduce Omkar. Mr. Omkar Rai is a हाँ जी, star प्रणाम farmer. जी। हाँ जी, ये हमारे फार्मर हैं और इन्होंने इस प्रोसेस को पूरा अच्छे से करा है एंड ही इज हैविंग ग्रेट फार्म इन मध्य प्रदेश इन डिस्ट्रिक्ट सिवनी। सो आप अभी ये जो हमारे फार्मर हैं, आप इनसे समझिए इनकी जर्नी को एंड द निटी-ग्रिटीज ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है ओमकार जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद आप सबको। नमस्ते सभी को, मेरा नाम ओंकार राय है। जैसा बताया गया, मैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का किसान हूँ और मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ सोल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और मैंने सक्सेसफुली अपने खेत को सुधारा है और क्रॉप को लिया हुआ है। अभी हम चर्चा करेंगे कि हमने कैसे अपनी खेती को सुधारा है, अथवा कोई फार्मर स्टार्ट करना चाहता है तो वो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, अथवा क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, और सब में कैसे हमको काम करना है, इन सारी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सब संभवतः हिंदी समझ रहे होंगे। ऐसा कोई है जो मेरी बात को नहीं सुन पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है तो कृपया बताएं। सभी को हिंदी कंफर्टेबल है जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक नाम किसका है, Vivo V2356, आप चेक कर लीजिएगा रमा जी। हाँ जी, चेक करते हैं। हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं। वॉइस इज क्लियर रमा जी? हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, हम फार्मिंग स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले ये कंफर्म करते हैं या ये तय करते हैं कि हमको फार्मिंग कहाँ करनी है, जिस लोकेशन पर हमें फार्मिंग करनी है और जिस फार्म को हम ले रहे हैं उसका फार्म साइज क्या है, ये हमको फर्स्ट स्टेप पर जाना होता है। जब हमारा फार्म साइज क्लियर होता है तो हमें ये जानने की आवश्यकता होती है कि हमारे फार्म पर क्या क्या अवेलेबिलिटी है। खास करके सॉइल हमारी फार्मिंग का बेस है, तो हमारी सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से माइक्रोब्स हैं, कौन से बैक्टीरिया हैं, इसको जानने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही। एरिया से लेंगे वो वहाँ की सॉइल पर डिपेंड करता है, और 1 हेक्टेयर का मीनिंग होता है 2 पॉइंट क्रॉप के हिसाब से कलेक्ट करते हैं। सॉइल सैंपल कलेक्शन के लिए 1 बाई 1 हम सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे वो भी हम विस्तार से बताएंगे। पहले सॉइल सैंपल कितने एरिया का कलेक्ट करना है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी यदि 1 हेक्टेयर का भी फार्म है अथवा 1 एकड़ का भी फार्म है और उसका सॉइल डिफरेंट है, तो हमको सिमिलर सॉइल से ही एक सैंपल लेना होता है। यदि जहाँ सॉइल स्ट्रक्चर डिफरेंट है अथवा सॉइल कलर डिफरेंट है, वहाँ हमको अलग से सैंपल लेने की आवश्यकता होती है। हम जनरली सीरियल क्रॉप्स के लिए 2 फीट तक का सैंपल ले सकते हैं, वेजिटेबल्स के लिए 3 फीट तक का सैंपल ले सकते हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए हम 4 फीट तक का सैंपल ले सकते हैं। जब भी हम
है तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे टॉप लेयर का हम पहला 6 इंच का सैंपल लेंगे, उसके बाद दूसरा सैंपल अगेन 6 इंच का लेंगे। ये 0 टू 3rd सैंपल हम लेते हैं 12 टू 24 इंच का। 4th सैंपल हम लेते हैं 42 टू 36 इंच का। और हॉर्टिकल्चर में हम एक और सैंपल लेते हैं 36 के बाद 48 इंच तक का। जनरली सॉइल सैंपल अभी 36 इंच तक का ही लिया जाता है, लेकिन रूट जोन जब बड़ा होता है, डेप्थ में जाता है, तो हमें 48 तक का भी सॉइल सैंपल लेना चाहिए। सॉइल सैंपल लेने के बाद हमको, यदि हमने 1 हेक्टेयर में 7 गड्ढे किए हैं या 5 गड्ढे किए हैं, जनरली 1 हेक्टेयर में 7 गड्ढे होने आवश्यक है। 7 गड्ढों की भी दूरी का ऐसा ध्यान रखें कि हमारी बाउंड्री से कम 40 फीट अंदर की तरफ हमें गड्ढे खोदने चाहिए। और गड्ढे जिगजैग इस स्थिति में खोदना चाहिए कि पूरे खेत का प्रतिनिधित्व हो जाए, जिसका एक सैंपल बनने वाला है। हम ये समझते हैं कि हम जिस प्लॉट का सैंपल ले रहे हैं उसमें पूरे खेत की मिट्टी का प्रतिनिधित्व हो, ऐसी दूरियों पर अथवा ऐसे स्थानों पर गड्ढे खोदने चाहिए। सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम जब फाइनली तैयार कर रहे हैं सैंपल लैब में भेजने के लिए, तो जितने भी गड्ढे हमने खोदे हुए हैं उनकी डेप्थ वाइज सारी सॉइल को एक साथ कर लेना है। जैसे पहले गड्ढे से लेके 5वें या 7वें गड्ढे तक हमने ऊपर की 6 इंच की जो मिट्टी निकाली है, यदि वो मिट्टी एक सी है तो हमको एक साथ उसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद उसको बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद उसको फिर से मिक्स करके और लगभग 500 ग्राम तक का हमको सॉइल पैक करना है। अगेन 6 टू 12 इंच में भी सेम प्रोसेस करना है। जितनी गहराई तक 36 या 48 इंच तक हम ले रहे हैं, उसको हमको उतनी गहराई तक सारे सैंपल को मिला लेना है। ये ध्यान रखना है कि यदि कहीं पर भी मिट्टी का कलर अथवा मिट्टी का प्रकार बदल रहा है तो हमको उसको नहीं मिलाना है, उसको अलग से टेस्टिंग के लिए भेजना होगा। सारे सैंपल को ऐसे पैक करने के बाद उसमें लिखना होता है कि 0 से 6 इंच का है, 6 टू 12 इंच का है, ऐसे अंतिम तक आपको लिखना है और उसको पैक करने के लैब के लिए भेजना है। आप सब लोग जब सॉइल सैंपल निकालें तो आप सबसे आग्रह यह है कि विशेषज्ञ से जरूर एक बार चर्चा कर लें। वो थ्रू वीडियो कॉल करके आपके सहयोग करते हैं, जिससे आपका प्रॉपर सॉइल सैंपल कलेक्ट हो। यदि सॉइल सैंपल ही प्रॉपर कलेक्ट नहीं होगा तो रिपोर्ट गलत आएगा। इसलिए सोल के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनमें से किसी एक को आप कांटेक्ट कर लीजिए अथवा सोल कस्टमर केयर को कॉल कर लीजिए, वो आपको एक्सपर्ट अवेलेबल कराएंगे। सॉइल सैंपल आपका कंप्लीट होने के बाद आपको 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट जनरली आ जाती है। कभी कभी बहुत जल्दी भी आ जाती है, सॉइल सैंपल पहुंचने के ऊपर है। रिपोर्ट आने के बाद एक्सपर्ट सॉइल सैंपल का एनालिसिस करते हैं। एक्सपर्ट एक नहीं होता, एक्सपर्ट ग्रुप्स उसका एनालिसिस करते हैं। आपकी कौन सी क्रॉप है उसके हिसाब से वो आपको सॉइल सैंपल आने भी होती है। आपको ये क्लियर करना होता है कि हाँ ये सही है, इसमें इतनी क्वांटिटी रिकमेंड की जा रही है, तो क्या लॉजिक है, क्या साइंटिफिक अप्रोच है, वो आप एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स आपको ये भी बताते हैं कि आपके कौन से न्यूट्रिशन की इम्बैलेंस है, रेशो में नहीं है और डिफिस आप उपरांत आपको अपने क्रॉप के हिसाब से न्यूट्रिशन को अप्लाई करना होता है। जैसे ही जो भी न्यूट्रिशन आप सॉइल में एप्लीकेबल कर रहे हैं वो वर्किंग में आता है, तो आपका जो स्प्रे
हेलो, आवाज नहीं आ रहा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। उनके पास थोड़ी सी आवाज नहीं नेटवर्क आ इशू है, फिर से जॉइन हाँ, करेंगे अभी 5 मिनट। ठीक। क्षमा कीजिए, सो रहा है इसलिए नेटवर्क इशू बन रहा संभवतः। क्या अभी वॉइस क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है, मगर बीच-बीच में कट हो जाती है। क्या अभी सुन पा रहे हैं? हाँ जी। तो ठीक है, वैसे मैं घर के बाहर ही हूँ, बात कर रहा हूँ। अभी हम कहाँ तक ये सुन पाए हैं? पिछले 2 मिनट से कट हो गई थी। तो जैसे ही आपके पास रिपोर्ट आती है, हमारी एक्सपर्ट टीम मिलकर के उस पर काम करते हैं। कौन सा न्यूट्रिशन कितनी क्वांटिटी में देना है, किस फॉर्म का देना है, ये तय करने के बाद आपको उसकी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। आपके और एक्सपर्ट्स के सहमति के बाद आपके फॉर्म पर एप्लीकेशन होता है, सोल से मटेरियल परचेजिंग करने के बाद। और जो भी क्रॉप आप लेने वाले हैं, उस क्रॉप के रिकॉर्डिंग जो न्यूट्रिशन चाहिए, उसका शेड्यूल आपको दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मेन काम है सॉइल रिजर्वेशन का। तो हम पहले सॉइल के न्यूट्रिशन को बैलेंस करते हैं। जब आप कोई क्रॉप लेते हैं तो उसके न्यूट्रिशन का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, जिससे आपके क्रॉप का कोई प्रोडक्शन डिक्रीज ना हो। डिजीज के लेवल पर आपको प्रिवेंशन में क्या चलाना आवश्यक है, क्योर करने के लिए कौन से प्रोडक्ट आवश्यक हैं, यदि प्रिवेंशन से किसी कारण से कभी कोई कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो सब जानकारी आपको एक्सपर्ट के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। हमारी तरफ से आपको कोई ना कोई एक मेंटर है, एक्सपर्ट दिया जाता है, जिससे डे बाई डे आप उसके कांटेक्ट में रहें और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उस तक पहुंचाएं और वहां से आपको सॉल्यूशन मिलता है। इन एनी केस कभी आपको ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट से किसी कारण से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो हमारे जूम सेशंस रेगुलर चलते हैं डे बाई डे इवनिंग में। आप उसमें भी अपनी बात रख सकते हैं, तो हमारे कस्टमर केयर के नंबर पर कॉल करके इंस्टेंट हेल्प ले सकते हैं। न्यूट्रिशन होने के बाद जब आप क्रॉप लेते हैं, तो क्रॉप के दौरान भी आपको ये पता होता है कि अलग अलग जोन में, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग प्रैक्टिस डिफरेंस होता है। कहीं पर टेम्परेचर का, कहीं पर रेनी सीजन का जो इम्पैक्ट होता है, उसको लेकर के आपको आपके जोन वाइज एक्सपर्ट हमेशा सलाह देते रहते हैं। आपको उनके साथ रेगुलर कोऑर्डिनेशन से ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। हमने हमारे सॉइल को रिजर्वेट किया हुआ है खुद के फार्म पर, और अभी हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है और हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंक्रीज हो गई है। कभी कभी बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण ऐसा लगता है कि उन्हें केमिकल का प्रयोग करना ही होता है, तो वो केवल इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण है। सोल के पास वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो केमिकल में तो हैं ही, केमिकल के अलावा भी जो केमिकल में नहीं बन सकते, उन्होंने एंशिएंट लिटरेचर का स्टडी करके वो सारे प्रोडक्ट भी डेवलप किए हैं जो केमिकल से अच्छी क्वालिटी के हैं और एनपीओपी सर्टिफाइड हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी सर्टिफाइड हैं। और हमने इन प्रोडक्ट्स में जो स्टैंप होता है उसको दिखा करके भी हमारा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हो गया है। इसमें जो आईएफएम सर्टिफिकेशन और एनपीओपी सर्टिफिकेशन होता है, उसको इन्होंने किया हुआ है। आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आपको धीरे धीरे कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, बीमारियां आनी बंद हो जाती है या बहुत नॉमिनल हो जाती है, और जो फूड आता है वो कंप्लीट माइक्रो न्यूट्रिशनल वैल्यू का आता है। क्योंकि लैंड पर आपका जो माइक्रो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो एक प्रॉपर रेशो में जिस पर वो काम करती है, उसके हिसाब से आपको अवेलेबल है लैंड के अंदर वो। दूसरा, सोल के पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इस तरीके के सारे नैनो पार्टिकल्स के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं
ये 3-4 घंटे के अंदर अंदर काम कर जाते हैं। 3-4 घंटे के अंदर काम करने के कारण उसमें जो है न्यूट्रिशन हमेशा डिफिशिएंट नहीं रहता, सरप्लस ही हो जाता है, और जो भी उस फूड को खाता है उसकी क्वालिटी बहुत सुपर रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी नहीं रहता। इसी के कारण हमने यहाँ हमारे खुद के फार्म पर व्हीट, मेज, हॉर्टिकल्चर में एप्पल, वेजिटेबल्स, ये सारे हम ग्रो कर रहे हैं सक्सेसफुली, और हमारी कॉस्ट रिड्यूस हुई है और क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी हमारे पास आ रही है, और ये सारा सिंथेटिक केमिकल से लेस है, और इसकी जो लाइफ है ये भी केमिकल वाली जो प्रोडक्शन है उससे दोगुनी के लगभग तो है ही, साथ ही न्यूट्रिशन भी हमारे पास, न्यूट्रिशन डेंस फूड जो है उसकी लाइफ और क्वालिटी तुलनात्मक दृष्टि से इससे बहुत ज्यादा अच्छी है। ये हमारे एक्सपीरियंस है सोल के साथ। किसी को कोई क्वेश्चन है तो कृपया पूछ लीजिए। अभी हमने जो बताया है उसको लेकर के किसी का कोई क्वेश्चन है तो कृपया पूछ लीजिए। ओमकार जी, अगर आप अपना थोड़ा जर्नी के बारे में बता पाएं कि आपने अगर जैसे पहले कैसे फार्मिंग करते थे, थोड़ा ट्रांजिशन, कैसे सपोर्ट मिला सोल से, और ऑल्सो अगर आपका जो यील्ड है वो बड़ा है या आपका रेवेन्यू बड़ा है तो थोड़ा उसके लिए बैकग्राउंड देंगे, बिकॉज आई थिंक हम काफी लोग उस जर्नी में हैं या तो स्टार्टिंग में या समवेयर इन द मिडिल, तो हमको थोड़ा हेल्प होगा समझने के लिए कि हमको आगे कैसे जाना है। ठीक है, मैं पहले नौकरी करता तो मैंने ये देख, मैं रिसर्च पेपर लिखता हूँ, तो रिसर्च पेपर में जब हम डाटा हमेशा डालते थे ना, तो इकोनॉमिक सर्वे से पढ़े या समाचार पत्रों के एडिटोरियल्स पढ़ते थे तो उसमें हमेशा किसान को एकदम निकम्मा साबित किया जाता था। सिविल सर्विसेज के हमारी प्रिपरेशन के दौरान जो हमारे ग्रुप डिस्कशन होते थे, कभी भी वहां पर फार्मर्स को लेकर के हम ये देखते थे कि कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, सब फार्मर को निकम्मा साबित करना चाहते थे। और पुराने काल के जमींदार प्रथा के परिवार से मैं आता था, तो हमारे पास जमीनें तो बहुत थी, लेकिन वस्तु स्थिति ये थी कि हम देखते थे कि वास्तव में हमारे यहाँ अच्छे से प्रोडक्शन होता नहीं है, और उसके ये सारे कारण थे कि हमारे यहाँ सॉइल बैलेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यूरिया और डीएपी ये डालने से फसलें जो इतनी हो जाती थी उतना बहुत अच्छा है, उनको इस बात से कोई लेन देन नहीं था कि कोई साइंटिफिक अप्रोच हो सकती है, सॉइल रिजनवेट हो सकती है, प्रोडक्शन क्वांटिटी और क्वालिटी इंक्रीज हो सकती है, और कॉस्ट लो हो सकती है, और जो रिटर्न आ रहा है वो कई मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 गुना 3 गुना भी बढ़ सकता है। इसको लेकर के मेरी खुद की फैमिली पहले तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने उसमें कोविड के दौरान मैं जब पहले बीमार पड़ा था तो मुझे डॉक्टर ने कहा ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, तो मैंने हमारे पिताश्री से कहा कि हमको ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करना, तो वो करके बंद कर चुके थे। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो मुझे संन्यास जीवन में जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक ही लड़का है, कुछ करे ना करे, तो उन्होंने कहा कि ये 5 एकड़ है, इसमें आप करके देख लो। तो मैंने 5 एकड़ से उस समय स्टार्ट नहीं किया, मैंने केवल, मेरा एक छोटा सा प्लॉट था आधा से 1 एकड़ के बीच का, उसमें स्टार्ट किया, और वो मैंने सबसे पहले डिकम्पोजर पर काम किया, फिर गौ कृपामृतम पर काम किया, और भी जो जो चीजें बेसन वाली पद्धति थी उस पर भी काम किया, तो वो दुर्गंध वाली कंडीशन थी, उससे मुझे कोई विशेष लाभ हुआ नहीं। जब मेरा कनेक्ट हुआ सोल से, तो इन्होंने माइक्रोबियल के साथ साथ न्यूट्रिशन पर काम किया था,
तो मेरा चूंकि एजुकेशन भी प्रिवेंटिव हेल्थ पर था, तो मुझे समझ में आया कि यदि न्यूट्रिशन के बिना माइक्रोब्स अकेले पर काम करते जाएंगे तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ में आता था कि कैल्शियम का जो न्यूट्रिशन पड़ा है उसको खाने के लिए कैल्शियम का बैक्टीरिया चाहिए। यदि बैक्टीरिया है और कैल्शियम नहीं है अब तो कोई काम का नहीं है। तो इनका साइंस मुझे इस तरीके से क्लियर कट समझ में आया कि ये न्यूट्रिशन और माइक्रोब्स इन दोनों पर काम कर रहे हैं, जीवन और न्यूट्रिशन दोनों पर काम कर रहे हैं। जो हमको डालना है और जो डालने के बाद पौधे को अवेलेबल कराएगा, इन दोनों पर ये काम कर रहे हैं। और दूसरा, केमिकल के जैसे कोई डिजीज आ जाता था तो ऑर्गेनिक में ऐसा कोई रेडी प्रोडक्ट नहीं था कि डिजीज आ गया तो हम कैसे करें, थे भी तो फेथफुल नहीं थे। इनके पास एक भक्षक सीरीज जो है उस पर यह था कि फंगस ना आए इसके लिए फफूंद भक्षक चलाते रहो, रस चूसा कीट ना आए इसलिए भक्षक V+ को आप टाइमली स्प्रे करते रहो। तो ये बीमारी आने के पहले ही ठीक करने का एक प्रयास करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आया। साथ में ये बात भी इन्होंने कहीं ना कहीं क्लियर की इस पार्ट से कि जो डिजीज आती है वो डिफिशियंसी के कारण आती है। प्रिवेंटिव हेल्थ पर भी मैंने ये सारी चीजें पढ़ी हुई थी। तो कैल्शियम जैसे रहेगा तो पेस्ट अटैक कम होगा, या अवेलेबल हो गया तो पेस्ट अटैक लगभग नहीं होगा। आयरन रहेगा तो जो इल्ली आती है वो नहीं रहेगी। जिंक रहेगा तो पपीता मैंने लगाया था, जिंक की सफिशियंसी से वायरस नहीं आएगा। इस तरीके की ये सारी चीजें इन्होंने मुझे क्लियर की हुई थी। वो मुझे भी मैंने अपने एजुकेशन में पढ़ी हुई थी, तो मुझे ये बाद में समझ में आया कि हम ये सब क्यों नहीं कर सकते। फिर जब कोविड के समय पूरी दुनिया जिंको वाइट खा रही थी और हमने जिंक का जो सोल का यूज किया था उस समय भस्म रसायन, तो हमने ये देखा कि नहीं, हमको खाने की आवश्यकता लगभग नहीं है। तो हमारे फूड में यदि वो न्यूट्रिशन है तो हमको जिंको वाइट लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी लाइन पर चल करके मैंने न्यूट्रिशन डेंस फूड उपजाया। फिर जब हम बाहर जा रहे थे तो हमें ये ध्यान में आ रहा था कि पूरे देश में शुगर और बीपी के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे कनेक्ट में आ रहे थे। तो हमने देखा कि ये शुगर बीपी इसलिए हो रहा है कि हमको न्यूट्रिशन डेंस एक तो फूड नहीं मिल रहा है, अच्छा जो भी मिल रहा है वो हाई ग्लूटेन फूड मिल रहा है। तो फिर बंसी गोल्ड वैरायटी जो व्हीट की है उस पर मैंने काम किया है और उसमें हमने सारे न्यूट्रिशन सरप्लस रखा है। और इसके लिए हमने जो सल्फर है, आयरन है और जिंक है, ये अग्नि तत्व बढ़ाने वाले पंच तत्वों के एलिमेंट्स हैं, इनको हमने एक्सेस रखा है। और जैसे पहले हम स्वर्ण भस्म और रजत भस्म खाते थे, तो ऐसे ही हमने सिल्वर, कॉपर और गोल्ड जो सोल का है उसको स्प्रे करके न्यूट्रिशन डेंस फूड हमने उपजाया हुआ है। अब वो इतना अच्छा क्वालिटी का है, इसमें से एक दो लोगों ने जरूर खाया होगा तो वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इतनी अच्छी गुणवत्ता का है कि वो स्वादिष्ट भी है। उसको खाने के बाद हमारे शरीर में बाहरी जो डॉक्टर का खर्चा है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ वो लाभ हो रहा है शरीर को। मेडिसिन के बिना ही हम मेडिसिनल फूड खा रहे हैं, मेडिसिनल फूड खा रहे हैं, इसलिए मेडिसिन की जरूरत कम हो रही है। तो इस तरीके से हमने बंसी गोल्ड पर काम किया। ऐसे ही हम घर में अपने सब्जियां उगा लेते हैं। जमीन ठीक हो गई है तो बस नक्षत्र में प्रार्थना करके लगा दिया। और जब हमें लगता है कि इसमें ज्यादा जिंक बढ़ाने की जरूरत है तो सोल का जो नैनो पार्टिकल जिंक है उसका 1 से 2 ml 2.5 ml तक का जो भी जितनी जरूरत है उतना स्प्रे किया। और उसको हम 3 दिन बाद पत्तियां तोड़ के सब्जी बना लेते हैं, या जो सब्जियां हैं उनको तोड़ करके हम उपयोग करते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से हमारी बॉडी में आ जाता है। तो हमारे डॉक्टर का खर्च खत्म हो गया परिवार का। मेडिसिन चलती थी वर्षों से, वो अब उनको मेडिसिन पर भी हमने काम किया है। इंसुलिन है, गुड़मार है और हॉट क्लाइमेट एप्पल भी हमने यहाँ सक्सेसफुल कर रखा हुआ है। अब जब ये सारी क्वालिटी आ रही है और जो लोग इसको खा रहे हैं तो वो हमें जरूर जो जनरल मार्केट रेट है उससे 2 गुना इजीली पे कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा बाकी इस बार हमारे जैसे व्हीट में डिजीज नहीं आया, इल्ली जो मौसम के कारण आई थी, हमारे अलावा वो सबके फॉर्म पर आई थी। हमारे में आयरन की कंटेंट अच्छी थी इसलिए उसमें नहीं आई, अथवा ये कहें कि सॉइल अच्छी हो गई है इसलिए नहीं आई। तो रोग भी हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं बाकी की तुलना की दृष्टि से।
यदि आते भी हैं तो किसी के यहाँ यदि 100 यूनिट का इम्पैक्ट करते हैं तो हमारे यहाँ वो मुश्किल से 10 यूनिट का इम्पैक्ट कर पाते हैं। लागत भी हमने कम की हुई है, जमीन भी सुधारी हुई है और गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी बढ़ाया है और उत्पादन की मात्रा भी बढ़ाई है। तो इस तरीके से हमको डायरेक्ट सोल का लाभ मिल रहा है। क्या आप मेरे आंसर से संतुष्ट हैं? हाँ जी ओमकार जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई थिंक आप एटलीस्ट मेरे लिए एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल इन दिस ग्रुप एक इंस्पिरेशन रहेंगे, क्योंकि आप जहाँ तक पहुंचे हैं, जैसे मैंने बोला कि हम काफी लोग या तो शुरू कर रहे हैं या कहीं बीच में हैं। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग योर जर्नी। थैंक यू। इवन सोल ने सर किसान कॉर्नर भी बना रखा है, आप अपने प्रोडक्ट उसमें भी लिस्ट कर सकते हैं और वो फार्मर की ब्रांडिंग कर रहा है थ्रू किसान कॉर्नर। और वो जो मटेरियल ऑर्डर होता है जो भी, तो मेरे यहाँ से सीधे कस्टमर के यहाँ पहुँचता है। हाँ जी, यस, थैंक यू। और इन्होंने बताया कि अभी ये ब्लिंकिट वगैरह से टाई अप किया हुआ है, तो सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के रेट्स भी ज्यादा मिलने वाले हैं। जहाँ ये चला रहे हैं वहां तो ऑलरेडी मिल रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज फार्मर का हमारा जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के पर है, और वो तभी हो सकता है जब सॉइल ठीक हो जाए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स या सारे न्यूट्रिशन बैलेंस करने की जरूरत सॉइल में ही है सर। हाँ जी, थैंक यू। इसके अलावा भी क्वेश्चन है तो कृपया पूछ लीजिए। हेलो। एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि जहाँ पर ये एक बात और बताना है कि जहाँ पर ये न्यूट्रिशन सॉइल में न्यूट्रिशन है भी, लेकिन वहां पर हमने केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, बीडीसाइड डाल करके जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर दिया है, तो उसके कारण हमारा न्यूट्रिशन अपटेक हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए जो बायोडाइजेस्टर बैग या कार्बन फर्टिलाइजर बैग ये जो अभी आया है, लंबे समय से ये देश भर में यूज हो रहा है, इसका जरूर प्रयोग कीजिए। इससे आपको अद्भुत लाभ मिलने वाले हैं, क्योंकि इससे जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज है ये बहुत जल्दी जमीन में एक्टिव हो जाती है और उसके बिना खेती ठीक होना कठिन काम है। तो ये सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है और इसकी कॉस्ट बहुत कम है। जो भी एंजाइम्स आप बनाते हैं या अनदर फार्मूला वगैरह भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे पंचगव्य बनाते हैं, मैं पंचगव्य का बहुतायत प्रयोग करता हूँ। पंचगव्य की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, एंजाइम्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। मैं तो लार्ज स्केल में बनाता हूँ, मैं एंजाइम 20-20 हजार लीटर बना के रखता हूँ अपने फार्म के लिए। तो आप ये देखिए कि ये जो बायोडाइजेस्टर बैग है, ये बहुत सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तो जिसको इंस्टेंट ही करना है और लो डाइजेस्टर बैग जरूर लगाना चाहिए। ये मेरी तरफ से एज अ फार्मर रिक्वेस्ट कहें या एडवाइस कहे, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और जिसको भी बढ़ना है वो बिना सॉइल टेस्ट के हो सके तो आगे ना बढ़े। जिसको प्रॉपर वे में जाना है उसको ये सॉइल में क्या न्यूट्रिशन है, क्या डिजीज है, उसकी माइक्रोबायोलॉजी का जरूर टेस्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री का, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का सारा टेस्ट होने के बाद, जो सोल ने अभी अवेलेबल भी कराया हुआ है, उसके साथ आप आगे बढ़िए तो फर्स्ट स्टेप पर ही आपको पता चल जाएगी कि आपको जो जरूरत है वो डाल रहे, कि जो जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे। जनरली फार्मर के साथ यह है कि वो दुकान में जाता है, सामान जो दुकानदार ने दे दिया वो लेके आके डालता है, उसको पता ही नहीं है कि कितना डालना, कितनी मात्रा में डालना, कितनी क्वांटिटी में डालना, या किस फार्म का चाहिए। वो एक सारा समस्या खड़ा हो गया है, अंधाधुंध लागत लगती जा रही है और लागत इतनी लग जाती है कि नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। और किसान का पहला काम है जमीन सुधार के लागत कम कर ले, तो ऑटोमेटिकली वो फायदे में जाएगा। लोग लाइन लगा करके आपका प्रोडक्शन परचेस करेंगे, क्योंकि आपके प्रोडक्शन में जो खेत के आजू बाजू वाले हैं ना, सबसे पहले वही आपका खरीदते हैं, कि उनको पता है कि आप यूरिया नहीं डालते, डीएपी नहीं डालते, उसके जगह ऑक्साइड फॉर्म का न्यूट्रिशन डालते हैं। तो वो सबसे पहले आपके
कस्टमर होते हैं, और वो फिर उनके मित्र रिश्तेदार, इस तरीके से आप पूरे देश भर में फैल सकते हैं। इसमें हालांकि समय लगता है, अभी सोल ने एज अ किसान कॉर्नर ही अवेलेबल करा दिया है, तो इसमें जरा सपोर्ट मिल रहा है। बाकी हमारे अपने लेवल पे करने में थोड़ा सा इसमें समय लगता है। अब किसान कॉर्नर के माध्यम से हम एक बार में ही पूरे देश भर में हम पहुंच रहे हैं। तो ये आईटी का यदि आप सपोर्ट लेंगे तो आपको कम समय में ये मार्केटिंग पर काम हो जाएगा, और आपका परिवार बीमारियों से पूरी तरीके से सेफ होगा। ये एक बहुत बड़ा है। आप कितना भी पैसा दे करके शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते दवाइयाँ खा खा करके। आप अच्छा भोजन करके अपने शरीर को पूरा स्वस्थ रख सकते हैं, और छोटी सी जगह में आप न्यूट्रिशन डेंस फूड उगा सकते हैं। अपने घर की थोड़ी सी जगह है, टेरिस है, तो कहीं भी आप अपने लिए न्यूट्रिशन डेंस फूड उपजाइए, जिससे आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। पॉइजन खाने से बचेंगे तो आपकी आयु भी जितनी रहेगी वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगी। इतना मेरा एक्सपीरियंस इस समय है। उनका जी, अभी चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काऊ चाहिए या बिना गाय कर सकते हैं? यदि गाय है तो बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। गाय का भी अर्थ होगा देसी गाय, जिसमें सूर्य केतु नाड़ी है, जिसमें कुबड़ है। ये एचएफ काऊ नहीं चलेगा, ऐसा प्रयास कीजिए। यदि देसी गाय है तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। उसका कारण यह है कि सारी प्रकृति में अणु और जीवाणु का जो है और ऊर्जा, ये तीन चीजों पर यह संपूर्ण प्रकृति चलती है, तो वो गाय ही उनका सोर्स है। तो गाय है तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास गाय नहीं है तो भी आपकी खेती अच्छी हो सकती है। जो न्यूट्रिशन आप गाय से ले रहे थे वो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। गाय के रहने से आपको लो कॉस्ट में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जिन्होंने क्वेश्चन किया था वो उससे संतुष्ट हैं। हेलो। इसमें जो इन्होंने, हाँ जी, हाँ, मैं महाराष्ट्र, सांगली महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा अंगूर का बगीचा है और उसमें जी, अमरूद भी लगा है, और हाँ मेरे जी, पास एक गिर गाय है। वो मैं हाँ बायोगैस प्लांट लगाया है, उसमें उसका सब डालता हूँ। तो जी। उसकी स्लरी डायरेक्ट दिया तो चलता है उसको? हाँ, स्लरी डायरेक्ट दीजिए, लेकिन जो बायोडाइजेस्टर में आपको एंजाइम फॉर्म का लिक्विड मिलेगा वो उसमें नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा उसमें, बराबर है। लेकिन जो भी वो देसी गाय अपना गिर गाय है उसका सब उसमें डालता है, तो उसमें जो बनेगा वो कल्चर, वो जो गोरे का यानी अपने उकरने का जो खाद होता है उस तरीके से बनता है, या कुछ अलग बनता है उसको? किस, आप जो अभी इसमें आपके गोबर गैस में जो डाल रहे हैं वो आपको फर्मेंटेड होके निकलता है। हाँ। वो घूरे के से बहुत अच्छा बनता है। हम्म। लेकिन यदि आप इसकी तुलना बायोडाइजेस्टर से करते हैं तो बायोडाइजेस्टर की तुलना में वो 20% ही बस है। क्योंकि हाँ बायोडाइजेस्टर हाँ। में सारी चीजें बहुत स्पीड से तैयार होती हैं, एंजाइम फॉर्म पर तैयार होता है। उसमें से जो गतिविधियां है वो होती है, तो उसके माइक्रोब्स उसके अंदर होते हैं। हेलो, तो आवाज थोड़ा कट हो रहा है सर। कम टाइम पर ज्यादा प्रभावी। ओ, मैं एक्चुअली ना छतरी लगा के हेलो। खड़ा हूँ, बहुत तेज बारिश और तूफान चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। तो क्या है, उसमें जो एनारोबिक जो बैग आती है, उसमें से जो आप बैक्टीरिया मिलते हैं वो उसमें डाल दिया तो चलेगा क्या, या नहीं चलेगा उसमें? हेलो। आप ये कह रहे हैं कि जो गोबर एनारोबिक, एनारोबिक सर काम करने की कंडीशन उसके लिए ना पैक्ड बैग ही चाहिए। पैक, हाँ, वो बैग ही है मेरा, जो बायोगैस प्लांट लगाया है ना, वो बैग ही है। हाँ जी। अच्छा, जो नया बायोगैस अभी प्लांट का बैग। बायो, हाँ हाँ, बैग ही है।
बायोगैस जिन प्लांट है, लेकिन वो आपने बैग ही है। ना टेक्निकल डिस्कशन कर लीजिए, या तो उसका हाँ डिस्क्रिप्शन आप हमें भेज दीजिए, मेरा नंबर अभी आपको मिल जाएगा चैट बॉक्स में, तो हम हाँ उसकी हाँ स्टडी करके आपको बता देंगे। उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया देने से वो काम हो सकता है, यदि हो सकता है तो बहुत अच्छा। उससे दो लाभ है, अभी भी जो कार्बन फर्टिलाइजर बैग चल रहा है उससे भी हम गोबर गैस चला सकते हैं, खाना बनाने हम्म के लिए गैस का हम गैस भी ला बन रहा है सकते हैं उसमें भी, तो इसी हेलो। यूज हो सकता है सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी। वो दोनों हिसाब से मैंने वो बैग लगाया है, लेकिन उसमें अभी अनएरोबेटिक जो जीवाणु होते हैं उसमें डाले नहीं। सिर्फ देसी गाय मेरी है, उससे उस पर ही चला रहा हूँ, और उसका गैस घर पर चलता है, और जो भी स्लरी निकलती है वो खेत में छोड़ता हूँ पानी के साथ। उससे तो लिक्विड ही निकलता होगा कि आपको स्लरी निकल रहा है? स्लरी निकलती सर एक बार उसके टेक्निकल को समझना पड़ेगा, उसके टेक्निकल को समझ के ही हम आंसर कर पाएंगे। उसका उसका फोटो भेजता हूँ हाँ जी, हाँ व्हाट्सएप जी, पर। थोड़ा उसका क्या करना, कैसे करना है, मुझे वो मार्गदर्शन चाहिए। जरूर, हम आपके और सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध। हाँ, और एक दूसरा, मेरा जो अंगूर का खेत है, अंगूर भी है, गन्ना भी है मेरा, और अमरूद भी उसमें लगा है। और वो कुछ अंगूर का है जो उस पर फंगस ज्यादा आता है, और कीट भी लगता है ज्यादा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर उसका सबसे अच्छा है कि आप एक बार सॉइल टेस्ट करा लें। सॉइल टेस्ट हम्म की जो सॉइल टेस्ट माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा नीमाटोड्स, फंगस और बहुत सारी जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं उनकी क्या कंडीशन है। उसके हिसाब से आप उसका हम्म ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा फंगस है वहां पर सोल के बाद जो सिल्वर और कॉपर है, ये हम्म सैनिटाइजिंग के लिए भी प्रोडक्ट है। तो सिल्वर उसके अच्छा अभी मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ उसमें, पिछले 2-3 महीने से सुन रहा हूँ गुरुजी को। हाँ तो जी, उसके हिसाब से मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी मैंने जीवाणु जल, जीवाणु जल नहीं, को जीवन अनुजल, नहीं जीवाणु जल अभी कर रहा हूँ तैयार, वो उसमें चला सकता जी। हूँ। हाँ आप उसको चलाइए, आपको उसमें भी जो फफूंद भक्षक का कैप्सूल है उसका भी आपको लाभ मिलेगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। और किसी शादी का कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ सकते हैं। सारे फार्मर इस बात को ध्यान रखिए कि न्यूट्रिशन अपटेक भी एक टेम्परेचर और पीएच को ध्यान में रख करके होता है। जब हमारा पीएच यदि बहुत कम और बहुत ज्यादा हो जाता है, या सेम इस टेम्परेचर बहुत कम या बहुत ज्यादा होता है, तो हमारा न्यूट्रिशन प्लांट अपटेक नहीं कर पाता। तो उस दौरान सोल के बाद जो नैनो पार्टिकल है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण जो डिजीज आता है या प्लांट का ग्रोथ रुकता है, उसके लिए भी आपको एक अच्छी मदद मिलती है। दूसरा, माइक्रोबियल एक्टिविटीज प्रॉपर होने के लिए जमीन में आयरन कंटेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयरन होगा तो ही सेल का विखंडन होता है। तो जहां पर आयरन की डिफिशियंसी है, कार्बन प्रॉपर नहीं है, कम से कम 0.8% कार्बन होना चाहिए। मैंने 1% कार्बन अनिवार्य है, लेकिन 1% नहीं है तो आप ये मान के चलिए 1% से 20 पॉइंट कम, यानी 0.80 यदि नहीं है, तो फिर आपका माइक्रोबियल एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं होंगी, इसलिए कार्बन भी आपको बढ़ाना जरूरी है।
यदि आप कार्बन अच्छा कर लेंगे, न्यूट्रिशन अच्छा कर लेंगे, तो आप ये जो 2-2, 4-400 या 1000 लीटर हम जो माइक्रोब्स या बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, यदि ये 100-200 लीटर भी करेंगे तो भी अपने आप वो अपनी कॉलोनी बना लेंगे। इसलिए सॉइल को ठीक करने के लिए सॉइल न्यूट्रिशन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। किसान को टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसके पास कोई गाइडेंस नहीं होता, तो उसको जो पैसा लगता है उसका प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाता। वो पैसे तो लगाता है, काम भी करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन उसको लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि जिस चीज की जरूरत है वो ना डाल करके दूसरी चीजें डालता है। ये गलती मुझसे भी हुई है कि मैंने बहुत ज्यादा जीवाणु जल चलवाया था और बहुत ज्यादा ऐसी माइक्रोबियल वाले सारे प्रोडक्ट्स चलाया था। बाद में मुझे पता चला कि मुझे सॉइल बैलेंस करके न्यूट्रिशन यदि ठीक करना पड़ेगा। मेरी ब्लैक सॉइल है तो उसमें आयरन थोड़ा कम था, तो जब तक आयरन आपका प्रॉपर नहीं होगा और आयरन जैसे ही वर्किंग करता है, उसके लिए जो जो उसके सपोर्टिव एलिमेंट्स प्रॉपर एक रेशो में नहीं होंगे, तब तक फिर आपको ये बहुत ज्यादा चलाने के बाद भी कम लाभ मिलेगा। इसलिए सॉइल न्यूट्रिशन या सॉइल बैलेंसिंग पर काम कीजिए। संभवतः सॉइल बैलेंसिंग पर अभी पंकज मंडा जी का भी सेशन इसमें होगा आगे। तो आप सॉइल बैलेंसिंग कर लेंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा कि आपको कम मेहनत में बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा, कम पैसे में बहुत ज्यादा पैसे के बराबर लाभ मिल जाएगा। इसलिए टेक्निकली स्ट्रेंथ फार्मर की हो या टेक्निकल समझ के यदि फार्मर अच्छे से काम करेगा, तो कम समय में, कम मेहनत में, कम धन में भी उसको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। और जो हम 6-6, 8-8 साल में कर पाए वो 6-8 महीने में हो ही जाएगा, क्योंकि अब 6-8 महीने में हम करा चुक रहे लोगों को। तो आपको हमारे जैसे 6-8 साल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो एक्सपर्ट के साथ टेक्निकल गाइडेंस मिल रहा है उसको समझते हुए आगे चलना है। एक सलाह ये मेरी किसानों के लिए रहेगी एज अ फार्मर, आप इस पर जरूर ध्यान रखिए। किसान सारे ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में हमारे यहाँ क्या जरूरत है, कितनी है, और किस, जैसे कैल्शियम भरपूर पड़ा हुआ है। अभी हैदराबाद के एक फार्म पर हम देखा, उसके यहाँ कैल्शियम सफिशिएंट है, लेकिन उसके यहाँ बोरान नहीं था। और जब तक बोरान और सल्फर नहीं होगा तो कैल्शियम काम ही नहीं कर सकता। ये साइंस कोई किसी को बताना नहीं चाहता, और इसीलिए फार्मर को एज अ कस्टमर समझा जाता है, एज अ मार्केट में यूज किया जाता है कि कैल्शियम तभी उपयोग होगा, प्लांट तभी अपटेक कर पाएगा जब उसका एक निश्चित भाग सल्फर और बोरान होगा। उन्होंने थोड़ा सा कॉस्ट लगाया और उनका ठीक हो गया, बाकी चीजें उनके यहाँ ठीक थी। तो आपको अपनी सॉइल में एक प्रॉपर रेशो में न्यूट्रिशन बैलेंस करना है और माइक्रोबियल एक्टिविटीज प्रॉपर करना है। बस इतने में ही आपका प्रोडक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एनर्जी पर जैसे ही आप काम करेंगे तो वो फिर मल्टीप्लाई का भी मल्टीप्लाई होने लगेगा। तो सोल एनर्जी साइंस पर जो काम हो रहा है वो फार्मिंग के लिए अद्भुत है, और सोल ने फार्मर को जीरो से लगा करके उसके माल बेचने तक के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, और एक ये अच्छा प्रयास है। इसके लिए सोल भी धन्यवाद का पात्र है। हेलो। हाँ जी। जो माती परीक्षण यानी सॉइल टेस्टिंग का जो ये है वो उधर भेजना पड़ता है सॉइल टेस्टिंग का? सॉइल टेस्टिंग के लिए ये पंजाब के मोहाली में जाता है आईसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च मोहाली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट, वहाँ जाता है सॉइल सैंपल, वहाँ से हाँ टेस्ट हाँ। होकर के आता है कि जो सॉइल केमिस्ट्री है, सॉइल अभी जो बायोलॉजी है। सॉइल निकालना है वो उसकी वो विधि क्या होती है? और मेरा जो आपको क्षेत्र है वो 4 एकड़ का, वो गन्ने का अलग, 2 एकड़ का है, 2 एकड़ बगीचे का है, वो अलग अलग से निकालना पड़ेगा क्या उसका? जी, आपके नंबर पर हम वीडियो भेज देते हैं, और पहले बता भी देते हैं, इसके बाद वीडियो भेज देंगे। आपको हाँ हाँ। जनरली 3 फीट बाई 3 फीट का गड्ढा करना है, 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा, और हम्म। उसकी हर एक लेयर पे आपको सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है 500 ग्राम। ऐसे ऐसे कितने एकड़ में कितने गड्ढे करने हैं उसको? कम से कम 1 एकड़ में 5 गड्ढे करने चाहिए प्रॉपर बड़े सैंपल के बड़े। लिए। 5 नहीं हो सकते तो आप 4 कीजिए, 4 नहीं हो सकते तो 3 कीजिए, लेकिन 3-4 तो कर ही सकता है फार्मर।
हाँ बगीचा है ना, बगीचे के बीच में लेना पड़ेगा वो खुला। बगीचे के बीच में तो लीजिए, हाँ चौड़ाई 1.5 फीट कर लीजिए और लंबाई तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है। एक गड्ढे में हाँ से जी, आधा किलो निकालना होता है क्या? एक गड्ढे में से हर एक लेयर से आपको सॉइल लेना है सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, उस अ, चल तब रहा है आपको उसका, पता थोड़ा चलेगा कि भेज दीजिएगा। कौन सा न्यूट्रिएंट। हाँ जी, भेज देंगे जी। ठीक है। संजय जी का नंबर कृपया नोट कर लीजिए, इन्हें सॉइल टेस्टिंग के लिए वीडियो भेजना है। अभी मैंने चैट बॉक्स पर वो यूट्यूब लिंक भी शेयर किया हूँ, तो उसे भी चेक कर सकते हैं, जिसमें कैसे टेस्टिंग के लिए सैंपल निकालना है उसके बारे में भी बताया है। ओमकार जी, आपको आपका वीडियो ही है। हाँ जी, हम्म। इसमें एक क्वेश्चन आया है, बागवानी के लिए आपने कहा 4 फीट नीचे तक का मिट्टी लेना चाहिए सॉइल टेस्टिंग के लिए, इस पर जरा समझाइए। 4 फीट तक का से अर्थ है कि ऊपर से नीचे तक जब भी आप लेते हैं तो जनरली ऊपर के 6 इंच के 2 सैंपल लेते हैं, 0 to 6, 6 to 12, उसके बाद 1-1 फीट के सैंपल लेते हैं। हाँ हेलो सर। हाँ जी, हेलो। ये जो मेरा खेत है उसमें 1-1.5 फीट पर नीचे वो कड़क मुरुम लगता है, मुरुम यानी कड़क मिट्टी। हाँ जी, ऊपर 1 फीट का मिट्टी का लेयर है, 1-1.5 फुट का। हाँ जी। उसके नीचे वो मुरुम मुरुम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाँ, वो मुरम लगता ही है वो। बोलते हैं, लेकिन कि आपके जो हाँ रूट होंगे ना वो मुरम में प्रवेश कर जाते होंगे, तो थोड़ा मुरम फर में भी जाते हैं। प्लांट लेता हाँ है। हाँ। आप इसको ऐसे समझिए, महाराष्ट्र के जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का जो सांगोला जोन है, जो देश का अनार का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा रिटर्न लेने वाला जोन है, वहाँ 1 फीट में पत्थर है, और उसके बाद हाँ भी वहाँ अनार ने 14 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए तक पर एकड़ तक का प्रॉफिट लिया हुआ है। तो हम्म, आपकी रूट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो पत्थर से में भी प्रवेश करके उससे भी न्यूट्रिशन ले ले। पत्थर में भी तो न्यूट्रिशन ही है ना, ये मिट्टी जो बनती है हाँ ये भी तो पत्थरों से ही बनती है ना। हाँ। हम सॉइल टेस्टिंग के लिए निकालते हैं तो वो मुरुम में से भी निकालना पड़ेगा। 3 फुट का गड्ढा नीचे लेना है तो मुरुम में जाना पड़ेगा उतना ही। ये- हेलो। यदि आपका संजय जी, हेलो। यदि जहां पर नहीं खुदाई हो सकता, खुदाई हो सकती है वहां तक आप ले लीजिए। ठीक है वो मिट्टी तक जाना पड़ेगा, मुरुम तक ही जाएगा, 1.5 फीट का ही निकलेगा वो। हाँ, मुरम में क्या है, जैसे वहां हम जब सैंपल ले रहे हैं संगोला की तरफ, तो वहां पर हम 1 फीट से ज्यादा का ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्टोन को तो हम नहीं खोद पाते। हाँ हाँ लेकिन वो स्टोन हमेशा 1 सेंटीमीटर करके धीरे धीरे पिघलता जा रहा है, जब उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज अच्छी हो रही है ना, और हाँ उसका हाँ। रूट भी अंदर तक जा रहा है, तो जो स्टोन में न्यूट्रिशन है वो भी प्लांट ले पा रहा है। तो जहाँ 1 फीट हम्म। की सॉइल है वहाँ 1 फीट का ही सॉइल टेस्ट, जहां वो तक कंफर्टेबली आप निकाल सकते हैं वहां के हिसाब से। इसीलिए हमने एक पॉइंट ये कहा है कि जब भी आप सॉइल सैंपल निकाल रहे हैं तो एक बार एक्सपर्ट का आप कांटेक्ट कर लीजिए। आपकी हम्म, जो भी सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसके हिसाब से वो आपको बताएंगे। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ जी, और किसी साथी का कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ लीजिए। हाँ जी, ओमकार जी बात कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, सर, हमने पहले भी बताया, हमारा जो है अरेका और कोकोनट का फार्मिंग है। एक्चुअली कर्नाटक का ये कोस्टल एरिया में आता है। तो सॉइल जो है ओके, वो लैटराइट सॉइल है, रेड कलर का, राइट, जिसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। ओके, हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, आप सुन या सकते सुन सकते आई एम हैं? लिसनिंग, हाँ, या ओके। हाँ, मैंने एक्चुअली ये मिट्टी का सैंपल लेने के लिए एजेंसी को बुलाया था। वो लोगों ने जस्ट उसमें क्या किया, अरेका फार्मिंग के लिए अराउंड 8 इंच से 1 फीट तक का बस होता है करके, तो वो उतना एक 3 एकड़ में एक 8 सैंपल लिया। उसके बाद रिपोर्ट भी भेजा है। तो
इस ग्रुप में जनरल डिस्कशन करने का है तो वो एक मैं डाल सकता हूँ, कैसा डालने का वो रमा देवी जी बताए तो मैं डाल सकता हूँ कि सो दैट आप वो रिपोर्ट को ऊपर थोड़ा लाइट डाल के क्या इसमें इश्यू है, कैसा चालू कर सकता है इसको, ऑर्गेनिक खेती को करना है। मैंने ऑलरेडी किया है पहले भी, पालेकर का हिसाब से वो जीवामृत का बहुत किया है, बट फर्स्ट 2 years मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। आफ्टर दैट अगेन इज स्लोली डिमिनिशिंग चालू हो गया है, क्योंकि मैंने गोबर उस टाइम में बाकी कोई नहीं दिया, ओनली जीवामृत दे रहा था 4 साल। उसका अलावा जस्ट मल्चिंग कर रहा था, उसका अलग से बाकी मैंने कोई इसको नहीं दिया, गोबर या कुछ भी नहीं दिया, इवन फर्टिलाइजर्स भी नहीं डाला। बट फर्स्ट 2 years अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद फिर वो डाउन होना चालू हो गया। आज अभी तो काफी यील्ड कम हो गया है, तो मैंने इसके लिए सोच रहा था कि क्या करेक्ट मेथड से जाना चाहिए। तो मैंने ये भी टेस्टिंग भी करवाया जिसमें कार्बन कंटेंट इज अराउंड 0.5%। सर आप हेलो, ये समझिए कि आपके 3 क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, आपने तो 3 क्वेश्चन इसके किए लिए हैं। फर्स्ट इज मैंने, सॉइल टेस्ट, सेकंड इज न्यूट। हाँ बोलिए सर, और भी कोई बोलिए। क्वेश्चन है आपका? तो देखिए हाँ तो सबसे पहले तो ये है मेरा कि जो रूट मेरा है आज वो जो मीटिंग में जो मैं एक बार बोल लेता हूँ। तो आज का मीटिंग में मेरा जो ज्वाइन होने का जो मेन रीजन यही था कि अभी जो ऑर्गेनिक मेथड में बहुत कुछ लोग सिस्टम बताते हैं, अब उसमें एक्चुअली करेक्ट मेथड क्या है वो उसको एक बार समझने का हिसाब से मैंने आज ज्वाइन किया है। तो आप थोड़ा उसका अभी सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट है, तो सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट भी मेरे पास है, तो क्या कैसा आगे बढ़ना चाहिए करेक्ट वे से वो कोई बताए, इसका हिसाब से मैंने ज्वाइन किया था। अब आप बोल सकते हैं सर। हाँ, हम आपको बताते हैं। सबसे पहला देखिए 2-3 बातें समझिए कि पूरे जो अभी ऑर्गेनिक में काम करने वाले लोग हैं वो न्यूट्रिशन पर काम नहीं कर हाँ, रहे हैं। वो सारे लोग जैसे मैंने जिन पर काम किया उनकी बात करता हूँ। जो आपने हाँ, वेस्ट डिकम्पोजर पर काम किया वो माइक्रोबियल एक्टिविटीज पर है। वो कहते हैं एक डिब्बी लाओ, बराबर है। 200 लीटर में डालो, माइक्रो डाल हाँ, दो। वो ने गौ बहुत किया कृपा मैंने। अमृत पालेकरी सैम। तो सर जमीन में हाँ, जो माइक्रोब्स है उसका भोजन है न्यूट्रिएंट्स। कैल्शियम या फास्फोरस या जिंक का जो माइक्रोब्स है उसको खाने के लिए जिंक, कैल्शियम या फास्फोरस चाहिए ना। तो आप उसके माइक्रोब्स को तो भेज रहे हैं लेकिन उसको खाने के लिए न्यूट्रिशन आप दे नहीं रहे हैं। आपने ये कहा कि आपका पहले पहले अच्छा न्यूट्रिशन था, जितना भी अवेलेबल था वो माइक्रोब्स ने उठा के प्लांट को दे दिया, तो प्रोडक्शन अच्छा हो गया। उसके बाद आपका प्रोडक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। और केवल प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं होगा, प्रोडक्शन क्वालिटी भी डिक्रीज हुई होगी क्योंकि उसमें बीमारी भी न्यूट्रिशन आया नहीं है। पेड़ पे। हाँ, डिजीज आएगा स्वाभाविक रूप से। ठीक है। हम्म, अब नंबर 2 ये आप सोचिए कि जो सॉइल टेस्ट वाला है, तो सॉइल टेस्ट का एक अपना मानदंड है। यदि आपके यहाँ वो गहराई तक रूट जा रहा है, आपका रूट 3 फीट प्लस जा रहा है कि 3 फीट अबव है अरे का नट का? रेकनट का एक्चुअली 1 फीट का अंदर ही रहता है, और मेन मदर रूट है वो काफी नीचे 5-6 फीट तक जाता है, लेकिन उसका जो है साइड रूट्स है वो अराउंड 8 से 10 इंच का नीचे ही रहता है ना। हमने जैसा ही मिट्टी कोड़ा तो फुल रूट मिल जाता है हमको, थोड़ा ऊपर से निकाले ठीक तो। है। आपकी जो भी सॉइल टेस्ट है वो आप मेरे नंबर पर शेयर कीजिएगा। मेरा नंबर चैट बॉक्स में आपको मिल जाएगा अभी, ठीक अथवा मैं बता ठीक है। दूंगा तो आप नोट कर लीजिए। वो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आप शेयर कीजिएगा, हम उसमें क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, या न्यूट्रिशन का रेशो बैलेंस है या न्यूट्रिशन का ही डिसबैलेंस है, हम उसको इम्बैलेंस है वो चेक करके आपको उसका इंफॉर्मेशन प्रॉपर शेयर करेंगे कि कैसे रेशो में उसको बनाना है और कौन सा न्यूट्रिशन किस क्वांटिटी में आवाज नहीं उसमें आ रहा है जरूरत सर। है। आपने जो रिपोर्ट हाँ शेयर करेंगे उसको चेक करने के बाद हम इसका अच्छे से आंसर आपको, ठीक आपकी है। और रिपोर्ट एक को शेयर पूछने का करने था के सर, बाद एक सर हम। हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ सुन सर रहे हैं ये आपकी बात। कार्बन कंटेंट जो है सर, इसको कैसा बढ़ाया जाए? हमने जैसा बोलता है कि जो वेस्ट है प्लांट से जो गिरता है वो सब उसका नीचे डाल दिया, वो सब मेथड यूज करता है। इन स्पाइट ऑफ दैट
आज 0.45, 0.5, 0.6 का ऊपर नहीं जाता है कार्बन कंटेंट। इतना सारा मेहनत के साथ साथ एक कार्बन बायो फर्टिलाइजर बैग लगा लीजिए, इसमें मुझे लगता है ना 30% प्लस कार्बन ही रहता है, और उसको प्रॉपर चला ओके लीजिए, आपको एक साल में ही आपका जो है 0.7, 0.8 और हो सकता है कि 1.5 भी पहुंच जाए। वहाँ की कंडीशन क्या है ओके इसको भी समझना पड़ेगा कि जो हमारा क्रॉप रेसिड्यू है उसको कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए और कार्बन को ह्यूमस में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रोबियल एक्टिविटीज होंगी और सल्फर कंटेंट होना जरूरी है। तो वो है कि नहीं आपके यहाँ, वो एक बार समझना पड़ेगा सर। ठीक क्या है, मैं आपको माइक्रोबियल भेज देता हूँ एक्टिविटी? सर आपका नंबर। आप भेज दीजिए, हम चेक कर लेंगे। ओके थैंक यू सर। रमा जी नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो चाहिए वो ले लेंगे। हाँ जी। हाँ जी। वीरेंद्र दावरी जी, आपका आंसर मिला बागवानी के लिए 4 फीट का। हाँ नमस्ते ओंकार जी। नमस्कार जी। हेलो। नहीं मैं इसलिए मैं वो जो बाद में डिस्कस कर रहे थे ना सदापुर के, वही सेम कंडीशन हमारे पास भी है। मुझे अभी कुछ पौधे लगाने की इच्छा है, तो 1-1.5 फीट से नीचे तो मुरुम जैसा उन्होंने कहा ना उस तरीके का सॉइल होता है, तो उसमें भी कुछ मिट्टी तो होती है। क्या उसको लेना चाहिए या नहीं, ये भी एक शंका थी मेरी। और दूसरा, यहाँ तक क्यों लेना चाहिए भाई, 4 फीट तक की क्या जरूरत होगी हमको? ठीक है, उसके मैं कारण बता देता हूँ। पहली बात तो यह है कि जी आपकी जो मुरम में मिट्टी है, तो समझिए कोई भी इवन जो हार्ड रॉक है ना उसमें भी न्यूट्रिशन ही होता है। तो जहां तक इजीली निकल जाए वहां तक तो लेना चाहिए, अथवा थोड़ा एफर्ट लगा के भी निकाल सकते हैं तो निकालना चाहिए। हमें ये पता होता है ना कि यदि हमने वहां से हमारा रूट जाएगा, या वहां मान लो ऐसी कोई कंडीशन बनी कि वहां से अर्थवर्म किसी कारण से आता है ऊपर की तरफ, तो जी कौन सा न्यूट्रिशन लेके आएगा। तो आपकी कॉस्ट हम कैसे रिड्यूस कर पाए, पूरा हमारा दारोमदार इस पर रहता है कि ये जी ऑलरेडी न्यूट्रिशन है, उसको हम कैसे ऊपर लेके आ सकते हैं। अब 4 जी। फीट वाला है कि जहां तक सर आपका रूट जा रहा है वहां तक आपको लेना चाहिए। यदि आपका रूट जोन 1 फीट का है तो 1 फीट लीजिए। नहीं अभी तो वो नहीं, उसके दो बारे में फीट का मैं कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन ऊपर सॉइल कम होती है ना, 1-1.5 फीट ही होती है, उसके नीचे फिर इस तरीके का सॉइल स्ट्रक्चर आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए शंका हुई थी। अब बाकी मैं समझ गया कि वहां से जो न्यूट्रिएंट्स है वो कल को ऊपर आएंगे, तो कितनी मात्रा में नीचे है इसकी खोज करना है, ऐसा उद्देश्य लगता है मुझे। नहीं मैं अमरावती अमरावती में है मेरा। मैं आपसे ठीक है। पहले मिला हूँ ओमकार जी। हाँ, पुणे में आप मिले थे ना मुझसे। नहीं नासिक में मिला था, नासिक में मिला था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी नहीं आ रही है ओमकार जी। आपका आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं वीरेंद्र जी। हाँ मैं नहीं बोल रहा था ओमकार जी, आपकी तरफ से नहीं आवाज आ रही थी करके। मैं आपसे पहले नासिक में मिला था आपके। साल में नींबू के कुछ पौधे मुझे लगाने की इच्छा है। हेलो। हाँ जी। हाँ, आपके यहाँ नेटवर्क का कुछ इश्यू है ना? हाँ जी, बहुत तेज आंधी तूफान भी चल रहा है और पानी भी गिर रहा है। जी ठीक है, फिर कभी अलग से आपके उससे बात कर लूंगा कभी। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए। पर्सनली। जी जी। ओके। धन्यवाद।
हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ओमकार जी, अभी 1 बज चुके हैं, तो अभी हम लंच ब्रेक के लिए जाते हैं। सो वी विल हैव अ लंच ब्रेक टिल 2, देन वी विल जॉइन अगेन, एंड हमारे जो नेक्स्ट एक्सपर्ट होंगे वो है श्री पंकज मंडा जी। ही इज अ सॉइल इंजीनियर एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सॉइल rejuvenation. So we can go for a lunch break. Please join by 2. Thank you. हाँ जी, धन्यवाद आप सबको। यदि किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो, और यदि मुझसे जानना है तो मेरे नंबर पर आप कभी भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद सबको। Thank you ओमकार जी। वेलकम पंकज जी। तो हम अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ पंकज मंडा जी है। ही इज अ सॉइल इंजीनियर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपर्ट। ही विल स्पीक अबाउट द सॉइल हेल्थ, सॉइल रेजुविनेशन एक्सेट्रा। तो पंकज जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार सभी को। नमस्कार पंकज जी। तो अब आज सभी फार्मर्स नए हैं या पुराने भी हैं इसमें? दोनों हैं पंकज जी, नए भी हैं और पुराने भी ज्वाइन हुए हैं। तो जैसे पहले भी जो पुराने हैं उन्होंने तो पहले सुना भी होगा। अभी जैसे हम बात करते हैं आज के दिन, जो भी कोई जैविक खेती के बारे में बात करता है, ऑर्गेनिक के बारे में बात करता है, रीजनरेटिव के बारे में बात करते हैं, तो सभी के सभी सिर्फ माइक्रोब्स के ऊपर बात कर रहे हैं, कार्बन के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन कार्बन और माइक्रोब्स डिपेंड करते हैं सॉइल की, आपकी स्ट्रक्चर, आपकी सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन और इन सब चीजों के ऊपर। जैसे आज से पहले हम बात करें, जिस किसी ने भी जैविक खेती की बात की तो वो सभी सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप जैसे रीजनरेटिव का जो कंसेप्ट है वो बोलते हैं कि आप सॉइल को डिस्टर्ब करना बंद कर दो, वहाँ पे माइक्रोब्स आ जाएंगे, वो सब अपने आप वहाँ पे आपका होगा सब कुछ। कुछ हैं जो बोलते हैं आप सॉइल में कार्बन बढ़ा लीजिए, आपकी खेती अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो कुछ हैं जो माइक्रोब्स के कल्चर के बारे में बात करते हैं, माइक्रोब्स देते हैं और उसके उससे बोलते हैं कि आपका अगर माइक्रोब्स पूरे होते हैं तो आपका न्यूट्रिशन अपटेक होने लगेगा। लेकिन ये सब चीजें सॉइल की हेल्थ से कनेक्टेड हैं। जैसे अगर सिर्फ मैं कार्बन की ही बात करूं, तो जितने भी फार्मर्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जैविक खेती की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका जो 10-10 साल से भी कर रहे हैं प्रैक्टिस, फिर भी उनका जो कार्बन है वो 0.5 से ऊपर नहीं है। अगर मैक्सिमम किसी का होगा तो 0.8 होगा, जो कि बहुत कम है। कम से कम भी 1% से ऊपर होना चाहिए। लेकिन वो बढ़ नहीं रहा। वो सभी ग्रीन मैन्योरिंग भी करते हैं, जो भी क्रॉप का रेजिड्यू होता है वो भी सॉइल के अंदर छोड़ते हैं, उसके बाद माइक्रोब्स भी अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो बढ़ता नहीं है। उसके दो रीजन होते हैं। पहला तो जो आपके सोइल के अंदर माइक्रोब्स जो फंक्शन कर रहे हैं वो डिकम्पोजिंग प्रॉपर कर ही नहीं पाते कि आपका जो भी मैटर वहां पे डला हुआ है वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो पाए। उसके बाद दूसरा ये होता है कि जो माइक्रोब्स काम करते हैं वो इतना, उनका सीएफयू काउंट भी नहीं है कि वो प्रॉपर काम कर पाए। उसके अलावा उनको वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, कि उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती है, उसकी वजह से नहीं काम कर पाते। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी सॉइल के अंदर सल्फर की डेफिशिएंसी होती है या सल्फर कम होता है तो आपका ह्यूमस फॉर्मेशन प्रॉपर होता ही नहीं। आप जितना भी बायोमास डालेंगे, कंपोस्ट डालेंगे, ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे, उसका 80% से ज्यादा कार्बन जो है वो वेस्ट हो जाएगा और ह्यूमस फॉर्मेशन होगा नहीं। उसके लिए आपकी सॉइल के अंदर क्ले और सल्फर होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो माइक्रोब्स वहाँ पे काम करेंगे उनके लिए सबसे पहले वहाँ पे जरूरी होता है आयरन। अगर आपके सॉइल के अंदर आयरन पूरा नहीं होता या डेफिशिएंट होता है तो 80% जो माइक्रोब्स या बैक्टीरिया, फंगस जिनकी भी हम बात करें वो सभी आयरन लेके ही अपनी सेल डिवीजन शुरू करेंगे। उसके बाद आगे का उनका काम स्टार्ट होता है।
अब अगर आयरन भी मिल जाता है, सल्फर भी वहां मौजूद होता है, बायोमास भी प्रॉपर है, बैक्टीरिया के कल्चर भी आपने चलाए, लेकिन अगर आपकी सॉइल में कॉम्पैक्शन होता है, 25% तक वहां पे एयर नहीं रहती है आपकी सॉइल में, तो भी आपके माइक्रोब्स काम नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ उतनी ही दूरी तक काम करेंगे जहां तक आपका ऑक्सीजन जाएगा। तो जो अभी तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अंदर होता क्या है, हमारी सॉइल में कॉम्पैक्शन होता है। हम कल्टीवेशन करके, ट्रैक्टर का यूज करके जितना भी हम सॉइल को कॉम्पैक्शन खत्म करने की ट्राई करते हैं, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 से 9 इंचेस तक ही हम कर पाते हैं, और वो भी दोबारा कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो वहां पे प्रॉपर एयर हो नहीं पाती, ऑक्सीजन वहां होती नहीं, इसकी वजह से माइक्रोब्स काम नहीं करते। अब यहाँ पे 2 से 3 तरीके के काम होते हैं। जैसे सभी बोलते हैं कि सब सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है, सॉइल की डेप्थ में जाएं तो वहां पे न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है, लेकिन जो न्यूट्रिशन अवेलेबल होगा उसको माइक्रोब सोलुबलाइज करेंगे। वहां पे अगर ऑक्सीजन होगी तो वो सोलुबलाइज होगा, ऑक्सीजन हमारी 9 इंचेस से आगे जा भी नहीं पा रही, तो वो अवेलेबल हो नहीं सकता। ऊपर अगर अपने सॉइल में आयरन नहीं हुआ तो माइक्रोब्स नहीं काम कर पाएंगे। कार्बन बढ़ाने की जो बात है, वो अगर वहां पे सल्फर नहीं हुआ तो संभव नहीं है कि जो कार्बन हम 1 या 2 साल में 1% से ऊपर कर सकते हैं, 2% तक भी जा सकते हैं, वो 10 साल में भी 1% नहीं पहुंच पाएगा अगर वहां पे प्रॉपर कंडीशंस नहीं होंगी। अब इसके बाद सॉइल के अंदर जो कॉम्पैक्शन का पार्ट है, वो सबसे जरूरी और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है कि हमारी सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसको हमें इम्प्रूव करना है। हमारी सॉइल के अंदर कॉम्पैक्शन नहीं होनी चाहिए। मिनिमम से मिनिमम भी 3 फीट तक हमारे कॉम्पैक्शन सॉइल में अगर नहीं होगा तो हमारे माइक्रोब्स प्रॉपर फंक्शन करेंगे, और जो हमारे डेप्थ के अंदर जो भी न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है वो अपटेक होना शुरू होगा। अब उसके लिए हमें कॉम्पैक्शन को खत्म करने के लिए पहला काम हमारा होता है हमारे सॉइल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का रेशो बैलेंस करना। अगर हमारी सॉइल में कैल्शियम का लेवल कम है तो वहाँ कॉम्पैक्शन होगी ही होगी। आप कितना भी ट्राई करेंगे ट्रैक्टर से जुताई करके, उसके अलावा रेस्ट बेड पे प्रैक्टिस शुरू करेंगे, लेकिन होगा क्या, आप एक बार इरिगेशन करेंगे, 2 बार करेंगे, या हैवी रेनफॉल होगा और आपकी सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाएगी, वहां पे एयर नहीं रहेगी, तो फिर आपके जो माइक्रोब्स हैं वो फंक्शन करना बंद करेंगे। तो अब इन चीजों को प्रॉपर काम करवाने के लिए जो आज तक हमारे सिस्टम्स बात कर रहे हैं या चल रहे हैं उनकी ही मैं बताता हूँ। अगर कोई माइक्रोब्स आपको दे रहा है, बोलता है कि हमारे कल्चर में सभी माइक्रोब्स हैं, ये आपका न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाएंगे, या फिर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कार्बन बढ़ेगा। अब ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप अपने सॉइल में माइक्रोब्स अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे आयरन नहीं है तो वो डोरमेंट हो जाएंगे। आपने आपकी सॉइल में आयरन कहीं पे है भी और फिर आप वहां पे काम कर रहे हैं माइक्रोब्स के लिए, तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो नहीं काम कर पाएंगे। उसके अलावा आपके सॉइल के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर करने के लिए आपको कॉम्पैक्शन को ही खत्म करना है, तो कॉम्पैक्शन तब तक परमानेंट खत्म नहीं हो सकती जब तक आप कैल्शियम और मैग्नीशियम का बैलेंस नहीं करेंगे। इस चीज को ठीक करने के लिए हमें सॉइल टेस्ट की ही जरूरत होती है। उसके बिना हम कभी भी ये श्योर नहीं हो सकते कि किस सॉइल में क्या प्रैक्टिस होगी। अगर किसी भी सॉइल टेस्ट की बात करें, आज के दिन जहाँ भी केमिकल खेती हो चुकी है, यहाँ पे जहाँ बहुत ज्यादा जिस जगह पे आपके कल्टीवेशन हुआ है, रेगुलर क्रॉप्स ली जा रही है, उन जगह का अगर सॉइल टेस्ट हम करवाएंगे तो जो कैल्शियम का लेवल होता है वो मिनिमम से मिनिमम 2000 तक होता है, जो आज हम अगर टेस्ट करेंगे तो 500 तक मुश्किल से हमें मिलेगा। अब उसको अगर पूरा करना है तो उसके लिए 2 कंडीशंस होंगी हमारे लिए, कि अगर आपकी सॉइल एसिडिक है जिसका पीएच 6.5 से कम होगा, उन सॉइल के अंदर आपको कैल्शियम पूरा करने के लिए डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये चीजें यूज करनी पड़ेगी। सॉइल टेस्ट करवाने के बाद हमें उसका पता चलेगा कि कौन सी यूज करनी है।
वहीं पे अगर आपकी एल्कलाइन सॉइल है 6.5 से ऊपर जिसका पीएच है, उसका अगर आप ठीक करने को जाएंगे तो आपको जिप्सम का यूज करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो अगली कहानी शुरू होती है कि जैसे आपके आज के दिन अगर हम सॉइल टेस्ट करवाएं तो यही मिलेगा हमें कि मैग्नीशियम बढ़ा हुआ होगा और कैल्शियम घटा हुआ होगा। तो जब हम जिप्सम, डोलोमाइट या फिर लाइमस्टोन यूज करेंगे तो उसके अंदर जो सल्फर होता है वो आपके मैग्नीशियम को ब्रेक डाउन करता है और लीच करवाता है सब सॉइल के अंदर। तो उसके बाद कैल्शियम को आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी सॉइल में कॉम्पैक्शन परमानेंटली खत्म हो जाती है, जिसमें हमें सॉइल टेस्ट के बाद पता चलता है कि किस सॉइल में 3 मंथ में हो पाएगा, किस में 6 मंथ में हो पाएगा और कौन सी में 1 साल में होगा। अब उसके अलावा जो आगे बात आती है न्यूट्रिशन की, कि आपने ये वाला पार्ट कर लिया कि कॉम्पैक्शन अब आपके सॉइल में नहीं होगी, तो अब वहाँ पे माइक्रोब्स को प्रॉपर काम करवाने के लिए आपको आयरन पूरा करना है। उसके अलावा आपकी सॉइल को कार्बन बढ़ाने के लिए आपकी सॉइल के अंदर सल्फर पूरा होना चाहिए। दूसरा, आपकी सॉइल पंकज के जी, आपका अंदर आवाज क्ले बहुत की ब्रेक हो रही है। मात्रा भी पूरी होनी चाहिए। तब आपके पंकज जो जी, माइक्रोब्स हैं ये काम करना शुरू करेंगे और कार्बन बढ़ना शुरू होगा। सन खत्म कर बात जो बात आएगी क्या? हेलो, हाँ जी, अभी क्लियर आ रही है? हाँ आप क्लियर आ रही हैं। जी। तो ये करने के बाद जैसे आपके बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सभी भी प्रॉपर एक चीज से काम नहीं करते, इन सभी को कंडीशंस चाहिए और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ ये अपटेक होते हैं। अब जो हमने मेन एनपीके की ही मैं बात करूंगा, जो नाइट्रोजन की बात शुरू होती है तो अगर जैविक खेती में सबसे बड़ा चैलेंज ही नाइट्रोजन पूरा करना होता है। अब हमारे पास नेचुरल सोर्सेस जो है नाइट्रोजन के वो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो तब पूरी होगी अगर आपके सॉइल में कार्बन या फिर बायोमास ऑर्गेनिक मैटर आपके प्लांट्स के रूट जोन के पास 3% के लगभग होगा। दूसरा, जब भी रेनफॉल होता है तो आपको नाइट्रोजन मिलेगी, या फिर जो फार्मर्स स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं उनके पूरी हो सकती है। अब नाइट्रोजन को पकड़ने के लिए वहां पे कार्बन चाहिए और इसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए मैग्नीशियम भी आपका वहां पे सफिशिएंट होना चाहिए। इसके अलावा जो फास्फोरस है, फास्फोरस आपका काम करता है जब आपके सॉइल का पीएच सही हो। उसके अलावा आपके सॉइल के अंदर फास्फोरस का 10th पार्ट वहां पे सल्फर होना चाहिए, तभी आपका जो फास्फोरस है वो प्रॉपर काम कर पाएगा। अभी अगर इसकी मैं एग्जांपल बताऊं, बहुत से फार्मर्स ने ये प्रैक्टिस करके देखा होगा कि वो अपनी सॉइल में फास्फोरस डाल रहे हैं, फिर भी उनके प्लांट्स के अंदर फास्फोरस की डेफिशिएंसी दिखती है। फिर वो वाटर सोल्यूबल्स यूज करके स्प्रे कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी डेफिशिएंसी क्लियर नहीं हो रही। तो उस कंडीशन में वहां पे सल्फर ना होने की वजह से वो अपटेक नहीं होता है। तो सल्फर का जो पार्ट है वो भी हमारा जब हम कैल्शियम वाला करते हैं उसके साथ पूरा हो जाता है। इसके बाद जो पोटेशियम की हम बात करते हैं, पोटेशियम फंक्शन करता है आपका कैल्शियम और बोरोन के साथ में। अगर आपकी सॉइल के अंदर कैल्शियम पोटास दोनों है और बोरोन नहीं है तो आपके ये दोनों अपटैक नहीं होंगे और प्रॉपर काम नहीं करेंगे। इसके अलावा तीनों चीज प्रॉपर होनी चाहिए। और बोरोन का जो कंसेप्ट अपने इंडिया में मैं बात करूं तो जो चल रहा है, चिलेटेड बोरोन डलवाई जाती है वो भी सिर्फ स्प्रे में, लेकिन जो बोरोन है वो स्प्रे से सिर्फ 10% भी काम नहीं कर पाता, इसको सॉइल में पूरा होना चाहिए, जिसका जो सोर्स है वो हमारे पास होता है
सुहागा जिसको हम बोरिक एसिड बोलते हैं या बोरेक्स बोलते हैं। और इसके अलावा जो पोटेशियम की बात है, अगर पोटेशियम आपका, सब न्यूट्रिशन आपके सॉइल में पूरे हैं, आपका प्लांट उठा भी रहा है, लेकिन अगर पोटेशियम वहां पे नहीं है या वो फंक्शन नहीं कर सकता किसी भी कारण से, तो आपके प्लांट में उसका जो सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है न्यूट्रिशन का, वो हो ही नहीं पाता। तो अब मैं बात करूंगा सोर्सेस की। जैसे फास्फोरस की मैंने बात की, तो कंपैरिजन से मैं आपको बताता हूँ। जैसे डीएपी, अब के टाइम में डीएपी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, इन चीजों का यूज पंकज जी, आप म्यूट पे चले गए हो। 100 किलो डीएपी डालने पे आपको सिर्फ और सिर्फ 9 किलो, 9.5 केजी के तक आपको फॉस्फोरस अवेलेबल होगा, जो कि आपकी क्रॉप के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। वहीं पे हम बात करते हैं नेचुरल सोर्स में सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट की। अगर सॉफ्ट फॉस्फेट आप सॉइल में डालते हैं तो उसके अंदर 22% आपका फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। अब उसमें दो चीजें हैं कि जब आपने 100 केजी रॉक फॉस्फेट अपनी सॉइल में डाला, वहां पे आपको एसिडिक कंडीशन बनानी है और साथ में सल्फर पूरा करना है। तो वहां पे जो उसके अंदर 22% जो फॉस्फोरस है, उसमें से 14% तो आपका साथ की साथ एसिडिक कंडीशन और सल्फर मिलते ही अवेलेबल हो जाएगा, और बाकी जो 8% बचेगा वो होगा माइक्रोब्स के द्वारा धीरे धीरे सोलुबलाइज अवेलेबल होगा। उसके अलावा डीएपी के अंदर क्या लिमिट्स है कि आपने आज डीएपी को अप्लाई किया, वो 20 डेज के बाद आपका अवेलेबल होना शुरू होगा और नेक्स्ट 55 डेज तक अवेलेबल होगा। अब अगर आपके प्लांट ने 55 डेज तक जितना अपटेक करना था वो कर लिया, उसके अलावा जो वहां पे बचा 18% से बाकी जो भी बचा वो तो वैसे ही फिक्स होना है, और वो 18% में से भी फिक्स होगा अगर नहीं अपटेक हो पाया। तो वो करेगा क्या, वो आपके वहां पे जो भी न्यूट्रिएंट्स दूसरे पड़े हुए हैं, जैसे आयरन और जिंक मेनली, इनके साथ में रिएक्शन करेगा, जिंक का जिंक फोस्फाइट बनाएगा और फेरस आयरन का फेरस फोस्फाइट बनाएगा। इसी जो आप फोस्फेटिक फर्टिलाइजर केमिकल के डाले हैं, इसी की वजह से आपके सोइल में जो जिंक था वो फिक्स हो गया, जो आयरन था वो फिक्स हो गया, और वो इस फॉर्म में हो गया कि उसको माइक्रोब सोलुबलाइज कर नहीं सकते, सिर्फ वहां पे एसिड ही उनको तोड़ सकता है। अब उसके अलावा, अब हमें वापस आयरन, ये जब हम रॉक फॉस्फेट डालेंगे तो इसमें होगा क्या, 22% तो आपको आयरन में ये फॉस्फोरस मिलेगा ही, उसके साथ में 40 टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल अलग से मिलेंगे। दूसरा, इसका सबसे अच्छी बात ये है कि ये किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं करेगा ऑक्साइड फॉर्म का होने की वजह से, और वहां पे आपका अवेलेबल रहेगा जब तक कंज्यूम नहीं हो जाता। तो ये डीएपी के साथ में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये उससे डबल से भी ज्यादा सेम क्वांटिटी में हमें मिल जाता है। और उसके अलावा जब आगे कैल्शियम पोटेशियम को काम करवाने के लिए हमें बोरोन और कैल्शियम पूरा करना होगा। तो जहाँ भी बोरवेल का पानी यूज होता है वहां पे पोटेशियम तो लगभग पूरा हो ही जाता है, और अगर
आपका कैल्शियम और बोरोन कम होता है, तो कैल्शियम के लिए तो आपने जिप्सम, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, इनमें से कोई भी चीज आपकी सॉइल कंडीशन के हिसाब से यूज करनी है। बोरोन के लिए आपको बोरेक्स जो होता है उसको यूज करना है। और अगर पोटेशियम कम हुआ तो वो आपका रॉक फॉस्फेट में भी मिलेगा, रेड सॉइल में भी मिलेगा, जिप्सम में भी मिलेगा, इन सब चीजों से आपका पूरा होता है। उसके अलावा जब आपकी बात आएगी आयरन को पूरा करने की, तो आयरन को पूरा करने के लिए हम फेरस सल्फेट और इन सब चीजों को छोड़ के हम ऑक्साइड फॉर्म का आयरन यूज करेंगे, जो सिर्फ एक रेड सॉइल के अंदर होता है 28% तक ऑक्साइड फॉर्म में आयरन, जो बैक्टीरिया इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। और वहाँ पे एसिडिक सिर्फ कंडीशंस बनानी है हमें। उसी के साथ रेड सॉइल को यूज करने से हमें अलग 40 टाइप्स के और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमें मिल जाते हैं। इसी तरह से अब आपका आयरन काम तो करेगा अगर आपके सॉइल में उसका 10वां भाग कॉपर वहां पे मौजूद आपको मिलेगा। इसी तरह से जो आपके बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सभी, अगर हम मैं बात करूं, साइंस तो बात करता है 17 की, अभी 18 की भी करने लगा, तो ये टोटल 108 होते हैं, जिसमें से 4 तो आपको नेचुरली अवेलेबल होने हैं, और जो 104 है वो आपको अगर सॉइल में नहीं है तो उनकी व्यवस्था करनी है, या फिर उन्हें माइक्रोब्स अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन नाइट्रोजन के सिवा कोई भी चीज वहां पे बाहर से आके फिक्स नहीं होगी अपने आप। जो चीज आपकी सॉइल में नहीं है वो चीज आपको डालनी पड़ेगी। अब इन सब चीजों को काम करवाने के लिए हमें एसिडिक कंडीशन पैदा करनी पड़ेगी, वहां पे सभी टाइप के माइक्रोब्स वहां पे अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, और वहां का कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। अब कार्बन बढ़ाने के लिए आज से पहले की अगर मैं बात करूं तो हमें जो प्रैक्टिसेस बताई गई हैं वो ये है कि आप कंपोस्ट तैयार करो, आप ग्रीन मैन्योरिंग करो, और आप वहां पे जो भी रेजिड्यू क्रॉप का होता है वो सोइल में छोड़ दो। लेकिन वो आगे प्रॉपर डिकम्पोज ही नहीं होता, वो आपका ह्यूमस फॉर्मेशन भी नहीं होता। उसके लिए पहले आपने सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस किया, उसके बाद वो आपका काम होना शुरू होगा। उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स आपने डाले उनको भी अवेलेबल करवाने के लिए आपको एसिडिक कंडीशन बनानी है। उसके लिए अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो हमारे पास है बायो एंजाइम, और उसके अलावा जो बैक्टीरियल कल्चर, और सबसे अच्छा उसका अगर मैं आपको सोर्स बताऊं तो वो है आपका एनारोबिक बैग। अगर आप सीधा कोई भी कंपोस्ट कितना भी अच्छा तैयार करके अपनी सॉइल में डालते हैं तो उसको वहां पे ऑक्सीजन मतलब एरोबिक कंडीशन के अंदर वो आगे एंजाइम फॉर्म में कन्वर्ट होते होते उसको 3 इयर्स लग जाते हैं। तब तक उसका कार्बन आपका फिर 80% से ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे व्यवस्था शुरुआती टाइम में माइक्रोब्स बढ़ाने के लिए और ह्यूमस बढ़ाने के लिए डायरेक्ट एंजाइम फॉर्म का ही कार्बन आपको वहां पे डालना पड़ेगा, जिसका सबसे अच्छा सोर्स एनारोबिक बैग, जिसको हमें कार्बन फर्टिलाइजर बैग भी बोल देते हैं, जो उसके अंदर लिक्विड जो निकल रहा है उसके अंदर 25% से लेके 40% तक उसके लिक्विड में कार्बन होता है। वो वेरी करता है आप उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या डाल रहे हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें आप यूज कर रहे हैं। अब उसके अंदर से जो आपको फर्टिलाइजर मिल रहा है उसके अंदर 25 से 40% तक का जो कार्बन मिल रहा है वो डायरेक्ट एंजाइम फॉर्म का है। आप अगर अपनी सॉइल में जितने लीटर उसको इस्तेमाल किया उसके अंदर जितने परसेंट कार्बन था वो डायरेक्ट आपकी सॉइल में जाते ही आपकी सॉइल ने उसको अब्जॉर्ब कर लिया। अब कार्बन बढ़ाना, न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाना, इस सब में 3 फैक्टर और काम करते हैं। आपके सॉइल का पीएच, आपके सॉइल की ईसी, और आपके सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। जो सॉइल का पीएच है ये सबसे जरूरी है कि आपका न्यूट्रल के करीब रहे, तो ही आपके सभी के सभी न्यूट्रिएंट सोलुबलाइज होते हैं और प्लांट से अपटेक हो पाते हैं।
तो इसको ठीक करने के लिए आपको वहां पे कार्बन फर्टिलाइजर जो आप यूज करेंगे वो आपको बहुत जल्दी आपके सॉइल का पीएच बैलेंस करवा देगा। उसके बाद जो आपके सॉइल की ईसी जो होती है 0.20 से लेके 0.93 के बीच में हो तो बहुत सही है। अगर वो 9.93 से ऊपर जाएगी तो उसका मतलब आपके सॉइल के अंदर सोल्ट की मात्रा ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपके प्लांट्स की रूट्स डिहाइड्रेट होती हैं और न्यूट्रिशन अपटेक हो नहीं पाता, वहां पे माइक्रोब्स काम नहीं कर पाते। अब जहां भी ईसी की गड़बड़ होती है, ज्यादा ईसी जहां भी होगी वहां पे हमारे एकदम से प्लांट सूखते हैं, बड़े प्लांट्स भी सूखते हैं, सीजनल क्रॉप के प्लांट भी सूखते हैं, और उसको जब उखाड़ देखते हैं तो उसकी रूट्स काली निकलती है, ब्लैक रूट हो जाती है या रेड हो जाती है। तो उसको हम बोल देते हैं कि यहाँ पे विल्ट आ गई या फिर कोई फंगस की वजह से ये हो गया, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम है आपका ईसी। अगर ईसी आपका ज्यादा है तो न्यूट्रिशन अपटेक होगा नहीं और आपके रूट्स जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएंगी। तो इसी को मेंटेन करने के लिए आपको ह्यूमिक एसिड का, इसी को कम करने के लिए ह्यूमिक एसिड का आपको इस्तेमाल करना होता है। और दूसरा जो कार्बन फर्टिलाइजर भी आप यूज करते हैं उसमें भी ह्यूमस होने की वजह से वो भी आपका उसको बैलेंस करता है। अगर आपकी ईसी बहुत कम होती है तो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती नहीं, उसको ठीक करने के लिए हम जो ऊर्जा जल यूज करते हैं जो या हमारी गोवर्धन खनिज खाद है वो भी आपकी इसी को बैलेंस करती है, माइक्रोब्स भी देती है, बैक्टीरिया भी देती हैं और सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देती है। इसी तरह से जो आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो सबसे जरूरी है। जैसे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का मतलब है जो भी आप न्यूट्रिएंट्स अपनी सॉइल में डाल रहे हैं वो डायरेक्ट जैसे ऑक्साइड फॉर्म का डाला तो उसको ऑक्साइड फॉर्म में आपका प्लांट नहीं लेगा। ऑक्साइड फॉर्म को सिर्फ माइक्रोब्स हैं वो जल्दी अवेलेबल करवा सकते हैं, उस पे माइक्रोब्स काम कर सकते हैं। लेकिन आपका प्लांट आयन और अनायन फॉर्म के अंदर ही आपके न्यूट्रिशन को अपटेक करता है। उसको एक्सचेंज करने में आपकी सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का रोल है। अभी जहां भी केमिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ट्रैक्टर का यूज ज्यादा हुआ है, उन सभी सॉइल में जहां भी हम सॉइल टेस्ट करवाते हैं तो 25% तक आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होनी चाहिए, वो 2.5 तक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 तक जा रही है। तो इतनी कम है, जो भी आप डालते हैं वो प्रॉपर अवेलेबल हो नहीं पाता, वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं रह पाता, कार्बन भी वहां स्टोर नहीं होता है। तो ऐसी हम प्रॉब्लम्स के साथ में चल रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है, इसलिए हमें सोयल टेस्ट करवाना होता है। अब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए हमारी सोयल के अंदर फंक्शन करेंगे आपके सोयल में क्ले, सिलिकॉन ऑक्साइड और आपका ह्यूमस। अब अगर आपकी सोयल में प्रॉपर क्ले नहीं है तो आपका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होगा। उसके अलावा वहां पे सल्फर नहीं होगा तो भी वो काम नहीं करेगा, ह्यूमस नहीं होगा तो भी काम नहीं करेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड नहीं होगा तो भी काम नहीं करेगा। तो इन सब चीजों के लिए हमें सोइल टेस्ट करवा के, और हमारे पास जो सोर्सेस होते हैं जैसे जियोलाइट है, आयोनिक ग्रीन है, बसाल्ट है, काफी चीजें हैं जो यूज की जाती है सोइल कंडीशन के हिसाब से। तो वो करने के लिए हमें जियोलाइट, बसाल्ट, इनमें से किसी भी चीज का यूज करना पड़ सकता है, वो हमारे सॉइल टेस्ट के ऊपर ही वेरी करेगा। अब इसके बाद जो बात आएगी वो आपकी आएगी माइक्रोब्स के फंक्शन की। माइक्रोब आपके फंक्शन तभी करेंगे अगर आपके सॉइल का पीएच बैलेंस होगा। तो उसके लिए आपको ह्यूमस बढ़ाना है, वहां पे आपको एंजाइम्स देना है, एंजाइम फॉर्म में ही कार्बन देना है, तो उससे आपका जल्दी कार्बन और ह्यूमस। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे
आपकी सॉइल के अंदर आपने कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जांच करवाई और उसके बाद जो भी हमें पता चला उसके हिसाब से हमने काम किया, तब आपकी सॉइल प्रॉपर फंक्शन करने लगेगी। इसके बाद आपके सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी हमें पता होनी जरूरी है। तो इसलिए हम सॉइल टेस्ट को ही प्रेफर करते हैं। उसके अलावा अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वो आइडियल काम होगा जिसमें हमें प्रॉपर रिजल्ट आ नहीं सकते। तो अब अपनी सॉइल को प्रॉपर फंक्शन करवाने के लिए, वहां से हमें न्यूट्रिशन अपटेक कराने के लिए हमें सॉइल टेस्ट का पता होना ही चाहिए। सॉइल टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास होनी चाहिए, तभी वो काम हमारा हो पाएगा, नहीं तो वो हो नहीं सकता। और उसके बाद इसी तरह की और छोटे छोटे बहुत फंक्शन हैं जो, और बहुत चीजें हैं जो हमें प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ती है, और वो हमेशा हम सॉइल टेस्ट से ही वेरी कर सकते हैं, मतलब वेरीफाई कर सकते हैं। अब सॉइल टेस्ट के बिना अगर हम कहीं भी जाते हैं तो वहां पे हमारे सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और वहां पे प्रैक्टिस हमें बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अगर हम सॉइल टेस्ट प्रॉपर करवा लेते हैं तो हमारे सामने बिल्कुल परफेक्ट प्रैक्टिस आ जाएगी कि हमें ये काम करना होगा, तो हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। हमारा जो भी फूड आ रहा है वो न्यूट्रिशन डेंस होगा, और हमारी क्रॉप जो भी हम लगाएंगे उनके अंदर प्रोडक्शन पूरा आएगा। उसके अलावा वहां पे कोई भी डिजीज नहीं आएगी। अब डिजीज का पार्ट भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट से बता देता हूँ कि अगर आपकी सोइल के अंदर या फिर आपके प्लांट ने कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम को अगर प्रॉपर अपटेक नहीं किया तो आपके शकिंग पेस्ट्स आते हैं। आयरन नहीं हुआ तो बोरर्स आएंगे। जिंक नहीं हुआ वायरस आएगा। कॉपर नहीं हुआ बैक्टीरियल ब्लाइट्स आएंगे। सल्फर नहीं हुआ फंगस आएंगे। मैग्नीशियम नहीं हुआ माइट्स, थ्रिप्स, ऐसी काफी चीजें आएंगी। तो ऐसे ही सभी डिजीज हैं। अगर ये आपकी सोइल प्रॉपर वहां से अपटेक करती है सब कुछ आपका प्लांट, तो आपको कोई डिजीज आएगी नहीं, और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी आएगी। अभी जो कहा जाता है कि आपका प्लांट सॉइल से 3% ही न्यूट्रिशन अपटेक करता है, बाकी 97% एटमॉस्फेयर से और बाहर से लेता है। जब तक आपका 3% पूरा अपटेक नहीं होगा तब तक 90% बाहर वाला काम ही नहीं कर पाएगा आपका। और जिस दिन आपका ये 3% पूरा रूट से अपटेक होने लगा सॉइल से, उस दिन आप आज जो भी किसी चीज की प्रोडक्शन ले रहे हो वो बहुत कम है उसके मुकाबले। कि आपकी क्रॉप जो आज, अगर वेजिटेबल्स की मैं बात करूं तो वो जहाँ पे सिर्फ 45 डेज 50 डेज चल रही है, वो आपकी 90 डेज तक चलने लगेगी, और उसमें डेली प्रोडक्शन आपका डबल तक रहेगा। ये सब ऐसे फंक्शंस होते हैं और हमने इसके रिजल्ट्स भी देखे हैं। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब हम प्रॉपर सॉइल टेस्ट के साथ वहां पे जाते हैं। हमारे पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है सॉइल को बैलेंस करने का। उसके अलावा जो भी कोई क्रॉप लगती है उसके ऊपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करने का, सॉइल का पीएच, ईसी सब कुछ मैनेज करने का, कार्बन बढ़ाने का भी। लेकिन हमें सॉइल टेस्ट चाहिए रहता है। तो इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह के कोई सवाल, आपके डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी आप जो ये ग्रुप होता है उसमें अपनी इंक्वायरीज डाल सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले हमें सॉइल टेस्ट चाहिए, उसके बाद ही हम आपको बिल्कुल प्रॉपर और सही करवा सकते हैं। अब सॉइल टेस्ट के बिना अगर हम जाते हैं तो हो सकता है हमारा अननेसेसरी खर्चा हो जाए। अगर सॉइल टेस्ट से हम जाते हैं तो जो चीज जरूरी है उसी पे काम करेंगे। हो सकता है बहुत सी सॉइल्स के अंदर हमें बहुत ही मिनिमम प्रैक्टिस करनी पड़ जाए। तो आपका जो भी किसी का कोई सवाल या डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका, सॉइल से, फार्मिंग से, किसी क्रॉप से, तो आप पूछ सकते हैं। जी, आप लोगों को सॉइल रिलेटेड कोई भी सवाल मन में आ रहा हो तो आप पंकज जी से बात कर सकते हैं।
पंकज जी, चैट बॉक्स में ना एक क्वेश्चन आया है कि कैसे पोटाश को इंक्रीज करें, हाउ टू इंक्रीज पोटाश अगेन। जिन सॉइल्स के अंदर बोरवेल का वाटर यूज होता है वहां पे पोटाश ऑलरेडी होता है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके सॉइल के अंदर सोडियम ज्यादा था या फिर आपके वाटर में भी सोडियम एक्सेस है तो वो रिप्लेस हो चुका है पोटाश सोडियम की जगह। उसको ठीक करने के लिए हमें वहां पे जिप्सम का इस्तेमाल करना पड़ सकता है या फिर बायो एंजाइम्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अगर आपकी सॉइल के अंदर पोटाश है ही डेफिशिएंट तो आप रेड सॉइल का यूज कर सकते हैं, उसके अंदर 8 से 10% तक पोटाश होता है। और दूसरा ये हो सकता है कि आपकी सॉइल में, जैसे आपने पोटाश का पूछा, तो आपके पोटाश सॉइल के अंदर पूरा भी हो, लेकिन अगर वहां पे आपका कैल्शियम और बोरोन नहीं है तो वो आपका फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें सॉइल टेस्ट का अगर हमारे पास रिपोर्ट होगी तो हम उसको प्रॉपर उसी चीज पे काम कर पाएंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मान लीजिए आपकी सॉइल में पोटाश पूरा है लेकिन कैल्शियम नहीं है, तो भी वो काम नहीं करेगा। आपके सॉइल में कैल्शियम और पोटाश है लेकिन बोरोन नहीं है तो भी काम नहीं करेगा। अगर आपके सॉइल में कैल्शियम बोरोन है और पोटाश नहीं है तो वो दोनों काम नहीं करेंगे। इसी तरह का इसका कंसेप्ट है कि ये तीनों अगर बैलेंस में होंगे तो इनका काम होगा। तो इसलिए हमें सोइल टेस्ट का मतलब रिपोर्ट होना चाहिए, तभी हम इस पे प्रॉपर काम कर पाएंगे। और बाकी जो, हाँ, पोटाश अगर आपका लेस है तो आप रेड सोइल के साथ जा सकते हैं। अगर सोइल टेस्ट आप कराएंगे आपके वहां पे फॉस्फोरस भी कम आता है तो रॉक फॉस्फेट अगर डालेंगे उससे भी पोटाश आपका इंक्रीज होगा। हेलो। जी सर। सर मेरा इधर वो लैटराइट सॉइल है जिसमें आयरन बहुत ज्यादा है लेकिन पोटैश काफी कम रहता है। उसको यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक पोटैश लेके बाकी सब पोटेशियम ऑर्गेनिक करते क्लोराइड। रहते हैं। पोटैश को खाली हम ये डालते हैं रासायनिक वैसे तो मैं आपको पोटैश बताऊं, जो डालते ये जो पोटेश है, एमओपी है या जो भी है, ये सभी पोटाश जो भी आ रहा है ना, मतलब एमओपी है या क्लोराइड है, ये सभी हैं। हाँ। ऑर्गेनिक ही है, माइनिंग प्रोडक्ट होता है ये। ओके ओके। हाँ। पोटेश जो है ये है तो माइनिंग प्रोडक्ट ही, लेकिन इसको आगे किया जाता है मतलब प्रोसेस, उस समय ये केमिकल हो जाता है। लेकिन पोटाश के और सर भी इसको सोर्सेज होते हैं। ये वाटर सॉल्युबल 0050 दे के पूरा कर सकते हैं क्या सर? इससे नेगेटिव इफेक्ट आएगा? देखिए उसको आप कर सकते हैं, लेकिन वाटर सोल्यूबल्स इस्तेमाल करेंगे तो आपका पीएच बढ़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी आपकी इफेक्ट होगी। ओके। आप एक तो प्रॉपर मैं सोइल टेस्ट इसको होता है, आपको साल उसका में दो लिंक बार मिलेगा, आप वो सोइल टेस्ट करवाइए सर। सॉइल टेस्ट करवाया सर जिसमें पीएच काफी कम आया मेरा, तो 5.7 आया। एसिडिक सोइल है आपका? हाँ जी। ओके, आप हैं कौन से स्टेट से? हम का ये कर्नाटक का है जिसमें ये कोस्टल एरिया से है सर। फुल रेड सॉइल है वो, लैटराइट सॉइल। नीचे जाएगा तो मुरुम मिलता है थोड़ा एक 2 फीट 3 फीट ऐसा जाएगा तो फुल वो रेड कलर का वो पत्थर जैसा मिल जाता है फिर। ओके, आप मुझे अपना रिपोर्ट शेयर कीजिएगा। ठीक है सर। और उसके अलावा, अगर और उसके अलावा हमें रिपोर्ट करवाना पड़ा तो हम आपको बताएंगे, एक वो टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा। ठीक है। उसमें वो आप बोला ना सर वो कैटायन, वो टेस्ट मैंने नहीं करवाया, जनरली वो नहीं हाँ, आता है इसीलिए लगता है। आप जो प्रॉपर सॉइल टेस्ट होता है, हमें अवेलेबल न्यूट्रिशन, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, पीएच, इसी सब चाहिए हाँ। रहता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो आप करवाएंगे तभी हम इस चीज पे प्रॉपर जा पाएंगे। दूसरा सर आपने अभी ये बताया कि
कभी कभी हमारा सॉइल में सब यह रहता है न्यूट्रिशन, बट वो प्लांट इंटेक नहीं कर पाता है। वो हमको जी प्लांट के लीफ से या ऐसा कोई टेक्निक है सर जिससे हमको मालूम पड़े कि हमारा प्लांट बराबर ये चीज को ले रहा है नहीं ले रहा है, कैसा मालूम पड़ेगा सर? देखिए, वो हमारे पास सिम्टम्स होते हैं कि हमारा कौन सा न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं हुआ या कौन से चीज की डेफिशिएंसी है, लेकिन उससे पहले हमें ये श्योर होना चाहिए ना कि हमारी सॉइल में सब चीजें हाँ, है। ठीक है, समझ गया। अगर तो पहला हमारी आपका कहना उसके है कि जब हम सॉइल सॉइल ठीक करें। टेस्ट करवा लेंगे और उसमें हमें पता ठीक है, चला कि हमारी सॉइल में सब चीजें हैं लेकिन फिर भी डेफिशिएंसी आ रही है, फिर हम उसके रीजन पे काम कर पाएंगे। ठीक है सर। तो बट हमारा इसमें सर वो 4 फीट तक वो सब नीचे नहीं जा पाते, जैसा हमारा अरेकानट आप प्लांटेशन एक है फीट उसके 2 फीट अंदर। का भी ले सकते हैं, 2 फीट का जितना आप ले सकते हैं उतना ही सैंपल लीजिए। ठीक है सर। ओके ओके। ये सॉइल टेस्ट साल में कितना बार करना पड़ेगा सर? हमें 1 टाइम चाहिए स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद आप उसकी मतलब इम्प्रूवमेंट चेक करने के लिए कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन जैसा सॉइल टेस्ट, ये सॉइल का टेस्ट करने के लिए हमने सपोज सर या कोई अभी मैंने कैल्शियम का इस्तेमाल किया, उसका बाद हमने कितना दिन छोड़ के वो करना चाहिए सर? अभी मैंने रिसेंटली डोलोमाइट डाला, तो डोलोमाइट डालने के बाद कितना दिन मेरे को छोड़ना पड़ेगा, या ऐसा कुछ है क्या, कभी भी ले सकते हैं? नहीं नहीं, आप अभी ले सकते हैं सॉइल सैंपल कभी भी, जब आपने डाला उसके हाँ विद इन 15 डेज के बाद आप कभी भी सैंपल ले सकते हैं। जो डाला वो आपका फंक्शन करेगा या जो भी होगा वो हाँ, कंडीशन अपने सामने आ जाएगी। ये तभी प्रॉब्लम आती है जब हम वाटर सोल्यूबल्स डालते हैं और उसी समय अगर हम ले लेते हैं सॉइल सैंपल। ठीक है, तब प्रॉब्लम आएगा, अदरवाइज ले सकता है। हाँ, अदरवाइज आप ले सकते हो, जो भी आप माइनिंग प्रोडक्ट कुछ भी डालें या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो आप कभी भी सैंपल ले सकते हैं। उसके अलावा जो आपके सॉइल में नहीं होगा वो डेफिशिएंट आ जाएगा, जो आपने डाला वो फंक्शन कर रहा है तो वो सफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है सर, ओके सर। तो आपका ये मेन ऐसा है कि जो भी ये हम लोग करने का पहला सबसे जरूरी है कि सॉइल टेस्ट करके उसका सॉइल रिजल्ट का टेस्ट के ऊपर ही काम बगैर करना देखिए, चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, प्रोडक्ट के बेस पे भी हम फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें सॉइल पे काम करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। और उसको अगर प्रॉपर हमें काम ऐसा करना है कि हम एक बार 1 साल 2 साल ऐसी प्रैक्टिस करें कि उसके बाद सिर्फ हमें क्रॉप को ही लेना है, बाकी बीच में कोई दूसरी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी और प्रैक्टिसेस नहीं करनी पड़े, उसके लिए हमें सॉइल टेस्ट चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। सर आपका नंबर स्क्रीन पे इसमें दे दीजिए तो मैं मैं मैसेज में सब डाल सॉइल देता टेस्ट। हूँ। ठीक है सर, ओके। मैं सॉइल रिपोर्ट, सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट भेज दूंगा। ओके। हेलो। जी सर। महाराष्ट्र सांगली से बोल रहा जी सर। हूँ। मेरा अभी अंगूर का बगीचा है जी। और अमरूद का। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले 1-2 महीने से हम्म जो आपका गोबर का गोरे का गोबर रहता है उसका हम्म वो निकाल कर बाहर रखा है वो। जी और उसका जो उसमें ये जो सब चीजें मिलाकर गुड़ गोमूत्र डालकर उसका भट्टी जी। लगा हम्म। दें। हेलो। जो उसका साइड इफेक्ट रहेगा। कैसे सर, दोबारा बताएंगे थोड़ा सा मुझे? अ, ये जो रासायनिक खत है हमारा, अच्छा, आप बॉन्डिंग तोड़ रहे हैं ये उनका, एस्पर फॉस्फेट। मतलब उनका बॉन्डिंग तोड़ के कर रहे हैं आप, रेजिड्यू हाँ, फ्री कर बॉन्डिंग रहे हैं? बॉन्डिंग का। हाँ, बॉन्डिंग नहीं करे, हम्म, तोड़ रहे हैं। तो जी। उसके बाद
मिलाकर। कैसे? जो गोबर का खाद रहता है ना, जी जी, समझ गया। हाँ, उसमें मिलाकर हम एक भट्टी लगाते हैं उसकी। समझ गया जी। हाँ, और वो 8-10 दिन के बाद वो फिर वो पौधे के पास या ड्रिप के नीचे डालते हैं उसको। जी। तो उससे मिलने वाला न्यूट्रिशन है, वो सही रहता है या उसमें कुछ दिक्कतें आती देखिए, है? वो ऐसा है कि जो केमिकल है वो केमिकल ही रहेगा, लेकिन उसमें ये है कि आप उसके अंदर जो भी चीजें डाल रहे हैं वो आपकी सॉइल में फिक्स नहीं हो रही। उसका ये बेनिफिट है आपके लिए, और ज्यादा से ज्यादा वो आपका काम आ रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। हाँ, उसके साथ लेकिन गुड़ रहेगा वो गोबर। केमिकल ही। हेलो। जी। हाँ, उसके साथ गुड़ भी मिलाते हैं हम, और हाँ, गोमूत्र वो भी आप मिलाते हैं, हाँ और वो मिलाइए, वो ठीक ह्यूमिक है। एसिड। लेकिन वो उससे आपका रहेगा केमिकल ही सर। केमिकल ही रहेगा ना? जी। जो वो और पार्ट है ना, वो ऐसा है कि उसके अंदर हम हर क्रॉप के हिसाब से मटेरियल कैलकुलेट करके डालते रहते हैं। वो क्रॉप के हम्म हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, लेकिन जो प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ वो हम्म ऐसी प्रैक्टिस है कि हम आपकी सॉइल किसी भी टाइप की हो, स्ट्रक्चर कैसी भी हो, सॉइल की कंडीशन कोई भी हो, हम उसको आइडियल सॉइल बना सकते हैं कि उसके बाद हम्म आप वहां पे कोई भी क्रॉप कीजिए, आपको प्रॉपर प्रोडक्शन आएगा, डिजीज नहीं आएंगी, हम्म। और ये बार बार ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। हाँ, वो तो है। और एक जी। हाल ही में मैं उसमें सिर्फ मैं देसी गाय हमारे है उसका गोबर डालता हूँ, जी। जल्दी है उसका। तो हम्म। वो स्लरी इसमें हम ये स्लरी इसमें मिला सकते हैं क्या? हाँ, मिलाइए, सैलरी में क्या प्रॉब्लम है। उसमें कुछ जो बैक्टीरिया बनते हैं वो हमारे पौधों के लिए कुछ हानिकारक रहता है या नहीं? देखिए, वो आप प्रैक्टिस कैसी हो रही है वहां पे, उस पे डिपेंड करता है कि हम्म। हेलो। 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 उसके आवाज नहीं आ रही सर। अंदर मटेरियल क्या जा रहा है, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। सब चीजें हाँ, होती है। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही? हाँ, हेलो। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? हाँ, कट होती है यार। जी। नहीं। तो वो क्या है कि जो भी आप मटेरियल डाल रहे हैं ना, कंपोस्ट का कंसेप्ट ये होता है कि जो हम कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो 6% तक का होना चाहिए, तभी वो हम्म। अपने लिए प्रॉपर काम करता है। नहीं तो उसका जो न्यूट्रिशन है ना वो ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ही हो पाता है, और वो उसमें कैटायन हम एक्सचेंज कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। हाँ, वो है। तो हम उसमें नाइट्रोजन देते हैं, ज्यादा नाइट्रोजन देते हैं तो वो फिक्सिंग होता है क्या उधर? हेलो। ऐसा नहीं होता, नाइट्रोजन का फिक्सिंग का कंसेप्ट तब होता है जब आपके वहां पे कार्बन पूरा है, तब वहां कार्बन पे पूरा है। आपका, हाँ, तब आपका नाइट्रोजन वहां पे फिक्स होगा। हम्म। तो हम पहले से नहीं डालते उसमें नाइट्रोजन, जब हम्म। डालना होता है उससे पहले 6 घंटे हाँ, वो समझ गया, वो आपकी केमिकल उस प्रैक्टिस टाइम। है, वो तरीका आपका सही है। तो उसी केमिकल तरह डाला फार्मिंग तो के कोई लिहाज से दिक्कत वो नहीं सही आएगी? है आपका। वो दिक्कत नहीं आएगी? हाँ, दिक्कत उसमें नहीं आएगी, लेकिन
जो आपका केमिकल है वो रहेगा, जो रेजिड्यू है वो रहेगा, और जो डिजीज और इनका है, जो न्यूट्रिशन बैलेंस का कंसेप्ट है ना, वो नहीं पूरा हो पाता उसमें। आप क्रॉप के हिसाब से तो आपने कैलकुलेट करके डाल दिया, हाँ उसमें से काफी चीजें ये भी होंगी जो आगे जाके रिएक्शन करेंगी, क्योंकि केमिकल के सभी फर्टिलाइजर अलग अलग फॉर्म के होते हैं। तो वहां पे ये उसमें एक ही प्रॉब्लम है केमिकल फार्मिंग में, कि आप ये कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि आपके हर एक न्यूट्रिएंट वहां पे अपटेक होगा। तो जो हम उसके लिए जो अलग अलग एनपीके का जो अलग अलग जीवाणु रहता है, या हम्म। माइक्रोन्यूट्रिएंट के अलग अलग जीवाणु रहते हैं, वो जी, उस बैग में डालकर हम बैग में दे तो सकते हैं। अपने आप जो माइक्रोब्स हैं वो पैदा होंगे, और हम्म दूसरा वहां पे वो माइक्रोब्स एनारोबिक है, उनका काम है सिर्फ वहां पे कंपोस्टिंग करना। आपका जो भी मटेरियल वहां डला है उसको एंजाइम फॉर्म में चेंज करना। उसके हम्म बाद जो अपने सॉइल के अंदर हम माइक्रोब्स जो हैं उनका कल्चर डालते हैं। हम्म जो बैग है उसके अंदर जो माइक्रोब्स बनते हैं वो उसी कंडीशन के बनते हैं, और जो मैटर आपने डाला है उसके अंदर जो भी मिनरल या न्यूट्रिएंट या जो भी अणु होगा उसका वहां पे माइक्रोब बनेगा। बनेगा। तो जो पौधे के पास डालना चाहिए वो अलग रहेगा। हाँ, वो देखिए एरोबिक कंडीशन के माइक्रोब्स अलग होते हैं, जैसे जिनसे हमें करना है उसका, हम्म जैसे हम कैप्सूल कल्चर की बात करते हैं, या फिर जैसे सचान सर एक जीवामृत की बात करते हैं, उसी तरह से माइक्रोब जो हैं वो हमें एक बार वहां पे कल्चर कोई भी डालना है। उसके अलावा जब आप वो बैग का मटेरियल डालते रहेंगे तो वो वहां पे प्रोपेगेट होते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। हम्म तो उसको उसके बाद अलग से कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें डालना नहीं पड़ेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें पता चलेगा आपकी सोइल के अंदर क्या है और क्या नहीं उससे। पहले तो अगर मान उसका लो आपके टेस्टिंग। सोइल में जिंक नहीं है हम्म तो हमें जिंक की व्यवस्था वहां करनी पड़ेगी, वो अपने आप वहां पे नहीं बन सकता। हम्म तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, वो अलग अलग जो सल्फेट फॉर्म जो आते हैं, जिंक हम्म। ऑक्साइड, फेरस सल्फेट, हम्म। वो जो डाल रहे हैं 10-10 किलो दिया गया है, वो प्रमाण हमें पहले से उस हिसाब हम्म। से 10-10 किलो देते थे। जी, लेकिन वो अभी उस जमीन में पड़े रहे हैं, या उसका कुछ अलग सा फॉर्म बन गए हो? वही प्रॉब्लम है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे आप हाँ वो सल्फेटिक फर्टिलाइजर डालते हैं वहाँ माइक्रोब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते। हम्म। तो वो अभी उपलब्ध हो इसके लिए क्या करना होगा उसका? देखिए, एक ही तो तरीका वो है ये क्या आपको। क्या है ऐसा सर, ये बहुत 10-12-15 साल से हम डाल रहे हैं जी, ऐसे ही तरह इस तरह से ही। ये मालूम जी, नहीं था कि किस तरह से किया दिया जाता है, या पौधा जी, किस जी, तरह जी, से अपटेक करता है। जी, तो जी। अभी थोड़ा सा जब से वीडियो देखने में आया है यूट्यूब पर, हम्म। तब से समझ रहा हूँ कि ये कैसे आप पूरा सॉइल रहेगा। टेस्ट अगर करा के देंगे ना सर, तो हमें पूरा पता चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ कितनी फिक्स हुई, क्या कंडीशन है, और उसको ठीक हम कैसे करें। ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए जी, सॉइल टेस्ट करना ही जरूरी है। सबसे जरूरी है सर अगर हमें प्रॉपर काम करना है। उसके हम्म अलावा अगर मैं आपको बताने को जाऊंगा तो 10 प्रैक्टिसेस बता दूंगा, वो आप अलग अलग करेंगे, हो सकता है उनमें से 9 का कोई काम ही नहीं था। हम्म। अगर आप मुझे सोइल टेस्ट करवा के देंगे तो मैं आपको एक ही प्रैक्टिस ऐसी बताऊंगा कि आप वहां करेंगे और आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहले सॉइल टेस्ट करते हैं, उसके बाद जी, बाकी जी, जी, आगे का देखते हैं। ठीक। और एक बात सर, जो जी। हम जीवाणु कल्चर तैयार करके छेड़ते थे, जो वो कुठलं पहिले आपण डाळीचं पीठ आणि ते
चने का दाल होता है ना उसका जी उसका डालते थे पहले जीवामृत। जरूरत नहीं है दाल का, आप वहाँ पे नहीं बटर डालता था मिल्क मैं यूज कर पहले सकते हैं। 1 साल से डाल रहा था। मैं बताता हूँ उसका आपको। पहले पहले थोड़ा रिजल्ट दिखा, बाद में दिखना बंद हो गया। मैं बताता हूँ ना उसके लिए, अगर आपने उससे कोई भी माइक्रो प्रोपेगेट करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, हम्म, तो आप जब 200 लीटर 200 लीटर वाटर के अंदर 2 kg जैगरी जहां भी डालते हो, वहां पे हम्म, 30 ग्राम आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे आपको कोई भी अलग से आटा दाल कुछ नहीं डालना। नहीं डाला। 2 kg गुड़, सिर्फ 30 ग्राम यूरिया, 30 सिर्फ ग्राम सीएन, यूरिया उसके साथ। हाँ सिर्फ उसका सीएन रेशो बैलेंस करने के लिए। हाँ जो ठीक उसके है। अंदर आप यूरिया डालेंगे वो सिर्फ बहुत ही कम मात्रा है, 30 ग्राम ही होगा। उसको माइक्रोब्स कंज्यूम कर जाएंगे और उनकी हम्म, पॉपुलेशन सही से बढ़ेगी। हाँ हाँ आ, ठीक है ठीक है। अभी वो मैं बंद कर दिया, वो जो अमरूद बनाना। वो जी अभी दूसरे तरफ पे वो सजीव जेल बना रहा हूँ, जी उसके हिसाब से देना है। जी हम्म, वो डाल रखा है मैंने एक बैरल में 200 लीटर के। सही अभी है। वो डालना चालू करता हूँ। जी सजीव जेल। हेलो। हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ, वो सजीव जेल तैयार करना मैंने शुरू कर हाँ दिया है हाँ अभी। कीजिए कीजिए कीजिए। और वो जो पहला जो अमृत बनाता था वो बंद कर दिया। जी उसका रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा है और फंगस भी बढ़ रहा है वो अलग से। देखिए, वो कंप्लीट है नहीं ना सर। उसके अंदर जो भी आप आटा या दाल कुछ भी डालेंगे, हाँ उसको कम से कम भी 45 डेज लगते हैं ग्लूकोज में चेंज होने को। और आप 7 दिन में तो यूज ही कर लेते हैं, माइक्रोब ग्लूकोज फॉर्म में ही लेगा ना उसको, डायरेक्ट आटा को तो यूज ही नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ग्लूकोज फॉर्म जाएगा तो ही पौधा उठाएगा। हाँ और तो वो जो चीज हम कर ही नहीं पा रहे हैं ना, उसको पहले ही यूज कर लेते हैं। नहीं, इतना दिन हम रखते भी नहीं थे वो। ज्यादा हम्म से ज्यादा 15 दिन तक रखते थे हम। 10 से हाँ 15 दिन। तभी वो फंक्शन नहीं कर सकता। और दूसरा उसमें ये है कि आपने माइक्रोब भी जो डाले, कहाँ से मिट्टी डाली, उसमें पूरे थे या नहीं ये भी श्योर नहीं है। हम्म, हम्म ठीक है। ओके, धन्यवाद। वेलकम। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर हम सेशन क्लोज कर देंगे। हेलो जी सर, ये जो डाइजेस्टर है उसमें काऊ डंग का अलावा दूसरा कुछ यूज कर सकते हैं क्या सर? अभी हमारा पास हाँ काऊ नहीं बिल्कुल है कर तो सकते हम हो। बायो डाइजेस्टर नहीं बना सकते। बस आपको, जैसे मैं बताता हूँ आपको, वीक में एक बार भी अगर 5 से 10 kg आप काऊ डंग डालेंगे तो चलेगा। सर ये काऊ डंग इसमें ये बोलते हैं कि फ्रेश काऊ डंग ही होना चाहिए। अभी मैंने ये सपोज एक वीक में लोड़ा एक बार डाल दीजिए आप। फ्रेश ही डालना चाहिए ना? हाँ ऐसा है। हाँ वीक में आप 1 या 2 दिन तक का यूज कर सकते हैं। ओके ओके। उसके अलावा वहाँ पे आप जो भी आपके वहाँ पे वीड्स हैं उनको डाल सकते हैं, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनको डाल सकते हैं, लीव्स को डाल सकते हैं। हाँ, वो सब मेरे पास मिल जाता है सर, बट वो काऊ जी डंग का जी ही जी तो काऊ डंग थोड़ा आप सा वीक में इश्यू एक था। बार डालिए।
ठीक है ठीक है। कितना किलो डालना पड़ता है सर? सपोज बायोडाइजेस्टर कितना इसमें मैं बताता मिनिमम? हूँ, आप कोई भी है वीक में अगर आप बाकी मटेरियल प्रॉपर डाल रहे हैं तो काऊ डंग को आप वीक में 1 टाइम भी 10 kg तक डालेंगे तो चलेगा। ओके सर, ओके ओके ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू। वेलकम। और किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए। ठीक है पंकज जी, फिर हम सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप आप सबको बहुत सारा नॉलेज मिला है हमारे एक्सपर्ट से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।